Good morning, everyone. I am Bhagalpur Sahodaya from Bhagalpur Sahodaya. I am on the post of vice principal. But luckily, the whole management is there in my hand. As such, managing everything over here, I manage everything over there. Today we have a camp in Mandar also. The whole school is arriving over here. Is Mr. Salendra Tiwari. His teacher from Anandra This is my 36th training. 35th training I have completed in this season only. And luckily I have got chance to complete all the 5 training at your school. Means in all the 5 I will be there. And with me there will be 2 RP in 3 sessions Shailendra sir and in 2 sessions Saurabh sir. He is from Open Minds. As per I know. We are present here to gather the information about a very beautiful topic, classroom management. As per CBSE, we have been given a code that is called RP code, means Resource Person Code. So according to the code, we are the trainer, you are the trainer. But do not think this gap in your mind. Neither I am a trainer, nor you are a trainer. We both are learner only. Because once we have I think the third topic is there, learning outcomes and pedagogy. It will teach us that nobody is a teacher in this world. Everybody is a learner. And learning is never-ending process. As you have completed your schooling, then college, then universities, and finally again you are learning something every day from the students, from your home, and from everywhere. So we will collect all the important information from this brilliant topic, classroom management. About classroom, I must clear you all that you all are familiar with your classroom and you all know how to manage your classes. Because as we have 5 fingers in our hand and not a single finger is equal to another. Like this, not a single student are equal to another student. So, if there is a differences between fingers, of course there is a differences between students also, their variety, and we have to understand each and everything. Up to now, whatever was happening, that was our management. Whether we should be there or here, whether we should have mic or not, TV or not, and something, recording or not, these all are come in the term of management only. So before I begin, I must call my co-RP, Mr. Salendra sir, to introduce himself, then we will continue. Thank you so much once again. As you have already listened, and after listening the identity of both of us, now we will grow acquaintance between me and you.
growing acquaintance will bring some positive outcome. So it is a question of togetherness. As our argument told already, that in spite of the fact that we are the trainers sent by the CBSE, we have been conducting so many programs, and this conduction of program is only to feed the best related to the teaching process. So nothing new here. Some of us are vibrant teachers working since long. Some of us are new. But the combination of the old and new will bring some wonderful outcome. School is also a gathering. It's a gathering of the intellectuals. And among the teachers, we share our views sometimes. Today's topic is quite relevant, that is known. Classroom management. Every one of us, as I told you, are proficient enough to handle the class. But sometimes we face some odd situations. How can we just keep aside all these odds? How can we bring something new? Because knowing is a continuous process. Am I right? Knowing is a continuous process. To RP1, Honorable RP1 will start to take the class. He will brief all the things. Some videos clipping are there. They will feed you with some wonderful information, knowledge. The main thing is that listening to the things patiently, because continuous sitting needs patience. It does not need any clarification. But it is for the benefit of us, for the both. We also, being a trainer, we just learn a lot from you also. You will be called here to express your views, and those views will be welcomed by us. Some participations will take place. So everything will provide you with minute information that is quite valuable and will prove quite advantageous in the career. Okay? So I think we will enjoy the moment. Starting from today, it will end tomorrow evening. So this is the session will be quite knowledgeable, or we should try to involve in it. This is my request. Because everyone is a learner. Myself is a learner. You are a learner. Okay? So I am just handing over the mic to our RP1 and he will be reading all the things. Okay? Thank you. Thank you very much. The first thing we need to know is to give a good remark. तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब कभी भी कोई अपनी पार्टी को खत्म करे, हम क्लैपिंग से उनका वेलकम तो जरूर करें ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे. सो क्लैप फॉर तिवारी सर. Is English okay with you, or I should be bilingual? Is English okay with you, or I should be bilingual? English is comfortable for everybody. Good. Okay. There are 13 points on the screen, right? I want the definition or explanation from you only. That way, one by one, you should describe what point you are going to take. Like this, the points are eyes on me, clean up, sit down, please, quiet, those block it, please.
raise your hand, please line up, look and listen, stand to cleaner, line up quietly, silence is interrupt. Can somebody explain any of the point? You sir? Any of them? What is that importance in classroom session? Subtly child. The very important inside the classroom is Okay, before beginning, you must tell your name. Please present yourself very firstly. Okay. Subject का परिचय मिले and what subject you really teach, and then you come on to the point and explain. Okay. So we should be expressive in many ways. I think that you will be expressing yourself. So good morning everyone. I am Nitish Kumar Vijay, DGT Biology non-food school. Inside the classroom, at first, when we came inside the classroom, then at first we saw the activities of a student, what are they doing inside the classroom. And as I think that the students are so innocent and we must treat with our happiness. Never हम लोगों को अपना फ्रस्ट्रेशन कभी भी उसके सामने नहीं निकालना चाहिए या उनके ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। अब क्लासरूम में हम जब जाते हैं तो जाते के साथ ये तुरंत क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो डांटना फटकारना इस टाइप की अगर एक्टिविटी हम बच्चों के साथ स्टार्ट कर देते हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। एक बात Good morning, all of you. Myself, Neeraj Chaudhary. I'm from Bossy. At first, I want to tell about the point what sir is showing me. Firstly, please raise your hand. It is what subject do you teach, ma'am? I'm teaching English. English. Okay. So, firstly, what I'm seeing here, the point sir is showing me. So, first point I would like to explain is please raise your hand what we are using in class. So, if any of the question we are asking to the children, in that time we have to use this word that please raise your hand if you know the answer. So in that time we don't have to force them to you you have to tell the right answer only, but we have a capacity to listen them. Firstly, we have to listen them what the answer is coming from them. Right. So okay. Thank you very much. But you use mic. The mic was here also. Okay. The mic is not. Any mic from this? What about From the screen? things on the screen? There are nearly 12 points which are important fact of classroom management. Describe any single. Okay. If not, start the mic please. Everyone should express himself. Okay. So, sir, next time your turn will come. Okay. Okay. You will have to respond. Good morning, all of you. Myself is Mr. Munir Kumar. I teach mathematics. मैं एक बात बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही बोलें. It's not necessary. Hindi is our mother tongue. Yes. And mother first. Okay. So it is not necessary. But English has the vast acceptability, so we carry this language. Okay.
Otherwise, Hindi is itself very rich. आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जिसमें बोलने में अच्छा लगे, you feel yourself comfort, yeah, then you can say, okay. But you should say, you should participate. This is very necessary. तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो क्लास में ये करते साथ जो है बच्चों को यहाँ देख के बोलेंगे, है ना? Because you will have to pick up, as sir told already, that anyone among these 12 you will have to pick up and then you should explain. In relevant to yourself, अपने में उसको अपने में समाहित करते हुए उसको एक्सप्रेस करना है. What exactly you face in the class? Yes. तो मिस मैं क्वाइट की बात करता हूँ. आपकी साइड आ जाइए. तो सबसे पहले तो उनकी कुछ क्वाइट जो बच्चों की शांति होनी चाहिए क्लास में, वो नेसेसरी है. जब भी मैं ऐसा अनुभव किया हूँ, बच्चे अगर आपस में बात करने लगते हैं तो जो टीचर्स की बातें होती हैं, जो पढ़ाने का तरीका होता है, वो तो टीचर भी प्रभावित हो जाते हैं. और बच्चों को जो भी पढ़ाया अगर वो शांति नहीं बना के रखे तो फिर उसको समझ में कुछ भी नहीं आती है. उसके माथे में दिमाग से सारी बातें उड़ जाती है. सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देता है कि टीचर क्या बोल रहे हैं, बट कुछ भी समझ में नहीं आता है. मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर किसी बच्चे का ध्यान भटक जाए तो वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, चाहे टीचर कितना भी उसको पढ़ाते हैं. So what is the conclusion? क्या conclusion क्या हुआ? क्लासरूम में शांति चाहिए. Any point from your side? We should cheer one another, okay? No, we should not feel monotonous. We should be sharing our views. Good morning, everyone. My name is Rimi Kumari. I am from Bossy. I teach in mathematics in Mount Ford School. Point is sit down. At when I enter in class, at first we teach to student how to sit in a classroom, because it is a kind of manner. Yes, very important, sir. Seating arrangement. Myself, Bhagalpur Sahodaya, I am a private teacher. As it is, we are facing the rapid task. We know when it is not wrong. We are a facilitator. And in the classroom, we should support to the students in knowledge, better knowledge. And we should use teaching methods, creativity thinkings, and there are many teaching methods, like a students who did not understand in the class, we should activity process and many process that we understand to the student how to learn, how to write, how to speak in the class. Thank you. My name is Kanchan Kumari. Say loudly. My name is Kanchan Kumari. मैं यहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ. हाँ, हिंदी में बोलिए. No problem. पहले मैं क्लास में जाऊँगी तो पहले बच्चे खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे. उसके बाद मैं इसे बैठने के लिए बोलूँगी सिट ऑन. फिर उसके बाद मैं देखूँगी बच्चे अच्छी तरह से बैठे या नहीं बैठे हैं. उसके बाद मैं मतलब अपना क्लास स्टार्ट करूँगी, जो पढ़ाना पार्ट स्टार्ट करूँगी. उसके बाद फिर देखूँगी बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उस पर बच्चे पे ध्यान दूँगी. ठीक है.
Any points, sir, from your side? My name is Dr. Singh. I am here as a history teacher. My education is B.Ed and in history. First of all, when we enter in the class, we should manage the class with a very बच्चे लाइन में हैं, टेबल की लाइन में है, आर दे इन ए मूड टू स्टडी और नॉट, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है क्लास में। इन सारी बातों को देखते हुए जब बच्चे मूड में आ जाए तब हमको क्लास वर्क स्टार्ट करना चाहिए। पहले बोल सिखाना पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करें, उसके बाद बच्चों के सामने लेके करके अपने जो को पढ़ाना है, जो टीचिंग देना है, उसको धीरे धीरे करें। और हो सके तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ हम डालें कि ताकि उसके अंदर में क्यूरियोसिटी आ जाए कि पढ़ने के लिए। और बुक में कुछ चीज़ दिया हुआ है और उसको हम पढ़ा दें वैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ाते हैं, किताब में दिया हुआ ऐसे ऐसे, लेकिन स्पेशलिटी उसकी क्या है कि द शैडो ऑफ दिस टेम्पल नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ये जब जाने का बच्चा बोलता कैसे, तो मैंने बताया कैसे, तब उसमें क्यूरियोसिटी जाएगा। अच्छा, थैंक यू। Good morning, I am Shivani. I teach English subject. So for me, manner is very important in the classroom. So we should teach how to manage class, how to behave with teachers, how to behave with students, how to talk. So this is important. Thank you. Anybody else want to hold this mic? Good morning everyone, I am Anand Yadav. First of all, when teacher enter in class, eye contact with children first of all, and say be quiet, then start topics and recall previous topics before teach, and related with examples, environments, जैसे कि वो बच्चे जिस चीज़ को, जैसे सपोज दैट वो मैच मीन्स मक्का होता है, तो वो मैच बोलने के बाद वो समझ में नहीं आता। अगर आप क्षेत्रीय लैंग्वेज में भुट्टा बोल दे तो वो जल्दी कैच कर जाता है। तो ऐसे आप अगर क्लासरूम में मैनेज करते हैं तो बच्चे आई कांटेक्ट के साथ जल्दी सीखते हैं। थैंक यू। Thank you. You will talk regional. Anybody else? That's it. आप में से कोई? या आप पीछे से नहीं होगा क्या देखना है? पीछे से सिर्फ नहीं होगा, पीछे से कीजिए। इसमें से जो बच्चे अकेला थे उसको मनाने का या उसको खुश रखने का एक तरीका बताया गया इस क्लिप में। किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ उसकी जो भावनात्मक लगाव है वो जोड़ना है उसके साथ, ये बताया। कंफर्टेबल एंड इक्वल। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें बैक बेंचर की तरफ ध्यान देना।
There are three types of learners in our classroom: fast, average, and slow learner. The fast will learn automatically by themselves only. You need only to treat them in a proper way. By giving your 10% attention only, you can make them toppers. With average learner, you have to be in your extra time also. Whenever your classroom session is over, just call some of the students and be with them कि बेटा क्या समझे आज? मुझे लगा कि कुछ समझे नहीं. Appraisal वो समझ तो रहा है, but he cannot express. Final, please do not mind. बीच में मैं किसी न किसी को इंडिकेट करूँगा भाई. तो ये मत सोचना आपने कि मैंने आपको फास्ट लर्नर बनाया या एवरेज लर्नर बनाया. जैसे सर को अभी मैंने दिया भाई, सर ने कहा कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, राइट सर. लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला, इट वॉज अप टू द मार्क. जरूरत क्या है? वी नीड टू गिव आवर टाइम इक्वल टू ईच ऑफ देम. अब उसमें क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा है हम उस पर फोकस कम करते हैं. हमारा जो सब्जेक्ट एवरेज है हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जो सब्जेक्ट सबसे वीक है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं. सो इन आवर क्लासरूम हमारा जो नजरिया होगा, अभी जैसे एक बात हुई थी कि वी नीड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, दो चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है. कई बार जो हैव सीन इफ देयर इज विंडो इन द क्लासरूम, और होगा ही होगा, नहीं होने का मतलब क्या है? दे यूज्ड टू बी आउट ऑफ द विंडो. ये तो एरिया अच्छा है, ठीक है, अगर कोई गांव वगैरह तुरंत नहीं है कि बच्चे उधर इन्वॉल्व होंगे, फाइनल जो बाकी चीजें वो एक जैसी ही दिखती है हर दिन. सो दे विल नॉट बी आउटसाइडर्स. तो वहां पे क्या है, इफ दे आर सिटिंग एट द विंडो, देयर माइंड यूज्ड टू बी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. ऑफ कोर्स फिजिकली दे आर इन द क्लासरूम, they are with the lecture of the teacher, but mentally they are outsiders, and this is why their marks always differentiate. It affected. हमें प्रॉपर अटेंशन करना है तीनों लर्नर के ऊपर, एवरेज के ऊपर भी, फास्ट के ऊपर भी, और स्लो के ऊपर तो ज्यादा. और स्पेशली इन सब के बाद आता है जो पॉइंट है वो है बैक बेंचर, है ना. बैक बेंचर पे अगर हमने ज्यादा फोकस किया, भाई नॉर्मली क्या करते हैं, वी द टीचर इग्नोर द बैक बेंचर. तो ये सब किसी काम के नहीं है, भाई ना. चाहे कितना भी कर जाओ, इनके काम पे जो नहीं देखता है. दे आर लाइक बलद्रास. व्हेन देयर माइंड विल बी एक्टिव ना, दे विल बी मर्सीफुल. ये हम सोच करके उसे इग्नोर कर देते हैं, बट करना क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन देम स्पेशली. Why to them especially? Because they are very creative mindful. उनका माइंड जितना क्रिएटिव होता है ना, ये स्टेज मैनेजमेंट करना है, साउंड मैनेजमेंट करना है, किसी प्रोग्राम को मैनेज करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके देख लो, एकदम टॉप क्लास का मैनेजमेंट उनके पास है. माइंड इन स्टडी, देयर माइंड इज नॉट विद द टीचर. तो यहाँ पर अगर ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड जो भी हो, अगर बोर्ड पे और टीचर्स पे स्टूडेंट का पूरा फोकस हो गया, देन दे डू नॉट नीड टू रिवाइज एनीथिंग. एंड व्हाई टू रिवाइज? सिंपल सी बात है, व्हाई टू रिवाइज? लेकिन रिवाइज भी करवाना पड़ेगा. आई होप सम ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ सीरियल्स आल्सो. आई नो सीरियल्स कम्स ऑन टेलीविजन. हर एक सीरियल में क्या होता है कि एक सबसे पहले जो होता है वो होता है रिकैप. होता है ना, रिकैप. कल जो दिखाया गया वो फिर से दिखाया जाएगा, फाइनल इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट. देन आफ्टर द रिकैप देयर इज द सीन ऑफ दैट डे, और फिर लास्ट में क्या होगा, कल क्या होगा. इट यूज्ड टू बी देयर, कल क्या होगा. ये जैसे मतलब टू बी कंटिन्यू. अब ये जैसे है तो कल जो है गोपी बहू जो है अपने सास को अच्छा खासा सबक सिखा देगी, या पार्वती भाई कुछ पार्वती भाभी कुछ तो ये के साथ करेगी, एक्सेट्रा.
इट कम्स इन आवर माइंड, हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म नहीं होती है, और ये क्यूरियोसिटी हमें अपने बच्चों के माइंड में एट एवरी मोमेंट बनाए रखना है। साइंस वाले टीचर साइंस का काम करेंगे, हिंदी वाले हिंदी का काम करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का काम करेंगे, एंड एवरी टीचर विल डू द सेम जॉब। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कई बार आपने होमवर्क दे दिया, मान लो सारे टीचर्स के होमवर्क मिल गए, एवरीथिंग जिसका जरूरत है या जो मानने वाले टीचर है उनका बन जाएगा, जो नहीं मानने वाले उनका नहीं बनता है। मैं क्या करें, मैथ वाले टीचर जो है ना पीछे ही नहीं छोड़ते हैं, एक बार में 7 चैप्टर या 7 इक्वेशन, और एक इक्वेशन जो है एक दिन लगाता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। हिंदी वाली मैं मान भी गई, अच्छा ठीक है बेटा कल करके आना, मानना नहीं है। I know, never be with the words of excuses of your student. They are a student and you are the teacher, facilitate करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि we are going to compromise with our task। फिर वो सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, फिर वो ऑफिस में बोले आप लगाते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टूडेंट्स आर ऑन देयर ओन वे। So we have to manage these things. So अब हम लोग आते हैं वास्तव में अपनी टॉपिक्स पे कि in today's session what we are going to learn how to define classroom management. Second thing, we will understand why students are disruptive. Third, we are going to learn your classroom management profile. And fourth, some key points for better classroom management. ये 4 चीजें ही हम सीखेंगे आज पूरे के पूरे 5 घंटे में। Only 4 things. So, in the term of defining classroom management, is a team management. In the terms of classroom management, हम जब आएंगे तो there are the points कि it's effective discipline। सबसे पहला पैरामीटर सर ने कहा कि डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए, and really discipline is the mother of education। ऐसा कहा क्या है, as we have listened the quote से, necessity is the mother of invention, so discipline is the mother of education। If students are not in discipline, of course nothing is running in his or her mind except the khurafat। Except the khurafat, they have the khurafat। उनके माइंड में टीचर्स के बारे में पूरा का पूरा टीचर्स के प्रोफाइल को उसने स्कैन कर लिया है। अरे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, आज लग रहा है इनका मूड ठीक नहीं है। अभी सर ने एक अच्छा कहा कि हमें घर को घर में छोड़ के आना चाहिए। When you enter into the main gate of the classroom, forget your home. Keep your mobile in silent mode or keep it in the drawer or give it to the principal। और घर में भी बोल कर के आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करना from 9 to 1, ये जो भी है। अब उसके बाद कैसे मैनेज करना है, दिस यू नो वेरी वेल। अदरवाइज इफ देयर विल बी मोबाइल विथ यू ऑल द टाइम्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम इश्यूज, ये लगे रहते हैं, लेकिन उस समय हमारा पहला जो इश्यू है वो है हाउ टू ट्रेन आवर स्टूडेंट इन अ प्रॉपर वे, एंड इफ इट विल नॉट बी इफेक्टिव तो आपका माइंड तो दोनों जगह पे रहेगा एंड द क्लासरूम विल बी डिस्टर्ब ओवर देयर। सो डिसिप्लिन इज द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ अ बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। सेकंड इज इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। हमें क्लास के लिए हमेशा प्रिपेयर होकर के आना है। When you are in the class, जैसे आज क्लासरूम मैनेजमेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि I am not prepared, I am totally prepared, I am ready to face all the questions। ये मुझे नहीं पता है कि what questions will come in your mind and how I will face that problems, that questions। तो ये मैनेज करना है। Kindly keep your mobile in silent mode। So we have to prepare, we have to be prepared about our classroom। क्लास क्या चीज का है, जिस टॉपिक के लिए
जैसे हवाओं में पढ़ाना है या ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाना है, तो ट्विंकल ट्विंकल को कोशिश क्या करेंगे कि अगर कल पढ़ाना है तो आज बच्चों को दिए, ओके टुमारो आई विल लिसन दिस राइम बाय ईच एंड एवरीवन। जैसे आपने सबको मौका दे दिया, क्या पढ़ाने की जरूरत है? इज इट नेसेसरी टू टीच? कोई जरूरत ही नहीं है, दे हैव लर्नड ऑलरेडी। अब उसमें क्या है, जस्ट सेलेक्ट समवन, है ना, कुछ तो पाइनियर होंगे उसमें, कुछ तो स्पेशल होंगे, जस्ट टेक देम आउट, call on the stage, call near the board, call in front of the student and give them chance to present themselves. जैसे आपने उन्हें चांस दे दिया प्रेजेंट करने के लिए, फिर कोई जरूरत ही नहीं है टीचिंग की। जैसे माय नेम इज रवि और मैंने एक फॉर्मूला बनाया ट्रिपल आर का, मैंने ट्रिपल आर फॉर्मूला। कैन समबडी गेस व्हाट इज ट्रिपल आर? मींस आर क्यूब। क्या प्लीज साइंस reduce and recycle. okay right. use recycle. Okay, no issue. Anybody else? R cube। मैं वो बताऊंगा जो साइंस के लिए, मैं और मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए, सबके लिए कॉमन ही होगा। ये सिर्फ साइंस वाले में काम नहीं आएगा। या रीड, रिवाइज। Anybody else? Add third R, read, revise. What is the third? Recall, okay. Anyone? Recycle? Recite, okay. लेकिन चैप्टर रहेगा तो रिसाइट तो करेंगे नहीं, सिर्फ पोएम को रिसाइट कर सकते हैं। Repeat. हाँ, आप टीचिंग, ठीक है, रीड नहीं, उससे मीनिंग भी खो जा, बच्चा तैयार है, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम द फैसिलिटेटर, आई एम नॉट अ टीचर। रीड बिफोर यू रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग। द सेकेंड आर इज रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग। जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अगर किसी का ध्यान कहीं भी रहा, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने अंदर इस छवि को भी बरकरार रखिए। वो गुरुजी जो डंडा लेकर के घुमा करते थे, उनकी छवि को खराब मत होने दीजिए, अदरवाइज बच्चे जो है ना पीछे पटाखा फोड़ने में पीछे कभी नहीं हटेंगे। दे आर द चिल्ड्रेन, सो इफ दे आर द चिल्ड्रेन, व्हाई शुडंट वी बी द टीचर? वी आर द गुरुजी ओवर देयर। सो रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग। अब करना क्या है कि मुझे क्लासरूम पढ़ाना था, उससे पहले मैंने आप लोगों से पूछ लिया, अच्छा क्लासरूम के बारे में आप क्या क्या जानते थे, दीज आर द पॉइंट्स, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्वाभाविक यू आर लर्निंग, आपको पता चल गया क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, और कुछ ना कुछ तो आप सीखते जा ही रहे हो, आप सीखो या ना सीखो, आई एम लर्निंग और नॉट। लास्ट टाइम में सब करके मैं बता दूंगा कि मैंने आप लोगों से, हर पुराने टीचर से मैंने क्या क्या सीखा। द थर्ड आर इज रीड आफ्टर यू रीड, जिसे आपने रिकॉल कहा, रिवाइज कहा, रिमेंबर कहा, जो भी कहा, रीड आफ्टर यू रीड। मैंने जो पढ़ा किया ये यहीं तक नहीं है, बच्चों को 4-5 क्वेश्चन थोप दीजिए, फाइनल, और क्वेश्चन वैसे दीजिए जो एक्सरसाइज में ना हो। फाइन, इट मस्ट बी इंटरनल वन, इट मस्ट बी मेंटल वन, ताकि बच्चे आपके पूरे के पूरे लेक्चर को एक बार में रिवाइज कर जाए। सो ट्रिपल आर फॉर्मूला इज रीड बिफोर यू रीड एट द टाइम ऑफ रीडिंग एंड रीड आफ्टर यू रीड। इस फॉर्मूले को आप अपना करके देखो, आपको स्लाइड में डिफिकल्ट नॉट योर्स, ऑफ योर स्टूडेंट्स। उन्हें कभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तैयार है, बच्चे चाहे जो भी पूछ ले, आप बच्चे को मैंने पहले दे दिया कि टॉपिक इज दिस, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अगले दिन आकर के सबसे हवा में बसंती हवा सुन लिया, झांसी की रानी सुन लिया, झांसी की रानी कोई बताएगा क्या? या झांसी की रानी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के No, sir. I'm asking about the poem. झांसी की रानी कविता सुनाना है।
इतना इसमें मेरे ख्याल में मुद्रा को ही जवाब राइट। इसमें है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी बन गया। कोई इसे बेहतर भी जानता है? तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर उम्र के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेली थी वो, कई बार क्या होता है, इफ द टीचर्स आर लाइक दिस, चाहे आप जानो या ना जानो, बच्चों से सीखने का मौका मिल जाएगा, भाई ना। एंड इफ दे आर लर्निंग, ऑफ कोर्स यू आर टीचिंग, इफ दे आर लर्निंग, बी प्रिपेयर्ड, यू आर टीचिंग। सो दैट पॉइंट इज इट्स मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स। मैंने कहा बार बार क्लैपिंग करने के लिए, क्लैपिंग कीजिए, बच्चों के लिए बोलिए वाओ, एक्सीलेंट, ग्रेट, सुपर, ब्रेवो। बीच बीच में अगर ये टोन आप करते रहे, या फिर उठा करके कभी कभार अपने पॉकेट्स में, आज तो संयोग से नहीं हो पाया, एक्चुअली फॉर लास्ट 3 days आई वॉज इंगेज्ड इन एन अनुष्ठान। मेरा जो सेकेंड पार्ट है वो पूजा पाठ है, ठीक है, एक्सेप्ट द श्राद्ध आई डू एवरीथिंग, ठीक है। आप किसी पूजा पाठ के लिए मुझे बुला सकते हैं, आई कैन डू माई एडवर्टाइजमेंट फॉर हियर, आई गिव यू माई कार्ड, ठीक है। एक बार क्लैपिंग का प्रैक्टिस हो जाए, यू कैन कॉल मी फॉर दैट। हाँ, अब मुद्दा ये है कि मैं क्या जानता हूँ, ये जो मैंने बताया, सो यू मस्ट कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटिंग। मैं पूजा हो गया, जजमान से दक्षिणा भी ले लिया, फिर मैं कहता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा क्या, तो हाँ, तो जितना बात हुआ तो उससे बेसी दीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ये भी रख लीजिए। अब भाई लेगा तो मेरे से कोई नहीं, उल्टे कुछ तो बढ़ ही जाता है, इट बिकम्स गुड। ये क्या करना है हमको? हाँ, सो 3 days आई वॉज engaged in that अनुष्ठान only. Yesterday night I became free at 8 o'clock, and when I went to market, the market was closed. Otherwise, मैं पेन्स का बंडल जो है वो लेकर के चलता हूँ इन एवरी ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। कल के सेशन में हो सकता है यहाँ पे मार्केट से अवेलेबल हो जाए, एंड आई गिव इट टू द टीचर्स, टू द ट्रेनिंग वन, दैट इज दे मस्ट बी मोटिवेटिव वन, मोटिवेटेड। तो हमें अपने स्टूडेंट को पेंसिल दे करके, इरेजर दे करके, शार्पनर दे करके, आप अपने पॉकेट से कर लो, मैनेजमेंट को इसके लिए प्रेशर मत दो, है ना। यू विल बी फेवरेट टीचर ऑफ योर स्टूडेंट, जब जरूरत हो तो मारो को, नो डाउट। मारने का मतलब ये नहीं कि डंडा लेकर के उसको धूम दी, है ना। यू विल बी अंडर लॉ, वो काम नहीं करना है। मारने का मतलब है जो आंखों से ना डरे वो कभी नहीं डरेगा। So you must have your own attitude over there as a teacher. अरे सर पढ़ाते तो बड़ा अच्छा है लेकिन मारते भी, बस ये अगर इमेज बना लगे ना तो मजा आ जाए। अरे पढ़ाते तो अच्छा ये ना, मारते तो नहीं है, कोई बात नहीं होगी तो काम चलेगा, इट हैपेंस। तो ये सेकंड वाला एटीट्यूड नहीं बनाना, पढ़ाना तो अच्छा है इन बोथ द केसेस, बट फर्स्ट वाले एटीट्यूड से क्या होगा, द स्टूडेंट विल हैव सम व्हाट आई कैन से फियर फ्रॉम यू। कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए ना। वी आर फैसिलिटेटर बट वी आर नॉट फ्रेंड। रिमेंबर, टीचर और स्टूडेंट फैसिलिटेटर और ग्रैबर है, लेकिन वो दोनों फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। जिस दिन ये दोनों फ्रेंड हो गए, सोच लो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। So it's providing a safe, comfortable learning environment. अभी जैसे हम लोगों ने अंतरा को देखा, अंतरा ने क्या कहा कि nobody is caring about me, everybody is ignoring me, nobody shares his or her feelings with me. जैसे मैडम ने कहा, अरे अंतरा, it seems you have some problem. पता है आजकल टीचर्स की इमेज इतनी अच्छी है अमंग स्टूडेंट कि घर में पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है, उन्होंने कहा कि नहीं आपके टीचर ने गलत पढ़ाया। अच्छा, तुम टीचर से ढेर जानती हो, चलो तो मेरे टीचर से मिलने। जैसे बच्चे ने ये कहा, इट मीन्स यू हैव लैप्ड योर इमेज इनसाइड योर स्टूडेंट, मीन्स यू हैव बीन
एन आइडियल टीचर फॉर योर स्टूडेंट, और ये आपने मैनेज अच्छा किया है। अब अगर आपसे गलती हुई भी है तो नो इश्यू, जब कभी भी कंप्लेंट्स आए यू कैन एडिट इट, फाइनल विथ योर ब्रीथ। इट्स बिल्डिंग योर स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम। जैसे दबूपन को दूर करने की कोशिश की, you have made them polite, you have made them confident, of course you are going to be a good teacher for your student। and बजाय पता भी नहीं है, आराम से लिया स्टाफ लिया, और अब तो वो भी बनाया प्रॉपर आ गया है, है ना, प्रॉपर क्या बोलते हैं जो भी है, छोटा सा वो पटाखा है, आराम से ऐसे पटक दिया है ना, वो बच जाता है। पहले हम लोग लसलिया पटाखा उसको बोला करते थे। So it's building your student self-esteem. If you are giving your proper attention to the whole class, it makes the self-esteem of each and every student. It's being creative and imaginative in daily sessions, in everyday session में निकालो। everyday आप YouTube पे, Google पे सर्च करते रहिए अपने टॉपिक्स को, जो भी आपको क्लासरूम में सेशन में लेना है, इट मस्ट बी इंटरेक्टिव इंग्लिश। जैसे ही बिटवीन टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप रहा और स्टूडेंट के माइंड में ये आया, द टीचर इज रिपीटिंग द सेम थिंग विच शी हैज और ही हैज टॉल्ड अर्लियर, फिर क्या करेगा? he or she is not going to pay proper attention towards your lecture, towards your class. So we have to make changes. Next is, it's different for everyone. अब classroom management different for everyone, ये कैसे होगा? जैसे अभी हमने कहा कि it's different fingers are there, different mentalities are there, different types of learners are there, they have their different motive of learning also. हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता है, हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता है। कभी कभी तो you will feel surprising, अगर आप सारे बच्चों से पढ़ो, पूछो कि tell me one thing, why do you come to school? And the answer will not come that they come for study. कुछ एक आंसर होंगे, अरे मैं तो उससे मिलने आता हूँ, है ना, ये फ्रेंड मेरे घर पे नहीं जा सकते इसलिए मैं आ जाता हूँ। अरे घर में भीड़ लोगों, पापा मम्मी की किच 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 किच, इससे बढ़िया कि स्कूल में बैठे रहो, एक्सेट्रा। दे हैव दिस टाइप्स ऑफ आंसर। सो इससे भी बाहर निकालना उससे वाई क्लासरूम मैनेजमेंट को अगर फॉलो करेंगे, आवर टीचिंग स्टाइल्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज एवरी डे वी आर ब्रिंगिंग चेंजेस। Every day we are in touch with the social media, with the Googles and everything. Every day we are innovating ourselves, we are upgrading ourselves, and we are updating ourselves. This is the age of the mobile. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऐप में कुछ नया आया, तुरंत कहता है कि इससे क्या करें आप, अपडेट कीजिए। मोबाइल में ज्यादा कचरा हो गया तो तुरंत वो मैसेज देता है फॉर्मेट इट। अब फॉर्मेट में क्या सारी चीजों को बाहर कर दे? नहीं, द गुड थिंग्स विल बी इनसाइड देयर एंड द वेस्ट थिंग विल बी आउटसाइड। पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड्स, इफ यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ every day in your classroom session, of course your personality will be innovative one. अरे that teacher, अभी जैसे विवेक बिंद्रा बहुत ही प्रचलन में है, can you tell me why Vivek Bindra is on trend this week? Anyone? Yes. Yeah, please. पता है? He is a motivational speaker. और अभी सबसे अच्छा कमाने वाला वही है ना? He trains everyone, the commercial management, the business management and everything. विवेक बिंद्रा की शादी हुई और अगले दिन जो है उसने अपनी वाइफ को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में चली गई। So the people are giving a good comment कि जो अपने हाउस को मैनेज नहीं कर पाया वो दूसरों को मैनेजमेंट क्या सिखाएगा। कहने का मतलब है आपकी एक छोटी सी गलती आपकी 99 अच्छाइयों को दबा देती है।
So if we are not upgrading ourselves, what the future or what it will affect on our student and our personality will be a sin. तो उसको ऐसे पढ़ाना वही पढ़ाएंगे, चलो ना क्या दिक्कत है, नहीं हो करेंगे तो समझ लेंगे। कुछ एक टीचर होते हैं आए आराम से चेयर लिए बैठ गए, अच्छा ठीक है, the lecture is going on. We must not be a chair person at our classroom. मैंने तो अपने क्लासरूम से हर एक क्लासरूम से चेयर ही गायब कर दिया। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। सर अगर थैंक यू वेरी मच सर। आपको अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। दिस इज द आंसर ऑफ रिमार्क्स ऑफ माई डायरेक्टर। जो उसे अच्छा लगता है करने दीजिए। वी मस्ट नॉट बी चेयर पर्सन। चेयर तो आपके लिए है ही नहीं। हाँ, चेयर कब मिलेगा पता है? When you are in the staff room, be on the chair. When you are in the classroom, don't be chair person. Oh, बुरा है वो। there is one query. Yeah. duty for 7 periods and it becomes inhuman that he's continuously standing and teaching. In that situation, what should be the appropriate approach? Right. So necessity is the mother of teaching. That is continuously teaching for 7 period. Give him 2 leisure, especially after 3 periods he must have a leisure period. इसलिए बीच में लंच ब्रेक भी बनाया गया था। नहीं तो मैनेजमेंट का बस चले ना, वो 3 बार जो है ना उनको सांड के बैल के वो कौन सा बैल कहलाता है, कोल्लू के बैल की तरह जो है ना पेड़ते रहे। दिस आई नो कि पैसा दिया कैसे जाता है, खैर वो नहीं करना है। यू मस्ट बी फॉर्मल। आप अपने आप को 7 पीरियड लेकर के देख लो कि 7 पीरियड लेने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी। 5 घंटे अगर मुझे खड़े होकर के बोलना पड़े तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने आपसे चेयर नहीं मांगा है, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं चेयर लूंगा, ये भी पता है मुझे कब लेना है। अभी आपने शायद गेस नहीं किया होगा, आई वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ द पिलर। कुछ देर में बेंच के पास भी खड़ा था, इट वॉज माई सपोर्टिंग। सो अगर आप उन्हें ब्रेक नहीं देंगे, they will not be fruitful. Their teaching will not be fruitful. So after 3 period continuously, there must be a break. ये उनका हक है, इसे मत छीनिए। To every of the management. Okay, sorry. Suppose that मैं नर्सरी बच्चे पढ़ा रहा हूँ और इतने में मुझको राइटिंग दूंगा 25-30 बच्चे को, तो मेरे कमर का क्या हालत होगा? तो आई कैन सेट द पोडियम ताकि स्विंग पोजीशन में आराम से लिख सकूं और देते चलिए। यस सर, क्लासरूम में चाहिए। ये सारी पॉइंट्स इसके ऊपर फीचर शो करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। I will note it down. Yeah, sure sir. I'll give you the experience of this. एक क्लास में 60 बच्चे को ठूस दिया। I know this is the worst type of management. क्लासरूम का रेशियो बना है कि 30-40 रखना है, 30-40 ही रखना है। जैसे ही 30-40 रखना है, उसमें भी 1:5 दिया हुआ है। मतलब अगर 40 स्टूडेंट है तो उसमें 1.5 टीचर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही टीचर से 2 क्लास में मैनेज करवा लिया जाता है। इफ द टीचर इज एब्सेंट है, अच्छा सर 3 को भी देखिएगा और 4 को भी देख लीजिएगा। अच्छा सर 10th को कुछ दे दीजिए, आप थोड़ा सा बगल वाला 8 हेड्स को भी देख लीजिएगा। दिस शुडंट बी देयर। जो एडजस्टमेंट में होते हैं ना, उनको ये समझ में होना चाहिए दिस शुडंट बी देयर। अरे यार 30 से 40 को देखने के लिए 1.5 टीचर चाहिए, ये सीबीएसई के रूल्स में दिया हुआ है। तो वहां पर अगर 60 बच्चे को ठूस करके एक टीचर को दे दिया जाए, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, बददुआएं लगेगी मैनेजमेंट। आई मस्ट टेल दिस। सो स्टूडेंट पॉपुलेशन दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई नॉर्म्स। 30-40 सफिशिएंट है, उससे आगे जैसे होगा आप क्लास A, B, C कर दीजिए और टीचर की संख्या बढ़ा दीजिए। पैसा बचाने से कोई लेकर के नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट स्थिति क्या है कि मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती है कि कोल्लू के बैल की तरफ पेरना है, वहां पर टीचर जो है आपको 100% फुल आइडिया नहीं देंगे। वो भी आएंगे, 40 मिनट का पीरियड देंगे, चले जाएंगे। बच्चों ने क्या सीखा
ये तो मैनेजमेंट जान ही नहीं पाएगा। बाद में चाहे कुछ के सर मैं क्लास में थी ना, मैं क्लास में था ना, मैंने होमवर्क दिया ना, आप देखिए ना, मैंने चेक किया है ना, मेरा सिग्नेचर है ना, एवरीथिंग इज देयर। सो एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे हैं। सो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज शुड बी according to the classroom management and the teacher profile and class teacher ratio, ये दोनों भी ये भी देखना होगा। Try different strategies to see if they work for you। अगर इसके अलावा भी कोई strategies है जो आप अपना सकते हैं, just implement it for a better management। और in management is focusing towards the teachers facility। स्वाभाविक है उनको बढ़िया मिलेगा, रिमार्क्स बढ़िया फीडबैक मिलेगा, ये पक्का है। टीचर खुश तो बच्चे खुश होंगे ही होंगे, और टीचर खुश नहीं है तो बच्चे कहाँ से खुश होंगे? नोबडी नोस। द टीचर इन द क्लासरूम, पहला तो प्रॉक्सिमिटी है, सेकंड है एप्रोप्रिएसी है, थर्ड इज द मूवमेंट है, फोर्थ इज द अवेयरनेस है, फिफ्थ इज द गिविंग इंस्ट्रक्शन है, एंड सिक्स्थ इज द टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑन देयर इश्यूज इन पोलाइट मैनर्स। कई बार क्या होता है, सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं। कई बार बच्चे ने उठा और पूछा सर इसका क्या है, बैठ जाओ, बार बार एक ही क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूरे से आता है, बाकी लोग नहीं है। सो डू नॉट बी इरिटेटिंग वन। यू आर टीचर, यू आर फैसिलिटेटर, एंड इफ यू विल इरिटेटेड तो पूछेगा किससे? घर में माँ बाप से तो पूछेगा नहीं, बिकॉज दे हैव देयर टीचिंग एवरी डे। पेरेंट्स कहेंगे ओह व्हाई डू आई सेंड यू टू द स्कूल, गो एंड आस्क योर टीचर। यहाँ पर टीचर ने कहा बैठ जाओ। डू नॉट डू दैट लाइक दिस, इट इफेक्ट्स देयर माइंड एंड फाइनली दे बिकम देमसेल्फ अलोन। दे बिकम, ये जो कोटा में सुसाइड होने के लगभग अटेम्प्ट आते हैं, ये क्लासरूम की वजह से आते हैं। भले ही वहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के इश्यूज बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कल के टॉपिक में एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा है, टू पे प्रॉपर अटेंशन ऑन द स्टूडेंट। सो इफ यू वांट टू स्टॉप सुसाइड अटेम्प्ट, आई नो यू मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड द इंटरेक्टिव वन, एंड दे आर देयर, दे आर, मेरा तो ये मानना है the students are paying for their questioning only। और अगर बच्चों में क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट ही नहीं है और आपने कुछ नहीं पढ़ाया। सो इट वुड बी बेटर व्हेन यू आर इन द क्लासरूम, जैसे ही आपने एक स्टेज खत्म किया, बच्चे से उठा के क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई got the words why like a diamond in the sky। यहाँ पर स्टार आर क्यों दिया गया है? पहले लाइन में स्टार है, स्टार से एंडिंग है, दूसरे लाइन में आर से एंडिंग है, फिर स्काई से एंडिंग है और वाई से एंडिंग है। बच्चा समझ नहीं रहा है, ये आप भी जानते हो कि बच्चे को नहीं पता है, लेकिन पहले आप जानोगे तब तो कि यहाँ पर राइमिंग वर्ड भी होते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स है, और आगे जाकर के जो इंग्लिश के टीचर वो अच्छी तरह से बताएंगे कि सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, अल्टरेशन क्या होता है, एक्सेट्रा। देयर आर मेनी पैरामीटर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, 34 है टोटल। अगर बच्चे वो जान जाए ऑटोमेटिक दे विल स्टार्ट राइटिंग अ पोएम इन अ प्रॉपर वे। सेकेंड इज गिविंग इंस्ट्रक्शन। गिविंग इंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी before beginning any of the chapter, before beginning any of the lesson। आपको जो पढ़ाना है, तो जैसे अभी मैंने कहा कि झांसी की रानी के बारे में कुछ बताइए, तो झांसी की रानी के बारे में जो डिटेल्स होना ये बताना पड़ता है वहाँ पे कि सन 57 में क्या हुआ था, ये 57 कौन सा है, 1757 है या 1857 है। शेपोए म्यूटिनी के बारे में आपको उस जगह पे बताना पड़ेगा, और वीर कुंवर सिंह वहाँ पे आएंगे। इस तरह के कुछ एक नाम है जो आप एडेड होंगे, वो हिस्ट्री टीचर जो है बेटर एक्सप्लेन करेंगे। इवन आई एम इंग्लिश टीचर, फाइन, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज संस्कृत, बट बाय लक आई एम इंग्लिश टीचर। क्वेश्चन इंग्लिश टीचर दे विल स्टैंड अप। आर यू इंग्लिश टीचर? आर यू? एंड यू? You too, actually।
you are teacher of English, you are not English teacher. Am I right? You are teacher of English, you are not English teacher. English teacher मतलब you have been born in England. Right? So we teach subject actually, so we will be called teacher of English. एक मैंने बार दो बार रिपीट भी किया कि being an English, I am an English teacher. I am teacher of English. Please sit down. Sorry. हर एक चैप्टर में आगे में कुछ दिया हुआ है विस्तार से या अबाउट दिस. सो अबाउट द चैप्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टीड ऑफ टीचिंग द कंप्लीटेशन. अब कभी भी पूरा पढ़ाना नहीं है, ये भी आप अपनी माइंड में रख लो. नेवर कंप्लीट अ चैप्टर बाय योरसेल्फ, मेक इट कंप्लीट बाय द स्टूडेंट. गिव देम द ब्रीफ. एक दिन पहले बता दो कल आप लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. अभी जैसे अभी क्लास 10th में मुझे 9th में पढ़ाना है, 10th में पढ़ाना है इफ आई वर यू. सिर्फ एक ही चैप्टर शायद बचा हुआ है, ठीक है, वो पढ़ाना है. मैंने पहले बता दिया इसमें एक बाप और बेटे के बीच में जो है डिस्कशन है और वो बताता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो क्या क्या होता है एक्सेट्रा. सो बच्चे क्या है, दे विल हैव द क्वेश्चन. अरे पेरेंट्स भी अपने फादर भी अपने बेटे से कोई क्वेश्चन करेगा, क्या क्या कर सकता है. एंड मैंने कहा है कि उनको पॉइंट आउट करके आना है. अब वो पॉइंट आउट करेंगे कहाँ से, किसी भी नोट्स में नहीं दिया हुआ. आई हैव सर्च्ड इट ऑन गूगल. गूगल में जितने भी आते हैं आगे वाले 10 को तो मैंने सर्च कर लिया वेबसाइट को, उसमें कहीं भी पॉइंट वाइज करके नहीं दिया गया है. स्वाभाविक है 10 की जगह 11 पे तो जाएगा नहीं, इतना टाइम उसके पास भी नहीं है. अब वो पॉइंट लिखेगा कहाँ से, तो या तो 10 को रीड करे या फिर सिंपली उस चैप्टर को रीड कर ले. स्वाभाविक है उसके पास पॉइंट आ गया. सपोज यू आर गोइंग टू टीच द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन पढ़ाया आपने इंग्लिश टीचर. Okay, please explain. What is the poem? Actually, in that poem, it is telling that the poet is explaining that in which way we have to go. Means one way where all the peoples are walking through, and another way where that way is not used by anyone. So, how that poet explained that much of this. Which we have passed ourselves. क्वेश्चन आपने यहाँ पर सिंपली डाइवर्सन के बारे में बताएंगे कि whenever you will be see the next poem we are going to read is by Robert Frost. कि जब तुम 10th में जाते हो और 12th के बीच में रहते हो, when you are in 10th और 12th के बीच में रहते हो, फिर तुम्हारे ऊपर 2 तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं. पहला कि तुम्हें फोटोग्राफर बनना है, दूसरा तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी तरह एक टीचर बन जाओ. अब तुम्हें करना क्या है, इस दुविधा में जो आओगे तो यहाँ पर पोजीशन पड़ता है कंफ्यूजन का, डाइवर्शन का, डिसअपॉइंटमेंट का, और सबसे अच्छी बात है कि कर्तव्य विमूढ़ होना. आगे कुआं पीछे खाई कि मैं अपनी मानूं तो पापा पैसा नहीं देंगे और पापा की मानूं तो फिर मैं अपनी शौक को पूरा नहीं कर पाऊंगा. आई नो तो एक भी इसी डाइवर्सन में है. वेदर यू चूज रोड 1 or road 2 and finally he choose road 2 because road 1 has been passed by several people. इतना ही है, इतना कह दिया वह तो पूरा का पूरा उसके माइंड में पड़ा हुआ है. फिर उससे पूरा का पूरा पैसेज पढ़ाने का सॉरी पूरा का पूरा पैराग्राफ से नहीं ना स्टेंजा होना चाहिए. बच्चों को भी कहिए, तैयार कीजिए कि जैसे ही मुझे मैं कहीं फंसूं तुरंत तो बोल दो, लेकिन वो भूलेंगे तो भी ना when they are ready. So, giving instruction before coming to the chapter, coming to the lesson, you must give them instruction and awareness. Whatever you have completed or whatever you are going to complete, they must be aware. And before making them aware, you must be aware. ऐसा नहीं हुआ कि मैनेजमेंट को चाहिए लेसन प्लान तो उसको लेसन प्लान फेंक दिया. बच्चों को चाहिए चैप्टर कंप्लीशन, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लेकिन पल्ले दोनों में से किसी के नहीं पढ़ा, इवन मुझे भी नहीं पढ़ा. सो स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो अवेयरनेस होना चाहिए दैट द चैप्टर मस्ट बी कंप्लीटेड. अब जैसे फिजिक्स में आ जाए तो पीएच फॉर्मूला एक जगह होता है, राइट ना सर, पीएच फॉर्मूला होता है या फिर और जो कुछ भी होता है. अब वहां पर बच्चे कर ही ना पाए
तो फिर फायदा क्या है? या रटवाने से कोई फायदा है? मैंडलिक को मैंने भी रटा था अपने 10th में, लेकिन याद नहीं है। लेकिन हवाओं हवा में बसंती हवाओं ये याद रह गया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद आ गया है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, ये आज भी माइंड में घूमता है। इंस्टीड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू p by h, cos थीटा इज इक्वल टू b by h एंड टेन थीटा इज इक्वल टू p by b। इससे पहले वही आता पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, ये माइंड में आता है। तो बच्चे कुछ इस तरह से हर एक सब्जेक्ट मटेरियल को अवेयर हो जाए, इसके लिए हमें जो भी स्ट्रेटजी अपनानी है, दैट वी विल इमेजिन, वी विल क्रिएट, वी विल मेक अ डायरी फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर। कभी भी जरूरत पड़ा, अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, वो डायरी जो है वो अगर किसी के हाथ लग गई, फाइनली ही और सी विल बी बेनिफिशियल। मैं क्या करता हूँ कि मैं बच्चों से नोट्स बनवाता ही हूँ, लेकिन ग्रामर के लिए मैं करता हूँ डायरी बनाओ। जो 8 में पढ़ाया वो मैंने 9 में नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे बुक किसी भी पब्लिकेशन का चले। जो 9 में पढ़ा दिया मैंने 10th में, तो उसका एक चैप्टर भी टच नहीं करूंगा, वो तुम जानो। हाँ, टेस्ट में लूंगा, लेकिन टेस्ट लेने के पहले अगर टेंस का टेस्ट लेना है तो मैं पहले उन्हें वर्ब वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट। एक मैंने कहा कि वी मस्ट नॉट बी चेयरपर्सन, वी मस्ट कीप मूविंग। आप मूव करते रहोगे ना, आपको ये पता चलेगा बैक बेंचर कर क्या रहे हैं, ठीक है, और किन के माइंड में चल क्या रहा है। अभी बीच में मूवमेंट में क्या करना है, किसी एक को खड़े करना है, ओके टेल मी वेयर आई वाज। जैसे आपने पूछा, अगर उसका अटेंशन क्लास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाकियों का अटेंशन तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, टारगेट किसी को दो को बनाना है, लेकिन पूरा का पूरा क्लासरूम मेरा टारगेट है कि दे आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन माय वर्क। नेक्स्ट इज द एप्रोप्रिएसी, और फर्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी। कौन बताएगा एप्रोप्रिएसी क्या होता है? इज एप्रोप्रिएसी, हमें पूरा नहीं पढ़ाना है, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमें अप टू मार्क पढ़ाना है, ताकि बच्चे पढ़ना शुरू करें। लेकिन जितना जरूरी है उतना तो देंगे ना आप, जितना जरूरी है मतलब अप्रॉक्स टीचिंग शुड बी योर की स्किल, की पॉइंट, योर द कंप्लीट पैरामीटर। सो इफ यू आर एप्रोप्रिएट, नॉट फुल, मैं फुल की बातें नहीं कर रहा हूँ, इफ यू आर एप्रोप्रिएट to the training session or to the classroom lesson session, of course they will understand everything. अभी जैसे when this session will be ended, आप सबके माइंड में और कुछ रन करे या ना करे, लेकिन हवा में, और ये झांसी की रानी जो है रन जरूर करेगी, ये पक्का है। ऐड करते हैं सतपुरा के घने जंगल, ये भी बड़ा अच्छा कविता था। अच्छा, ये तीनों मैंने क्यों बोला? कविताएं तो बहुत सारी थी। कैन समबडी गेस व्हाई डिड आई टेक द नेम ऑफ दीज 3 टाइटल्स ओनली? झांसी की रानी, बसंती हवा एंड सतपुरा की। दिल से पढ़ा और बहुत दिमाग से याद रखा, यही मेरे ऊपर भी है। मैं इसको बहुत दिल से पढ़ा था, मुझे याद है, बट अभी रिवाइज में नहीं है, थोड़ा भूल जाता हूँ। एक्चुअली सर, मेरे इन चीज़ों को याद करने के पीछे है, या एक्सप्लेन करने के पीछे, हमेशा पॉइंट करने के पीछे, ये सारी वो कविताएं जो सबसे लंबी हुआ करती थी, याद ही नहीं होती थी एक बार से। उसी तरह वो दुर्योधन और कृष्ण का संवाद जो है, क्या नाम है, स्टार्टिंग लाइन क्या उसकी? बट इज स्टार्टिंग लाइन। अभी तो आशुतोष राणा भी और वो मुनस्सिर राणा भी जो है इस पे पूरा का पूरा सेशन दिए हुआ है, नहीं याद आ रहा है? ओके, एंड तक जो है हम लोग पूछेंगे, ये होमवर्क रहा अभी के लिए। शो एप्रोप्रिएसी एंड फाइनली प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी? Surrounding.
ठीक है, इतना अपने टॉपिक को समअप कर देंगे। पहले समअप करने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने की बातें नहीं कर रहा हूँ। समअप कर देंगे कि बच्चों के माइंड में वो टॉपिक जो है वो परमानेंट फिक्स हो जाए। नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान। ये हम लोगों को, हर एक टीचर को ये इम्पोर्टेंट भी है। सो यू मस्ट क्लिक प्लान, जैसे लेसन प्लान करते हैं उसी तरह क्लासरूम को कैसे अच्छी तरह से मैनेज करना है ये प्लान होना चाहिए। देखिए हम लोग ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चे जो नीचे पढ़ रहे हैं इन द रूम, लेकिन शांत है, उनकी आवाजें यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। स्वाभाविक है, इसके लिए कुछ ना कुछ पहले से प्लान तो किया क्या होगा, चाहे उसको थ्रेटनिंग ही क्यों ना बोल दे, लेकिन इट हैज बीन बेटर प्लान कि बेटा अगर ये कभी साउंड आ गया ऊपर से नीचे तक समझ लेना, इतने में काम हो जाता है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और उसे भी नहीं हो, अगर दिख जाए एक को पढ़ करके 10 बार उठा बैठा करवा दो या फिर एक आध स्ट्रिक्ट सुना दो, ओवरऑल बाकी को जरूरत ही नहीं है। फर्स्टली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ डे। आपका हर एक दिन स्पेशल है, माइंड इट। आप हर दिन जो क्लास में आते हैं, हर दिन एक नए रवि को लेकर के आइए। माय नेम इज रवि, सो आई एम टेलिंग यू ब्रिंग अ न्यू रवि एवरी डे, जो एकदम फ्रेश है, एकदम प्लान्ड है, एकदम प्रिपेयर्ड है, दैट ही इज गोइंग टू एवरीथिंग व्हाटएवर ही हैज। ये जैसे आपके माइंड में आएगा, यू आर गोइंग टू गिव योर 100%। सेकेंड इज असेस द सीटिंग चार्ट अहेड ऑफ टाइम। हर दिन सीटिंग चार्ट भी थोड़ा सा चेंज करना है। बैक बेंचर को हमेशा बैक बेंचर बना के नहीं रहना है ना, हाँ रोटेट करना है, इसको रोटेशन कहते हैं। क्लासरूम रोटेशन हर हाल में होना चाहिए, चाहे वो जूनियर क्लासेस हो या फिर सीनियर क्लासेस हो, इट डजंट मैटर। मतलब सीनियर क्लासेस में क्या होता है, बॉसगिरी, ये मेरा शिफ्ट है, बैठ के दिखा दूं, यहाँ तक कि अरे मजाल है कि कुछ दे, वहां पर नाम लिख दिया जाता है, दिस सीट बिलोंग्स टू मी, प्रॉपर्टी नहीं। इस माइंड को हटा देना है कि ये तो स्कूल भी तुम्हारा नहीं, कल के डेट में तुम किसी और स्कूल में जाओगे, बट यू मस्ट बी डाउन टू अर्थ। एक वर्ड बड़ा अच्छा आता है हम लोगों की प्रोफाइल में, बायोडाटा आप जब भी बनाते हो, सीवी बनाते हो, तो आता है डाउन टू अर्थ। वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, जहाँ जैसा मौका मिला उसके अनुसार चल दिया। अब यहाँ पर मैं ये सोचूं कि भैया नाश्ता जो है मेरे रूम में आएगा तभी मैं करूँगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी। अच्छा ठीक है, कैमरा आएगा तभी शुरू करेंगे या जो कुछ भी है, नहीं आया तो चलो बढ़िया नहीं है चलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी डेडिकेटेड, डिवोटेड, प्लान्ड एंड डाउन टू अर्थ, दैट यू आर गोइंग टू express yourself according to the environment. Third is greet students as they enter the classroom. Greet students as they enter the classroom. अभी मैंने बहुत अच्छा देखा when some of the ladies had been sitting over their sofa, जैसे नई लेडी ने इंटर मारा, गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैं भी खड़ा था, गुड मॉर्निंग करने के लिए मुझे बुरा लगा था क्या, अरे सूट बूट तो मैंने भी पहना था, टिपिकल। अरे ठीक है सर, आप नए दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो लिया होता। मैं भी वेट कर रहा था कि कोई तो बोले, बाकी तो मैं बोल ही दूँ। हाँ, यू हैव टोल्ड। और एक दो पता नहीं कौन टीचर गई थी जो बार बार, हाँ दो बार रूम में भी गई थी, है ना। सी ओपन द डोर, क्लोज, ओपन द डोर, क्लोज, एंड माइंडली सी एक्सप्लेन दैट आई थॉट दैट दिस इज द स्टाफ रूम एंड सो ऑन। सो कई बार चीजें अंडर हो जाती है, बट वी मस्ट एक्सेप्ट। आपके घर में शादी है, अगर कोई नया मेहमान देखे, आप पूछिए उनसे, भैया किसकी तरफ से हो, दूल्हे वाले की तरफ से या दुल्हन की तरफ से, पता चला वो किसी और की तरफ से, ये पूछने में क्या जाता है, अगर प्लेट की कीमत है तो। सो ग्रीट स्टूडेंट एज दे एंटर द क्लासरूम। जरूर नहीं कि बाद में स्टूडेंट ही आपको गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीचर बोले, ठीक है। कभी कभी आप चेंज कर दो, जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर देखो बच्चों का जो है कुछ नहीं भी बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल देंगे। सो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज क्रिएट एन एजेंडा फॉर ईच डे। हर दिन के लिए आपको एक बेटर प्लान करना है। एक स्टोरी आप सोच के आओ,
ठीक है, एक ही स्टोरी हर एक क्लासरूम में जो है ना उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग कर दो, मजा आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इतना मजा आएगा कि यू विल नॉट इमेजिन कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा आपके क्लासरूम सेशन पे, बच्चे आपकी तरफ प्रॉपर अटेंशन में आ जाएंगे। को मैनेज करना, अरे एक घर को मैनेज करना कितना टफ है ये सारे लोग जानते हैं, बीइंग अ फादर और बीइंग मदर या फिर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। तो स्वाभाविक है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना किसी एमडी के लिए या डायरेक्टर के लिए, मैनेजर के लिए कितना टफ होता होगा। इन पैसों की व्यवस्था कहाँ से होती होगी? जरूर नहीं कि हर बच्चा जो टाइम पे पेमेंट देता है। रिमेंबर 60% ही बच्चे पेमेंट करते हैं, 40% तो खा जाते हैं। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे करते करते जो है ना पूरा का पूरा सेशन निकल जाता है। अंत में मजबूरन या तो बच्चों को निकाल देना पड़ता है या फिर कंप्रोमाइज कर देना पड़ता है, ठीक है अगले सेशन में देगा, ये भी करना पड़ता है। सो जितने भी स्कूल रूरल एरिया में है वहाँ पर 60% है, इसको आप इग्नोर कीजिए एंड यू जस्ट गिव योर बेस्ट कि मैनेजमेंट आपको 1 रुपया भी तो दे रहा है ना। I remember the value of 1 rupee when I was in Delhi. I was working in G Capital, ठीक है, और उस समय मैं नया नया गया ही था और उस समय वो डब्बा वाला फोन हुआ करता था जिसमें एक सिक्का आप डालेंगे तो आप बात कर पाएंगे। एक सिक्का नहीं था, I could not communicate with my father, और फिर कितना बड़ा इश्यूज हुआ ये मैं ही जानता हूँ। So each rupee which you are going to be paid is a debt on you. आपका वर्क जो है वो बात की बात है, बट each rupee is a debt on you and for this you have to repay. और रुपया आप कहाँ से करेंगे? To give your best. बोल जाओ कि आपको पिछले महीने जो है 2-3 मतलब CL के अलावे जो है 2-3 जो है डिडक्शन हो गया है, how get it? इस महीने उसको बेटर करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस टीचिंग एंड फैसिलिटेटिंग। यहाँ पर आ गया बैलेंस टीचिंग, आपको पढ़ाना तो है ही, और पढ़ाना क्या है? अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द पोर्शन। आपको साल भर में पूरे साल का एक एजेंडा बना लेना होता है कि इस महीने में इतना खत्म होगा तो जाकर के दिसंबर जनवरी तक जो है हमारा पूरा का पूरा सेशन फिनिश हो जाएगा और रिविजन भी करवा देंगे। चैप्टर पढ़ाना टफ तो नहीं है, फाइनल चैप्टर पढ़ाना टफ नहीं है। किसी भी बुक में 12 से 15 ही चैप्टर है। अगर आप एक महीने में 2 चैप्टर भी पढ़ाते हैं तो वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप छुट्टियों को साइड कर दीजिए, हर महीने का 3 चैप्टर, मतलब आपका जो सिलेबस और पोर्शन जो है कंप्लीट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा मंथ खत्म हो जाता है, एक चैप्टर भी खत्म नहीं हो पाता है, बिकॉज वी आर नॉट इन द माइंड ऑफ टीचिंग ओवर देयर। बहुत सारे स्टेज में हम लोग जा चुके हैं, मैं भी बाहर की बातें कर रहा हूँ बट आई एम ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट इज द सर्कुलेट द रूम। ये वही हो गया सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, हमेशा सर्कुलेट करते रहना है। कई बार क्या कीजिए आप कि अगर 1B का स्ट्रेंथ सेम है, 1C का स्ट्रेंथ सेम है, 1C को 1B में, 1B को 1C में जो है कन्वर्ट कर दीजिए। 9th वाले को 10th में बैठा दीजिए, 10th वाले को 9th में बैठा दीजिए। अरे क्लास तो 10th का ही है, लेकिन अगर एक दिन के लिए हमने सर्कुलेट कर दिया है तो फिर इट विल नॉट मेक इश्यू। एंड सर्कुलेट रूम का दूसरा मीनिंग भी है कि कई बार हमें क्लासरूम छोड़ करके बाहर के रूम में भी पढ़ाना चाहिए। सिट ऑन द वरांडा, मेक देम कंफर्टेबल। सैटरडे का दिन सबसे बढ़िया होता है सबके लिए, है ना। बच्चों को ले लो और ग्राउंड में आराम से बिना दरी के, बिना बोरे के, बिना मैट के जो है बैठा दो उनको। अरे कल तो कपड़ा साफ हो ही जाएगा, तो संडे है, आगे 2 दिन छुट्टी होने वाली है, उस समय भी इस काम को कर सकते हैं हम लोग आराम से। नेक्स्ट इज फाइंड आउट सीटिंग अरेंजमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग। ये तो मैंने कहा ही कि जब हम रोटेट करते रहेंगे स्वाभाविक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्लासरूम में भी हाइट वाइज बैठा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो अपर हाइट के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट में बैठते हैं और लोअर हाइट के बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। ऐसा नहीं करना है, लोअर हाइट को लगभग आगे बैठाना है। फिर आप देख लो कि कौन ज्यादा समझ रहा है, जो समझ रहा है उसको थोड़ा सा पीछे बैठाओ और जो कम समझ रहा है उसको जो है आगे बैठा दो। नेक्स्ट इज बी इफेक्टिव व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शन। जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप इतना तो लाउड हो जाइए, आपके साउंड में इतनी क्वालिटी तो होना चाहिए दैट दिस मस्ट रीच टू ईच एंड एवरीवन। और इसके लिए सबसे बढ़िया है एक दूसरे को खड़ा होकर पूछ लीजिए,
I know, yes. Generally, my teachers, they are very knowledgeable, they are very effective, but sometimes I feel they are not well prepared for the class. Neither the lesson plan is comfortably made, neither the content wise they are ready, so they are not able to have 100% grip. How do you handle such things? Yeah, sure. It should be half day, but for students, for teachers, it should be full day. Half day के बाद एक मीटिंग बुला लीजिए, make a meeting, call a meeting over there, and in the meeting only, just give proper instruction in a common way. किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, स्वाभाविक है जो गलती कर रहा है वो तो माइंड मेकअप किया हुआ है कि नहीं, I was not over there. So when you will explain those all the points, they will be ready, and finally after the meeting, just make those teachers stop. The meeting was for you only. I know. Tell me where was the problem? What was the problem? Why you were not ready? Is there any यहाँ पर emotional approach भी बड़ा अच्छा काम करता है. I know. Do you have any family problem? पूछ लीजिए. कई एक टीचर के घर में प्रॉब्लम चलते हैं, so they are not ready. लेकिन क्या है, मजबूरी है कि पेट तो चलाना है, घर की जरूरतें भी बहुत सारी हैं, बाप नहीं है, अगर वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच हम लगा दें, पहले they will be familiar with you and they will be familiar with the classroom also. तो उन्हें एक बार उनको पता चल गया ना, where they had been lacking, you have noticed, you informed, लेकिन क्या है कि बीच में बुला करके जो है ना किसी पार्टिकुलर टीचर को ना बोल करके सबको गाली दे देना, वो भी अच्छी बात नहीं है. एक बार मेरे साथ हुआ था, I must not tell you the school name. I had newly joined. 7वां दिन ही था ये कि अचानक से मैनेजमेंट केम टू द स्टाफ रूम और तुम सारे टीचर जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, तुम लोगों को खाली पेमेंट से काम है, बाकी कुछ काम नहीं है. आई जस्ट लेफ्ट द जॉब. इवन जब वापस 8 दिन के सैलरी के लिए बुलाया गया, मैंने कहा कि आप जो पेमेंट है वो फलाने टीचर्स में बांट दीजिए. आई जस्ट टोल्ड द नेम. तो एक के बजाय सबको गाली देने से अच्छा है उस एक को पर्सनली बुला करके उसे हम पॉजिटिव वे में अप्रोच दें, इट विल बी मैनेज इजीली. प्रॉब्लम तो होगा सब. If the teacher is good, as you told him, the teacher is well knowledgeable, even sometimes they are not in the content, they are not with the lesson plans, so some problems, some issues is happening in their life. जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, and their mind is not over there, right? The next is कि मैडम आप ये साड़ी क्यों पहन के आए हैं, कल वो वाला साड़ी जो है ठीक नहीं लग रहा, तो ये ठीक लग रहा है. अच्छा सर, आज बड़ा बंधन क्या है, कोई खास बात, शादी में गए थे कल, एक्सेट्रा. इन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करना है. I know, because these are not the part of our teaching system or teaching session. फिर हैंडल डिसएग्रीमेंट. कई बार क्या होता है, क्लासरूम में एक ही बच्चा बार-बार क्वेश्चन पूछता है, बैठा तो दिया हमने, वो भी तरीका सही है, लेकिन क्या है, ओके, व्हाई डोंट यू रीड, व्हाई डोंट यू फाइंड द क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. तो फिर वन थिंग, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन पूरा का पूरा क्लास जो है वो क्वेश्चन से के डाल देंगे क्वेश्चन सेशन के लिए. अच्छा, डू वन थिंग, यू ऑल हैव दिस चैप्टर, you all just prepare the question inside one, and I will tell you the answer. ठीक है, बच्चा चैप्टर पढ़ा और prepare the tough question which I can answer. हो गया, उसके बाद वो answer your question, answer it yourself. जिसका बेस्ट आंसर आया उसको ये मिलेगा. काम खत्म. Problem they have created and answer they have made. नेक्स्ट एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट. अगर किसी को इग्नोर भी करना है तो बड़े अच्छे तरीके से करना है ताकि उसे बुरा ना लगे. यू आर डिसएग्री विद देम, बैठ जाओ. अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आंसर दूंगा. वेट, लेट माय लेक्चर कंप्लीट. ठीक है, मैंने इग्नोर भी नहीं किया. और क्लासरूम होने के बाद, खत्म होने के बाद अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, इट विल
मेक इश्यू, वो अपनी धुन में जो है बह जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेपर टीचर आने वाला है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है, काम करता हूँ। नेक्स्ट इज बी विलिंग टू गिव अ लिटिल टू गेट अ लॉट। अब दीजिए कम, लेना ज्यादा है। मैं सिखाऊंगा कम, सीखना ज्यादा है। ये पॉइंट्स मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे सिखाने करने के लिए कुछ है नहीं, है ना। सो वी विल गो थ्रू मेनी ऑफ द एक्टिविटीज। अभी जैसे सर पीछे से कह रहे हैं, सर सी द वॉच, मेरा टाइम क्या आएगा। कंट्रोल ओवर अननेसेसरी स्टूडेंट एंड टीचर टॉक है। स्टूडेंट और टीचर के टॉक के बीच में उतना ही टॉक होना चाहिए जो नेसेसरी है, जो उसके नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर शुडंट बी एनी टॉक। या Sir, the staff room. Yeah. And on certain point, he said harsh words. Yeah, sir. And you left the job. On the contrary, my experience, my management, my principals, say 15 years back, they were really harsh. They scolded me like student, but I never took the things on my ego. So now, what should I advise to my teaching staff? Was taking that particular thing on ego and leaving the service was appropriate, or you should have tolerated and adjusted with the management? I want a precise answer. Yeah, sure. आकर बोले कि तुम कुत्ते की तरह काम करते हो, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। I have my reason. I expect the management will never use. अरे मैनेजमेंट यही यूज किया था, मैनेजमेंट यही यूज वर्ड किया था, गधा यूज किया था। ठीक है, तुम सारे टीचर गधे हो। अब ये एक्सेप्टेबल है? मुझसे तो नहीं है, जो है वो है। फाइन, सो लीव दैट इश्यू। टेक ऑल द रिमार्क्स इन अ पॉजिटिव वे, ये होना चाहिए। जब तक आपके रेस्पेक्ट पे क्वेश्चन ना आ जाए, जहां पर आपको अपने रेस्पेक्ट को बेच करके पैसा कमाना पड़े, काम नहीं करना पड़े, पैसा कमाना पड़े, उसे छोड़ दीजिए। यू आर अ टीचर, यू हैव योर रेस्पेक्ट। आप जो टीचर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये ऐसे ही नहीं कहा गया था। हमें पैसा थोड़ा कम दे दो, लेकिन मुझे अगर इज्जत में कमी करोगे, हम काम नहीं करेंगे, सीधी बात है। बायकॉट दैट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु का रिस्पेक्ट तो मिलेगा ना, इट शुड बी देयर। इसी के लिए तो काम करते हैं हम लोग कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बहुत अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 10 बच्चे के पेरेंट्स आकर के कहते हो ना, प्रणाम सर, प्रणाम मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये तो काफी होता है। रेस्पेक्ट इज देयर। आई वर्क फॉर रेस्पेक्ट ओनली, मनी इज अ डिफरेंट थिंग। सर मनी क्या है कि आप यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच आई अर्न, इमेजिन कर भी नहीं सकते हैं। एक महामंत्री जॉब का जो है लाख सवा लाख रुपया मिलता है, वो तो मेरे लिए अलग है, और ये मैं क्लास गेट से करवा रहा हूँ। सो मनी इज नेवर अ मैटर फॉर मी। फॉर मी रेस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इसीलिए आज क्या है, मेरे जो डायरेक्टर सर है अश्विनी कुमार, वो आपके बाका में बैठे हुए हैं, परगरे रोजन में भी हमारा ब्रांच है एक तो, आर्या मिशन के नाम से ही है। वो पूरा का पूरा स्कूल मुझे दे दिए हैं कि जो पूछना है रवि सर से कहो, जो करना है रवि सर से कहो, उनको पसंद आता तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो, लेकिन ईगो नहीं है मेरा। आई एम फैमिलियर विद ऑल द टीचर्स। आज मैं उनके पिकनिक में उनके साथ नहीं हूँ, दे ऑल आर मिसिंग मी। मॉर्निंग में सबके कॉल आ गए, सर आप वहाँ पे हैं, जल्दी से मैनेज करके आ जाइएगा। मैंने सोचा भी था कि इफ इट विल स्टार्ट बाय 9 AM, so suddenly by 2 PM I will be free and I will join them. Let's see what happens. If they will be there and if I get even an hour, I will be there with them. Sir, A4 size paper चाहिए ना? ना ब्रीफ में जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं कि satisfaction and enjoyment in teaching are dependent upon willing students to operate. Satisfaction and enjoyment. The class must be interactive. जैसे अभी सर ने बात की कि कौन सा है? So you must go through the important questions, relevant
विद द चैप्टर एंड क्लासरूम लेसन, उनके थ्रू रहिए एंड द स्टूडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। किसी भी क्वेश्चन का मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता था, बट व्हेन सर हैड दैट थिंग्स, व्हेन आई जस्ट रिकॉल द कंप्लीट वर्ड, ऐसा नहीं है, वी वर्क फॉर द रेस्पेक्ट, और यहाँ तक तो सब सही है। देन द क्लास, इन द क्लासरूम the relation between teacher and student should be on the parameter of satisfaction and enjoyment. Whatever you are teaching, they must be satisfied, and they must be satisfied, and they will be satisfied only when they will enjoy your lesson or your lecture. Otherwise, it will make them boring. अगर आपको कुछ बढ़िया नहीं लगा होता, so you must not have your complete attention over here. मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, वही ना, सब कुछ लिख रहे हैं, इट मीन्स दे आर सम नेसेसरी पॉइंट्स। इवन इट्स माय ऑनर कि सर खुद बैठ करके लिख रहे हैं। और सबसे अच्छा वर्ड मैं बोलूं कि व्हेन आई टॉक्ड विथ हिम, एक बड़ा अच्छा टर्म सर ने यूज किया, पाए लागू। ये वर्ड माइंड में रन कर रहा हमेशा ही, जब भी मिलता हूं पाए लागू, आई नो। अरे बस इसी चीज, यही तो चाहिए हम लोगों को, बीइंग अ टीचर, और कुछ तो चाहिए नहीं यार। बच्चे और पेरेंट्स है पाए लागू कर दे, काम खत्म, बाकी पेमेंट तो कैसे लेना है वो मैनेजमेंट दे ही देगा, बाकी पर भी आप देगा। सेकेंडली, क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आर ऑफ हाईएस्ट कंसर्न फॉर बिगिनिंग टीचर्स। बिगिनिंग टीचर्स मतलब आपका पहला डे है, डेमो कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद तो मन में चलता है पता नहीं हम टीचर नहीं करेंगे। अब तो क्या है कि हम लोगों की कमान भी बच्चों के हाथ में दे दी गई है ना। सबसे पहले तो हम अपना सीवी अप्लाई करते हैं, सीवी सेलेक्ट हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर हमें जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद सैलरी भी डिस्कशन हो जाती है, फिर जो है हमें कहा जाता है ठीक है सर अब आप जो है क्लास 9th में जाइए, आप सीनियर टीचर हैं, अगर बच्चे हाँ बोलेंगे, फीडबैक अच्छा रहेगा, देन यू विल बी अपॉइंटेड। अरे भैया पहले वहीं भेज दो ना, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट नो इट वेरी वेल कि बच्चे सेटिस्फाइड हो गए, फिर बच्चे कहेंगे वही टीचर सही है, इससे पहले पैसे का बात करो। एवरीथिंग इज डन ओवर देयर। सो हाँ, अब पहले दिन क्या है कि यू मस्ट बी इंटरेक्टिबल। अब आपने आया और पढ़ाना शुरू कर दिया तो उससे नहीं होगी, आप पहले जान लीजिए कि आपके बच्चे हैं कैसे, किस मेंटालिटी के हैं। हर जगह की मेंटालिटी सेम नहीं होती है। ऐसा नहीं कि डीपीएस में पढ़ाने वाला टीचर जो है तुरंत आकर कैरियर मिशन में पढ़ाना शुरू कर देगा। इट विल बी अ टफ टास्क फॉर हिम। इट इज ईजी टू टीच इन डीपीएस, माउंटेसिसी एंड कार्मेल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट इन माउंट फोर्ड स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने एडुकेटिव नहीं है, उतने स्कॉलर्स नहीं है। जब पेरेंट्स ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे? नोबडी कैन थिंक। तो यहाँ पर सेटिस्फाई करना बहुत ही टफ टास्क है। वही कई एक अच्छे प्रोफाइल आते हैं कि सर मैं यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रिंसिपल तक का भी काम कर रहा हूँ। जब मैंने उन्हें 9th और 10th में भेजा तो फिजिक्स का PhD नहीं पढ़ा पाया, जहाँ कहीं भी हो सर, जहाँ कहीं भी हो सर, फिजिक्स का जैसे इंग्लिश का ABC होता है ना, फिजिक्स का PH होता है, PHYSICS। मैं अपनी जगह पर गलत नहीं हूँ। आप जो है हाँ, आप उधर देख रहे हैं कंटेंट पे, और मैं फिजिक्स का PH देख रहा हूँ, केमिस्ट्री का CH देखूंगा मैं, और इंग्लिश का EM। राइट। So classroom management issues are of highest concern for beginning teachers. बिगनर्स के लिए बड़ा ही टफ होता है। जैसे अभी मैंने आपको सीधे कह दिया कि ठीक है हवा में बसंती हो, ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं है, सबको आता है। लेकिन क्या है, यू आर थिंकिंग यार थोड़ा सुनाऊंगा, पता नहीं क्या इमेज बनेगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या रिमार्क्स आएगा। डोंट वरी अबाउट द रिमार्क्स। गीता में कहा गया कर्म कर, फल की चिंता ना कर। ठीक है, पेड़ खराब हो जाएगा तो पकेगा तो गिरना ही है, उसको पेड़ पे नहीं रह सकता है, चाहे नारियल ही क्यों ना हो। सो बी ड्यूटीफुल। इट डजंट मैटर वेदर यू आर ब्यूटीफुल और नॉट। नेक्स्ट इज
classroom management and effective instruction are key in ensuring student success and learning. अगर आपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, नंबर 1। दूसरा क्या है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो अगले दिन बच्चों के माइंड में रह गया, देन यू आर द बेस्ट वन। आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट इज यू सेट द टोन। यहाँ करने के बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर सबको मौका देंगे। सेट द टोन फॉर एवरीथिंग, बिहेवियर, प्रोसीजर, ग्रेड्स, वर्क एथिक, एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, चाहे वो बिहेवियर हो, प्रोसीजर हो, ग्रेड्स हो, वर्क एथिक हो, एटीट्यूड हो एंड एवरीथिंग, इसके लिए आपका एक टोन होना चाहिए एंड द टोन शुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। हर एक समय हम एक ही नहीं रहेंगे, है ना। एक बंदा माँ भी है, सॉरी एक बंदा बाप भी है, भाई भी है, चाचा भी है, टीचर भी है, भैया भी है ना, छोटा भाई भी है, कई जगह पे वो एम्प्लॉय भी है, कई जगह पे वो बॉस भी है ना। सो वी हैव टू प्ले ऑल द कैरेक्टर्स। सो फॉर एवरीथिंग वी हैव आवर डिफरेंट एंड फिक्स्ड टोन एंड अमंग द होल वी मस्ट बी डाउन टू अर्थ, वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। बीइंग अ टीचर वी मस्ट बी फैसिलिटेटर। बच्चे को कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं आता है। जैसे आपने ये कहा कि नहीं आता है, इट विल मेक अ डिफरेंट इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। सिंपली मैं सीधा तो इट मेक्स एन नेगेटिव इफेक्ट। तो वहाँ पे क्या करना है, अच्छा ठीक है, लेट मी कंप्लीट माई लेक्चर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको टाइम मिल गया या लग रहा है कि नहीं बच्चा आपसे पूछना चाहता है, आप उसे बुला लो और पूछ लो। अच्छा क्या पूछ रहे थे, पूछ लिया, एक बार इसे अपने से ट्राई करो ना, फिर तो मैं बता ही दूंगी। इट्स डन, वो खुद ही ट्राई कर लेगा। नहीं भी ट्राई करेगा, अगला पीरियड है, अगले में एंगेज हो जाएगा, इतने देर में आपको इतना टाइम तो मिल जाएगा दैट यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को एस्केप नहीं करना है। नेवर रन योरसेल्फ आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, फाइंड अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज टीच स्टूडेंट टू मैनेज देयर ओन बिहेवियर। स्टूडेंट को उनका बिहेवियर हमेशा सिखाना है, हमेशा एक मोरल वैल्यूज को उनके अंदर आना ही चाहिए, दैट दे मस्ट बी डाउन टू अर्थ, दे मस्ट थिंक देमसेल्व्स एज ए स्टूडेंट, एज अ लर्नर। हर चीज से उनको सीखना है, चाहे वो नेचर्स पे हो, ग्राउंड में हो या जहाँ कहीं भी हो, एवरीथिंग हैज कोड एंड कंडक्ट। Next is students learn to be on task and engage in the learning activities you have planned for them. Remember this, it is more natural to be off task than on. जो आपने पढ़ाया, remember it. आपने कर दिया, निकल गए, क्या बच्चे माइंड में रखेंगे? नहीं रखेंगे। एक बार उसे रिकॉल करना है। अच्छा, yesterday I had given you some of the tasks. So before beginning the this new session, I would like to know whether you are comfortable or not. Okay, just tell me. एक दो को पूछ लो। अब यहाँ पर क्या आपको पता है, क्लास में कौन ऐसे बच्चे हैं जो अपना होमवर्क नहीं करते हैं, उन्हें खड़ा करना है बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार। वो था ना, देयर वाज अ गुड पैरोडी इन हिंदी, करत करत अभ्यास से जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर करत निशान, बरदरा से जुड़ी हुई है। ये चीज़ें हैं, आपको बार बार किसी न किसी चीज़ को रिपीट करवाना होता है। और जो चीज़ें बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उनको तो आप बार बार रिपीट करवाइए, तरीका चेंज कीजिए। अगर सेम तरीके में करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को रोज़ रोटी खाने से पेट बढ़ता है, लेकिन बच्चे रोज़ रोटी पसंद नहीं करते हैं। वीक में एक दिन उसको पूरी या पराठा देना ही पड़ेगा। टीच एंड रीटीच रूटीन क्लासरूम प्रोसीजर। जैसे रीड था, उसी तरह टीच एंड रीटीच until you are not sure that students have learned your calculation. Model, provide examples for excellent student work and attitudes. अब यहाँ पर आज कल अच्छा ट्रेंड चला हुआ प्रोजेक्ट वगैरह का, तो हर एक चीज़ के लिए एक प्रोजेक्ट दे देना है। द रोल नॉट टेकन पढ़ाया, अच्छा ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कैरेक्टर जो इसमें पूरा दिया हुआ नहीं है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख करके लाना, गूगल तो सर्च करेगा ना। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमको पता है कि लिखोगे कहाँ से, गूगल से लिखोगे ना,
what should be your own. अगर मुझे किसी भी साइड का जो है वो पैरा मिल गया फिर मार्क्स कट जाएगा। बच्चे अपने को कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करेंगे एंड डू नॉट कट द मार्क्स। अगर बच्चों ने ठीक ठाक लिखा है सो आप मार्क्स नहीं काटना है, लेकिन फुल मार्क्स भी नहीं देना है। एंड डोंट गिव फुल मार्क्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स जो है उसमें डिडक्ट करते रहिए। इससे बच्चों का क्या होगा, मोटिवेशन थोड़ा सा और ऊपर अपग्रेडेशन की तरफ जाएगा। अदरवाइज दे विल बी सेटिस्फाइड। अरे 5 नंबर ला दिया, क्या चाहिए। जहाँ 2-3 चीज़ों में उसे 5-5 आया फिर उसका जो है ईगो बन जाएगा। सो ईगोइस्ट भी नहीं बनना है। नाउ वी हैव वन मोर टिप। ये जो क्लिप है ये क्लासरूम मैनेजमेंट से कोई रिलेशन जब नहीं एक रखता अच्छा है। टीचर लाइफ की लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद आती है। यही सोच के यहाँ आता हूँ कि आज मेरे टीचर से ज्यादा कुछ और सिखा और हर रोज फेल हो जाता हूँ। ₹300 हुए सर। ये लो। छुट्टा नहीं है सर। तो भाई छुट्टा है? नहीं है सर। कितना कुछ करने की कोशिश की, पर अगर कोई बार बार सिखाने पर भी भूल जाए तो शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। लाइन लगी है। हाँ तुम खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हेलो सर, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप काफी परेशान लग रहे हैं। कभी कैश की टेंशन, कभी छुट्टी की चिड़चिड़। अब कैश की जगह अपना कार्ड यूज कर सकते कहीं भी। मैं सिखाऊं? अब अपना एटीएम पिन डालिए। याद रहेगा ना सर? कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ में लेसन दे जाए तो वो जिंदगी भर याद रहती है। थैंक यू। लाओ मुझे दे दो। नहीं दे दो। अजब प्रेमचंद की कहानी में मैंने सुना, उसके बारे में तुमने क्या किया? Did you enjoy the clip? आपका उस ब्लैंक पेज है, उसे अपने वर्ड्स में 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। एक सुटेबल टॉपिक। You have 2 minutes. Your name should be mentioned there. Question, you have seen the clip now? You have to write. जो वीडियो अभी आपने देखा उस वीडियो के बारे में 30 से 40 वर्ड में अपनी भावनाओं को लिखना है और जो भी आप लिखेंगे उसका एक टाइटल दे दें। ओके, प्लीज ड्रॉप योर पेन। या सो प्लीज जो आपने लिखा वो पढ़ेंगे। एक शिक्षक कई दिन से क्लास दे रहे थे।
क्लास ले रहे थे, वो विद्यार्थी एक विद्यार्थी था जो कि उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन ये देखकर शिक्षक परेशान हो गए कि ये क्यों नहीं मतलब ध्यान दे रहा है। Next year. Before a few minutes, I have seen on the boards, TV, then I will discuss about the topic. A person who has no cash in his pockets. Sure, at present time there is a digital online system. Then we use online payment system. If we do not know how to use online payment system, and we have to learn how to use online payment system, then we will use online payment system. So it is very necessary in our life. We should learn how to use payment system. Anyone else? This video clip, I was just right here. The title of this video, story, Age of Learning. And the people have to learn each and every moment of our life, because everything does not know anyone's of the peoples and about the new technology, because somebody in modern peoples मीन्स पहले के जो व्यक्ति थे वो कुछ अभी डिजिटल जो यूज हो रहा है प्लेटफॉर्म उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, बट हमारे न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं है पता, तो उसके सीखनी चाहिए। सीखना हर एज जो है ना सीखने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि मेरी एज ऐसा हो गया, मैं 50 का हूँ और मैं 14 इयर्स के बच्चों से ये चीज़ें सीखूंगा या 5 इयर्स के बच्चों से सीखूंगा। तो एज ऑफ लर्निंग ये सिखा रही था, इसका मॉरल स्टोरी यही था, एज ऑफ लर्निंग जो हमें सीखनी चाहिए इनके बारे में। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एज ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास नॉलेज है, बट इन बच्चों से मैं क्या सीखूं, ऐसा नहीं। इसलिए Now we are learning about M letter. M. इसका मेन था सीख। हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, न्यू जनरेशन है, नया नया चीज़ आते रहता है, तो मुझे सीखना चाहिए। इस क्लिप से यही दिखाया गया कि जो पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू। The topic I am giving is generation difference. The teacher of the old generation in the video clip, he has huge amount of knowledge. He teaches children and he is more experienced. But now this new generation, they are experienced in technology. They always go into the technology. They take all the knowledge from the technology only, because this online. They always go online. So we learn that learning has no age. You can learn, you can get knowledge from a small child also. Thank you, sir. Okay, you don't teach me okay. Anything, you should share your problems with others. He may be your student or maybe your son or daughter, because there is no limitation of knowledge. वो कैशलेस, चूंकि ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कहना था। इस चीज टॉपिक में दो चीजें थी, एक तो whatever we are learning, and another thing
जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं, वो कैशलेस, वो कैशलेस, वो कैशलेस। इसमें वो टीचर उस बच्चे की एक्टिविटी को भी देख रहा है। जो बच्चा जब वो टीचर क्लास में एंट्री करता है, वो अपने कान में ईयरफोन लगा लेता है और ईयरफोन लगाकर अपने टीचर को इग्नोर कर रहा होता है और टीचर उसे देखकर कुछ भी नहीं कहते। वहाँ पर टीचर उसे केवल और केवल माफ करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो टीचर जब कहीं मुसीबत में फंसे हुए हैं तो वो बच्चा अपने टीचर को भी वॉच करता है कि हमारे टीचर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो अपने टीचर से पूछते हैं, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, और प्रॉब्लम उनके पास आती है कि उनके पास छुट्टा नहीं होता और ये समस्या बार बार उनके पास हो रही है। उस स्टूडेंट ने अपने टीचर को हेल्प किया, उनको सिखाया कि हम किसी और भी दूसरे मेथड से पेमेंट कर सकते हैं और उनके टीचर ने उस चीज़ को खुशी खुशी अपने स्टूडेंट से सीखा। तो इस टॉपिक में दो चीज़ें, एक तो प्रधानमंत्री जी की अपील और दूसरा उस टीचर के कितने से छोटे बच्चे से सीखने का, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं था, वो खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। Thank you, sir. And now, as a teacher, we keep upgrading our knowledge as life keeps demanding with newer level of knowledge. So the student itself becomes a teacher for the teacher. I accept all the way that you have answered. These are all right. We accept all the mode of learning. जहाँ से जो भी सीखने को मिले, सीख लीजिए. Never have ego or attitude that what you are. Think yourself as a learner. You will learn everything, and everything will be according to you. Now the thing is that we have to go through case study 2. आपको 4 केस स्टडी मिला हुआ है, इसमें आपको केस स्टडी 2 बनाना है। हाँ, आपको उसका आंसर देना है केस स्टडी 2, नॉट 1। पेज नंबर 2 is 12:18 by my watch. By 28 I will collect. है वहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। I'm explaining, लेकिन वो अच्छा नहीं है। Miss Hall had ever taught throughout class. He continuously talked to girls and teased students sitting near him. वो हमेशा सबको परेशान करता था। He was never attentive to the teacher. He made inappropriate and sarcastic remarks in response to almost anything Miss Hall said. Miss Hall कुछ भी कहे, वो उसको दूसरे तरीके से ले लेता था, and he used to surpass the comments. When confronted by her, Jeffrey grinned charmingly and responded with exaggerated courtesy to the delight of the other student. बाकी स्टूडेंट को हंसाने के लिए वो हमेशा मिस हॉल पे जो है हमेशा कमेंट मारता था। Response: Miss Hall tried setting limits with Jeffrey. She sent him to the detention room on several occasions, but he did not show up. She also sent him to the vice principal, but Jeff had charmed him and no remedial action was taken. टीचर ने, मिस हॉल ने उसे डिटेंशन रूम में भी दे दिया, पनिशमेंट भी दिया, वाइस प्रिंसिपल के भी पास दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मिस हॉल ने कुछ प्लान किया अपने स्टूडेंट को सुधारने के लिए। अब क्या प्लान किया? यू आर मिस हॉल, राइट योर प्लान, हाउ यू विल मेक हिम ऑन योर वे।
better grapple than आप जिन चीजों को चार बार पढ़ करके समझेंगे, वो उन चीजों को एक बार में अगर पढ़ लिए तो आपसे बेटर समझेंगे. That's the fact. So they are going to be a better learner in comparison of your thinking. Maybe he is making some excuses or खासकर वो backbenchers जो है ना, they have a number of excuses. लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं से नंबर अच्छा आता है, and we are surprised. How is it possible? So we have to be fair, we have to be firm, and we have to be consistent. They can spot inconsistencies a mile away and take joy in calling you out on it. हमारा बहुत अच्छा कब आता है जब अभी as like you all are not knowing, कोई ऐसा है जो मुझे यहाँ से पहले भी जानता हो? Anyone? Okay, nobody knows. लेकिन तिवारी सर को 2-3 लोग जानते हैं यहाँ पे. Suddenly there was एक ये सर आते हैं जो people आए हुए थे, and they have been familiar with both of them. सर कहाँ से यहाँ? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्शन तब है not the payment or salary which we are getting by to teach. आज से 10 साल के बाद आपसे आपका स्टूडेंट आपको ग्रुप में कहीं देगा और अपना हेड करके नहीं सुना. अरे सर सुनिए, मैडम आप ही को बोल रहे हैं. गया पैर को छू के प्रोग्राम किया, बस समझ लो आपकी गुरुजी को आपको मिल गई. मीन्स ये आप गिवन और गिवन इम्प्रेशन और योर रिस्पेक्ट वही चीज है. आप आई बातें करते चाहे कॉलिंग आउट ऑफ इट. अगर वो अटेंटिव नहीं था तो वो आपके क्लासरूम टीचिंग को कभी एंजॉय करता ही नहीं, कभी आपके सामने आता ही नहीं. तो इसका मतलब ही तो नहीं है ना, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया इसलिए टीचर के सामने नंबर पाने क्या करेंगे. वो अच्छा बन गया है, दैट्स व्हाई ही केम टू यू. तो बहुत ही अच्छा हो गया. कई कहानियां मिलती है कि एक आईएएस ऑफिसर जो अपने गुरुजी के घर में जाते हैं, जाकर के कहते हैं ऐसे वैसे एक्सेट्रा. दीज स्टोरीज आर नॉट the imagination one. These are the reality one. Next is student may not enjoy consequences of inappropriate behavior, but they will respect your decisions if they know. पता है सबसे बढ़िया मजा कब आता है जब असेंबली होती है और प्रिंसिपल या टीचर जो भी आए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे करके चले जाते हैं. थैंक यू सर, और बड़ी अच्छी क्लैपिंग होती है. एक्चुअली उन्हें पता है कि दे आर नॉट going to follow all these things, लेकिन सुनने में बड़ा मजा है. So they enjoy it. That's why students may not enjoy consequences of inappropriate behavior, but they will respect your decisions if they know that you are fair and apply discipline consequences fairly. अगर आप अपने आप में फर्म है, कंसिस्टेंट है, towards teaching है, to the point है, you are good in the way of planning and understanding the student. स्वाभाविक है, they are going to respect you in every moment. Next is the main features of classroom management. Provide students with a sense of belonging. हर एक स्टूडेंट को इतना तो फील होना चाहिए कि वो अपने क्लास में है. नहीं तो पता चला कि फिजिक्स का क्लास चल रहा है और वो इंग्लिश के बारे में सोच रहा है, इंग्लिश का क्लास सोच रहा है और वो बायोलॉजी के बारे में जो है वो सोच रहा है. इट मीन्स ही वॉज नॉट इन द क्लास, और आपने शायद उसे फील ही नहीं करवा पाया है कि वो आपकी क्लास में है. और ये फील कब होगा उसे? व्हेन यू फील योरसेल्फ दैट यू आर इन द क्लास. अच्छा बेटा ठीक है, तुम बताओ एक स्टेंजा बताए, एक लाइन बताए, इसके बाद की लाइन. अच्छा ठीक है, यू रीड, देन यू. हर एक को अगर पारी पारी से हमने कम से कम 25% को भी टारगेट बनाया ना, टचअप किया ना, इट मीन्स दे थिंक दैट द टीचर इज गिविंग हिज और हर बेस्ट एंड दे शुड हैव
given their best to the teacher also. Means they think that they are in the class. Everybody is paying attention. नहीं तो अंतरा वाली फीलिंग आएगी. Nobody cares about me. Next is open and welcoming environment. मैंने शुरू में ही क्या किया? Instead of giving the lectures, मैंने आप लोगों से क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया. You became familiar. Even I became familiar. Otherwise वहाँ पर अपने अपने जो जानकार थे उन लोगों का वेलकम हो रहा था, गुड मॉर्निंग हो रहा था, और बाकी जो रिसोर्स पर्सन आए उन्हें पता था कि यही रिसोर्स पर्सन है, लेकिन इट वाज नॉट नेसेसरी टू टेल देम गुड मॉर्निंग सर, जरूरत नहीं थी. तो यहाँ पे क्या है, वी हैव टू ऑफर एंड. अब कल ऐसा नहीं होगा, आई एम डैम श्योर. ओपन एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट, आप हर एक को मौका दीजिए. अगर आपने किसी को भी छोड़ा, आज 25% को दिया, आप एक डायरी भी बना लो. आजकल तो एक वो नया सिस्टम चल रहा है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना लो. है ना, मेक इच एंड एवरी स्टूडेंट एन अकाउंट. एक पेज में सबके बारे में लिखो, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, आपके सब्जेक्ट में कैसा मार्क्स लाया, पुराने टेस्ट में कैसा मार्क्स लाया, बिहेवियर क्या है, और उसकी थिंकिंग क्या है, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उनकी फोटो भी चिपका लो. अगले साल वही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट ग्रेड में मिलेगा. एंड स्वाभाविक है वहाँ पर, अरे यू वर टू गुड इन क्लास 6, नाउ यू आर इन 10th ना, सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. अच्छा ठीक है, पहले वाले मिस्टेक्स अब नहीं करना, वो तुरंत ही कहेगा यस सर मैम, आई विल नॉट रिपीट दैट. आप साइकोलॉजिकली सेफ. कई बच्चों को मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है ईच एंड एवरी डे. ठीक है, अरे तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे पापा तो ड्राइवर है, तुम्हारे पापा धोबी है, तुम्हारे पापा ये है. क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट आना ही नहीं चाहिए. Because in the classroom, they all are different, they all are our child. They all are our child. So इस तरह का जहाँ कहीं भी डिस्टर्बेंस लगे ना, उन दोनों बच्चों को बुला करके जो है एक जगह मीटिंग करवाइए एंड मेक देम क्लियर दैट दे आर नॉट द फादर ऑफ एन, दे आर नॉट द सन ऑफ एन IAS ऑफिसर और अ thief. They are your son and they are in the classroom. So they must forget their home, their belonging. Right now they are in the classroom, so they are the part of their school. Next is promote active listening. ये कहा क्या है? To be a good speaker, you must be a good listener. ये जरूरी है. तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, एक समय था जिस समय ये ऑनलाइन सेशन चल रहा था, ये ट्रेनिंग वगैरह का, तो नॉर्मली हम लोग आपका तो एप्लीकेशन इस बार हुआ है, अगर आप पिछले स्कूल में थे और एफिलिएटेड था तो आप लोग करते क्या थे, आराम से सेशन को जो है यूट्यूब पे चला दिया और मोबाइल रख दिया. ये था ही नहीं वहाँ पे. हम अपना काम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, एक्सेट्रा काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और लेकिन वो मोबाइल चल रहा है. 1 घंटे तक उस मोबाइल को जो है चलना है, क्योंकि 1 घंटे तक मुझे ऑनलाइन रहना है. धीरे धीरे क्या किया, CBSE ने इसे ऑफलाइन मोड में कर दिया कि भैया आप कुछ नहीं है, आपको फेस टू फेस रहना पड़ेगा. आपकी फोटोग्राफी, आपकी वीडियोग्राफी सारी की सारी होगी और सारी रिकॉर्डिंग CD में करके हमको दीजिए दैट यू वर प्रेजेंट. अरे कोई CBSE cannot teach. Means I have to continue for an hour. So, how क्या Where I was? आप बताइए. Online system. Online system. आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं. It's wrong. What is it? Do not interfere. Between two months. ये चीज मैं सिखा रहा हूँ सबसे कि बीच बीच में किसी से पूछना है और पूरे क्लास में इंगेज नहीं करना है. हाँ में मैंने कहा कि हाँ हम सब जानते हैं, सबको मौका दे रहे हो, फिर मेरा मौका कब मिलेगा? राइट. सो when even I was in online session, actually I had been completely attentive. मैं भी देखता नहीं था 1 घंटा, ये भी पक्का था. I used to watch it at night. I used to make it on recording mode, and finally it used to be recorded, and while sleeping I used to see the whole session. It happens that I became, when it was a chance to be RP, I just went over there, I gave exam and I got RP.
तरह के बहुत सारे लोगों ने किया। बाद में इसमें भी फर्जी वाला चलने लगा, चल भी रहा है मेरे। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर एक्टिव लिसनिंग, ये जरूरी है। यू मस्ट बी एक्टिव लिसनर। आपने जो सीखा, अरे हम बच्चे अगर अपना पर डे का 5 घंटा दे रहे हैं तो 5 घंटे का 50 मिनट तो कम से कम सीखे वो, बाकी चीजें फेंक में चले जाए वो इससे। बट एटलीस्ट इन द 7th पीरियड दे मस्ट बी एक्टिव इन ईच एंड एवरी पीरियड फॉर क्वार्टर ऑफ दैट पीरियड। आपने जो भी क्लासरूम लिया 25% ही तो पढ़ाना है, ऑलरेडी 25% ही पढ़ना है, लेकिन वो 25% भी नहीं पढ़े, देन आवर टीचिंग इज वेस्ट। दोनों के म्यूजिक बनना। नेक्स्ट इज इनकरेज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, मैं चाहता तो सबसे पूछता है कहाँ थे हम, एंड ही इन्वॉल्व, ये भी अच्छा था, लेकिन क्या है बार बार इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है सबको। नेक्स्ट इज एक्टिवली वर्क टू कॉम्बैट बायस। हमें एक्टिवली करना है, एक्टिवली वर्क करना है ताकि दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना है, किसी के बीच में डिफरेंस ना है। स्लो लर्नर अपने आप को फास्ट लर्नर से कमजोर ना समझे और फास्ट लर्नर अपने आप को स्लो लर्नर से ओवर स्मार्ट ना समझे। जो अमीर घर के बच्चे हैं उनको गरीब घर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी शो यू वीडियो क्लिप रिलेटेड टू दिस आल्सो कि वहाँ पर टिफिन के लेकर के कुछ इश्यूज होता है, एंड वी विल शो यू। इसको आप वहाँ से अच्छे से समझेंगे। एंड फोकस ऑन बूस्टिंग एंड मेंटेनिंग स्टूडेंट मोटिवेशन। बार बार मोटिवेट करते रहिए। हम असेंबली में जाकर के हर एक दिन एक टीचर जो है जाकर के कुछ न कुछ वो थॉट्स वगैरह चलते रहते, क्यों चलता है? कैन समबडी टेल मी पीछे दिस फोर के क्या अवेयर करने के लिए बच्चों को बताना है वहाँ पर कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी टॉपिक पे बोला जाता है। हाँ हाँ, तो उसको याद दिलाने के लिए इस तरह बच्चा ज़्यादा कैच करता है टीचर्स सब। क्वाइट। और कुछ ये सही था क्या? मुझे तो नहीं लगा। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और कुछ उतने लोगों के सामने वो बोल पा रहा है, वो क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बोल पा रहा है ये इम्पोर्टेंट। राइट है ना, इट हैपेंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसे टीचर्स को माइक थमा दो, नहीं सर प्लीज हम बोल रही, जबकि जानते हैं कि दे कैन स्पीक, लेकिन प्लीज हमको तो छोड़ दीजिए। अरे 7-7 पीरियड क्लास लेते हैं, अब क्या चाहिए? मैं भी कई बार कहता हूँ कि दिन भर तो ऑफिस के काम में लगे हुए रहते हैं, कम से कम 1 पीरियड पढ़ाने तो दीजिए। एक्चुअली आई एम टीचर ऑफ 9th and 10th, इसी दोनों में मेरा एक पीरियड है। और नॉर्मली क्या होता है मंथ में हमको शायद 4 या 5 पीरियड ही मिल पाता है। बाकी 30 दिन मतलब 25 दिन में 50 पीरियड तो हो गए ना, तो वो भी नहीं मिल पाता मुझे। 4 से 5 पीरियड मिला मुझे, उसी में मुझे कवर अप भी करना है, क्योंकि एंड में जो है मुझे भी मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है कि वाई माई कोर्स वॉज नॉट कम्प्लीटेड। इसलिए मैंने वो RRR का फॉर्मूला लगाया मेरा कि इन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कि सबसे बढ़िया यही है, बच्चों को खुद ही पढ़ना सिखा दो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्लास में जाओ एक्सप्लेन कर करके अपना आ जाओ। लेकिन ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते। See you after 15 minutes. Go and relax yourself. फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। We must be positive. Whatever we are teaching, if we are not confirmed what we are teaching, of course student will not learn anything. Not a single point. So while teaching, we must be confirmed that we are giving something. We are giving something, and to bring this positivity, we must have a close relationship with student according to the classroom system only. Okay? I have doubt this one. Have you got something? What did you understand? Okay, just tell me, or just give some question and tell them, find out the answer of those questions. You will give, you will come to know what else you have taught them, whether they have understood or not. Second is, establish a positive classroom environment, greet students at the door with a smile. Even I have been trying. मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोचा था कि मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ, एंड whenever you will enter मैं कहूँगा आप 30 minutes late हो, good afternoon, आप 25 minutes late हो. I have been thinking. Suddenly he told that teachers are taking their
lunch. So it was good. I even told him that it will be good if they keep 10 minutes more and they will come with the complete mind. So this is also a term of positivity. And for this in the classroom what you need to do, after the break the students come after 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes or 10 minutes later on. Do one thing, after the break whenever bell rings, just go to your prospective classroom, if you are in 7 or 6 or whatever, stand at the door, greet the student, okay, good afternoon, I think you enjoyed your lunch, but you have taken 5 minutes more. Do it twice or thrice. After some period or some moment or some days, the student will be there on their time. Otherwise, they have the same situation. आपने देखा होगा कि लंच के बाद बच्चे तुरंत क्लासरूम में नहीं आते हैं. Do you think you are in the classroom? At exact time आप ही बैठ करते हो, बच्चे जाएंगे तभी हम जाएंगे. ना? It was duty and responsibility of both the participant, whether he was a teacher or whether he was a student. They must report in time. मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से ये रूल लगा दिया है कि लंच के बाद 5 मिनट का टाइम है आपके पास. 1:10 में अगर बेल बजी है, 1:15 में आप नहीं पहुंचे, यू विल बी हाफ डे. कुछ जगह पे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. एंड फाइनली द टीचर्स आर इन द क्लासरूम. बच्चे नहीं पहुंचे तो होगा ही नहीं. जैसे The spelling of behavior requires correction. BEHAVIOUR. Bring it in yourself. Be positive. You will make them positive. Be beautiful. Be in time. Of course, they will be in time. Means the behavior which you require from your student, that must be inside you. If the same behavior is not there within you, of course you cannot think or expect it from the student. कहा गया है pay respect to get respect. मैंने कहा ना सर कि वो बात बहुत अच्छी लगी पहला को. And it will keep running in my mind. Always, whenever I will think about Mount Ford, the next is we have another trip, so let's enjoy. Yeah.
संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। electricity problems and student is interested in online class. This has become very difficult. I don't know what to do. Dear students, as you know, we are going through a very vulnerable time. And we as teachers are trying our best to give you education through online classes. It's up to you to grab that opportunity or you lose it. Your education is something you should never lose. Days and months that you lose will never come back. Hope you all attend the online classes sincerely. Take care, my dear students. Thank you. Good morning, class.
into a science subject, so let's start off on a good note. Not that much, thank you. So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. My name is Anish. I was a topper last year. My IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andrew. I like dancing. My name is I like yoga. Okay, everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 I'm going to kill you. What's your name? Good morning, class of brownies. You do know that's the name the rest of the school is giving you, right? This one, I will not leave the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Not anything? Yes, anything. Our topic is everything you want me to know about the birds and the bees. But not afraid to walk. Secret in the night sky, as the stars shine. They tell amazing stories, some of yours and a few of mine. Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That moon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight direction. So you see, in life, it is very important to have something or someone, yes, or someone who can give you direction every time you go astray. It helps you go very far. Morning class, today we have today a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo.
things really change? How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi class! So everyone's done with their session except Zara. Zara, come. Every rowdy class was a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved. Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. Right? We all have passed our time from the period of COVID, right now? From real class to virtual class, from virtual to real. We have turned ourselves. We have upgraded ourselves. I remember there is a ma'am in my school, Bhagalpur is her name. She is too old, nearly 62, but she is teaching over there. Before COVID, she had a small mobile and she used to use it for talking only to her son and no one. But in the period of COVID, she upgraded herself. She came near to all the teachers and she told, अच्छा थोड़ा सा ये सिखा दो ना, थोड़ा सा ये बताओ ना स्टेप कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये बताओ ना इसमें प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, etc. 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 By this way, we have managed ourselves from real classroom to virtual, from virtual to real, and nowadays, अब हम लोगों ने क्या किया? Now we are the part of real classroom only. लेकिन क्या करना है? Just collect some names of those students who are weak in your class, weak in your subject. Get their contact number also. Make a WhatsApp virtual classroom every day. Or whenever you are free, आप कह दो कि this is the group for you. Whenever you require, आप अपना सारा प्रॉब्लम से देना. And whenever I have the time, I will inform you 2 or 3 hours before or 2 or 3 days before. That day we will have a virtual class, online class. Of course, they will have their problems. बहुत सारी चीजें जो वो क्लास में नहीं पूछ पाते थे, वो हमसे पूछ लेंगे. I do it especially on Sunday whenever I am free, because other day I used not to be free. But every Sunday I have my 2 hours for my student as an extra period. And we smile in the class, we enjoy the classroom. जितनी भी pending chapters हैं, pending doubts हैं, we used to make it clear. So you too can have the same experience. थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, but it will manage your class, it will manage your subject in a proper way. Second, how many of you have experienced the same class of nowadays? ऐसे क्लासेस लगभग नहीं मिलते हैं, लेकिन हर एक क्लासेस में कुछ एक बच्चे ऐसे ही होते हैं
So if that man has managed everything, कई बार क्या होता है, we must not be a lecturer in our classroom. We must not be a teacher in our classroom. अभी कुछ दिनों पहले I remember in the day of rainy season कि अचानक से बारिश इतनी तेज आई कि ये विंडोज वगैरह कुछ काम नहीं करते. आपके यहाँ तो स्लाइडर लगा हुआ, उस समय मेरे यहाँ स्लाइडर नहीं लगा हुआ. Suddenly all the water came inside the classroom. अब क्लासरूम में कुछ नहीं तो इतना पानी हो गया. What should we do? It was dark completely. जनरेटर रूम तक जाने में भी प्रॉब्लम्स है. And it was continuously 20 to 25 minutes. I was in class 9. What to do? मैं कह रहा था कुछ नहीं, बच्चों का ध्यान तो उधर ही है. Towards the rain. सर देखिए ना पानी कितना आ गया. सर पानी अब मेरे तक आ रहा है. सर लास्ट गैस तक पानी आ गया. अब क्या करें? मैंने कहा not to do anything. मोबाइल ऑन करता हूँ, एक बोट बनाओ और तैराओ, वीडियो बनाते हैं और फोटोज भी लेते हैं और अपने ग्रुप में डालते हैं. They enjoy it. कहने का मतलब है कि when there is a diversity, we use it as per the prosperity. When we are in the negative line, we must have a positive way of enjoying everything. We must be positive. अगर क्लास पूरा का राउडीज है, no issue. अगर क्लासेस में कुछ एक बच्चे भी राउडीज है, you just keep them in your mind. And whenever you have a time, or if you are not meeting, suppose you have completed your portion for the week. किसी एक दिन बैठ के तुम लोग सब बैठो, okay, what is the problem with you? Why don't you enjoy my class? Don't you like my the way of expression and so on? My lecture, my describing, my explanations, and so on. पूछो, कहीं ना कहीं पता तो चलेगा ना कि उस बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ है. And when you will come to know the problem, जैसे कि ज़ारा नाम की एक लड़की थी, she had no problem. That she used to be the counterpart of each and every friend. They used to make fun of her, and so simply she was a good friend because she wrote the poem. So she used to sit at the backbench and she used to write within herself only. She had been feeling complete loneliness, but when teacher came with her, every day they had been saying some of the thought, and finally the thought was stitched and it made a poem. So we can manage our class in a better way, whether the position is difficult one or the normal one. Plan. Of course, I have been plan only, but you must have a plan B. ये हमेशा याद रखना, प्लान ए काम करता है, करे या ना करे, प्लान बी always works. You must have a plan B that if he will not learn by this way, I will use this way. If plan A works, no issue, plan B is safe with you. So planning, engaging, purposeful lesson is one of the best recipes for a smooth, orderly classroom. अगर आपने lesson planning बनाई है, time management है, आपके पास classroom management भी है, of course it will run smoothly. But if you do not have those all the things, and if they are not working properly, no issue, make a plan B. आपको करना क्या है? You have to make them engage. Second is overplan your lessons to minimize downtime. Downtime is every teacher's worst enemy. If you are passing your time, कई बार क्या होता है ना, क्लास में जाते हैं, क्वेश्चन दे दिए, आराम से बैठ के पूरा का पूरा 40 मिनट खत्म हो गया. It means you are your enemy. You are yourself your enemy. So you must not be in such a mind. Plan lessons that address multiple learning styles and allow all students to experience success. मैंने कहा ना कि पहले एक वर्ड कहा था कि we have to innovate ourselves in every day. Every day is special for us. ठीक है? तो हम लोग इसी में कुछ काम करते हैं. And we will have our class. एक आपने देखा था It's My Class. एक क्लिप आ रहा था, वो करवाना पहले था, but we are doing right now. We need 6
teachers over here and 6 chairs also. Can somebody please? Sir, please stand up. Good morning. Please sit down. Please sit down. Good morning. So how are you all today? Fine. How are you all? Fine. Thank you. Me too, fine. So, how was your day? Yesterday's day? What about you as yesterday's day? What about your work plans? Yesterday work plans? Whatever tasks you have got, have you all completed? Yes. Okay. I have not completed. Ma'am, Yes, sir. I have one doubt. He abused me. He is abusing you. Okay, you don't have to use these words in class. Okay. So we will start our new lesson today. So as you all know, we have completed our lesson, lesson number 13. So today we are going to start our new topic. That is lesson number 14. That is conjunction. Okay. So any of you can tell me what is conjunction? Any of you can tell me what is conjunction? What do you understand by conjunction? Is there any little bit idea of conjunction? Any of you? Okay, I will explain you. Okay, so conjunctions are the words for joining the two parts of sentences. Okay, so we have a topic conjunction. So here I am again explaining in Hindi also. that conjunction जो है वो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? So we have a conjunctions for using conjunction. There are lots of words. Again, I'm telling you, we have a conjunctions. In conjunctions, we have to use. I want to say something. Yes, of course, sir. Yes, of course. I use already to join two words. Yes. Ram and Sham. This is not part Okay, of just explain me. Just let me explain me. I will just, you may ask. Okay. So in conjunctions there are words like for, and, or, but, yet. So these all are the conjunction words. Okay. By using these words only we have to join conjunctions. Okay. हम लोग को ये सारे words को ही use करके हम लोग को conjunctions जो parts of sentences है उसको जोड़ना है. Okay. So for example, and का हम लोग लेते हैं. So in and we can use names of two persons. If in each sentence if we have two names, for that also we can use and. Okay. For any of the sentence, if in one sentence, one part of sentence there are two choices, then also we can use. Excuse me. Stop writing. Sorry. Sujit, please explain me. Where? Because my mind is not here. What are you saying? Okay, again I'm explaining you. About you. Okay, again I'm explaining you. This is the last warning I'm telling you. Okay. You have to listen me carefully. You should get things properly. Madam, these students Yes, are ma'am. completed. Yes, I focus on Very your naughty student. pictures, ma'am. No, you have He doesn't allow the teacher to speak. He is a disturbance in the class. He should be thrown out. I'm warning you again. I will be throw you out of the class only. So we are in conjunction, and conjunction words we are using and. Okay. So in and we are, for example, I am giving you. I like coffee. Full stop. I like tea. Okay. So here we have two sentences. Okay. Here we have two sentences. In these sentences we have to add and. Clear? And conjunction. So here see, whatever I have written here, I like tea, and full stop, I like coffee. Okay. So these two sentences we have. So we have to use and word, and then we have and conjunction, and then we have to add this join these sentences. So we have to write in copy, in which way? I like tea and coffee. I like tea and coffee. We need to remove full stop
and we need to remove half of sentence, okay, from next part of sentence. You have 3 minutes only. Thank you, class. You just go on. We are not going to complete transaction completely. Okay, we need SST teacher now. Which SST teacher? Ravi Shankar sir. Sir, please come. Don't you stand up? I can understand how you manage with your class. Fine, he is Mr. Sujit sir, no? Okay, he is Mr. Ravi Shankar sir, and he will teach you SST, right? So enjoy the class. This is class 1, right sir? Yes, sir. Good morning, children. Good morning, sir. Please sit. Thank you, sir. How are you all? How are you? I am also fine. Okay. I am a new SST teacher in your school. My name is Ravi Shankar Sharma. I am going to teach you SST. Okay? Is SST is everyone SST is a very I can say important subject. So are you interested to learn SST with me? Yes sir. Yes sir. Okay. I am तो आज हम लोग जो है SST में बात करेंगे भारत के बारे में, इंडिया का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। खैर मेरे ख्याल में सब क्लास 1 है तो उसमें तो नहीं क्लास में तो मैंने पढ़ाया। This only happens in demo class. We are prepared with something else. When we come to the class, the first day makes nervous to everyone. Whether it is a matter of a student or the teacher. पता नहीं कैसे टीचर होंगे, खड़ूस होंगे, this that etc. खैर कोई बात नहीं, जो भी आएंगे झेल लेंगे। डराने नहीं देना, पहले वाले ठीक। This also happened with me and with us. Oh, this is the first day. I don't know how to manage whether class will give positive feedback or not, etc. Even we are the trainer, no? You have a feedback form. Right? After completion of the session, we will give you a feedback form और आपको अपना feedback देना है whether the session was interactive or not, whether we were good or not, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ का खाना बढ़िया लगा कि नहीं मैं लगा, व्यवस्थाएं बढ़िया थी, etc. These are the questions over there that you have to fill all the 5 days. So this is the last slide. खैर इस क्लास को ज़्यादा नहीं कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में करेंगे और भी. So it was really interesting one. The first class was an interesting one. But करने क्या है कि when we are in our classroom, we must be prepared and planned. और प्रिपेयर और प्लान होने के लिए जो है हमको 2-4 दिनों का टाइम नहीं चाहिए. माइंड इट, एवरी सेकेंड इज अ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. As you told, as you came, okay, today we are going to read conjunction and so on. लेकिन conjunction को पढ़ाने के पहले हमको थोड़ा सा प्रीवियस से पिछला भी करना है. And you began good. No issue. Yesterday you had some homework. लेकिन preposition is the parts of speech. तो आप एक बार फिर से जो है उन लोगों को रिव्यू दे देंगे, रिकैप कर देंगे. Okay, we are running towards the or we are running towards the family of parts of speech. Parts of speech, I hope you know. If you don't know, no issue. I can tell you that parts of speech means words are divided into 8 classes according to their position in the sentences. These are known as parts of speech, and we have been familiar with noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, and today we are going to start with the conjunction. Okay, yesterday I had told you all to be prepared with the definition of conjunction. Okay, you, Ravi Shankar, please stand up and tell me
what is the definition of conjunction? What is the definition of conjunction? Conjunction जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिर्फ वर्ड ही नहीं है वहाँ पर, फ्रेज को भी जोड़ने का काम उसी का है, क्लाउड्स को भी जोड़ने का काम उसी का है, और प्लस सेंटेंस को तो वो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो जब तक ये चारों नहीं ऐड करते हैं तब तक हमारा कंजंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है सॉरी। और अगर हमने इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया कि वर्ड और सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि फ्रेज ना तो वर्ड है ना सेंटेंस है, क्लाउज भी ना तो वर्ड है ना तो सेंटेंस है। सो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड ताकि कल की डेट में क्वेश्चन नहीं आए। जैसे नाउन का है तो नाउन का डेफिनेशन बताएंगे, ये नहीं बताएंगे सिर्फ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, साथ में ये बताएंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, व्हाटएवर यू कैन सी और फील इज अ नाउन, और सिंपली वी कैन से नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये सारे को ऐड कर देंगे। अब बच्चों को माइंड में 4 डेफिनेशन है ना, एक भूलेगा तो दूसरा याद रहेगा, दूसरा याद भूलेगा तो तीसरा याद रहेगा, कुछ तो रहेगा ना माइंड में। और वाह, द टीचर gave four definition। अभी तक तो एक ही पता था, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग। थिंग तक ये मिट गया है, फीलिंग और आइडिया को एक साइड कर देते हैं। मेरा तो नाउन का वो ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? Question to how many kinds of noun? 5. If I say there are 2 kinds of noun, तो गलत होगा? कैसे होगा? How it is right? प्रूव करेंगे उसको मेरा पेन गिफ्ट में। सॉरी, प्लीज आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं कर सकते हैं। There are 2 kinds of noun only. Noun. If you say the pen is yours, otherwise the pen will be mine. 4, 1 and 2. Yeah. Quite good. लेकिन सही नहीं है। ठीक है, there are 2 kinds of noun. One is the concrete, की कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन पे ऑप्शन पड़े हुए हैं आपके, आपको सिर्फ जरूरत क्या है, पंख फैलाइए और थोड़ा बोलिए। थैंक यू फॉर माय लेक्चर ऑल, आई एम गोइंग टू हैव माय लंच, द सर इज वेटिंग। सर प्लीज वेलकम। ओके, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर तिवारी सर। Thank you so much for having such a great patience. Okay. First of all, I admire you for listening us. Not I am starting now, but you have just shown out a very discreet, a very good, and it is really encouraging. I won't consume much time just showing so many slides. I would like to talk to you. Okay. The practical problems really you face in the classroom. So first of all, I would like to have your own opinion, because you have just got a lot of things. To what extent you swallowed all of them, I cannot say, because every person is varied. Nature has given us different vision, different personality, different taste. Everything is different. Being a social science teacher, I can tell that we are living in community. So, in spite of all odds, diversities, we have a common understanding, which provoke us to lead a very good life. A life which is filled with humanity, a life which is filled with grace,
kindness and all kinds of humanities, human virtues, I would like to say. So, first of all, we will recite 2 lines. हम लोग 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे, because after a long time we are having a common chat. We are sitting together. For what? To bring certain enhancement in our skill. It means that we are learned, we are scholar, but we are just polishing our skills that can bear a very good outcome in the future. Because some of us, people like us have got older, but some people are young. They have to go miles ahead since now. So it is not your destination. जहाँ हम बैठे हुए हैं, जो काम हम कर रहे हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हम लोगों में से कुछ का होगा, जैसे मैं, I spent only 31 years in CBSE schools. So a lot of time I have spent in just grasping more, giving more, but still I am not saturated. But some of our young chaps, they have to go miles ahead now. तो उनके लिए हर पड़ाव सीखने का ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा, here we are not here to feed new things. Everything is common. इतने देर बैठने के बाद आपको लगा होगा कि ये सब चीज में बहुत सारी चीजें तो हम जानते थे, बट अगर 5% भी लगा कि ये नहीं जानते थे, या ये it seems to be quite new, it means कि our aim has been fulfilled. हमने वो काम कर लिया। तो 2 लाइन हम लोग गाएंगे। किस लिए गाएंगे? क्योंकि हमने जो शुरुआत की है, वो शुरुआत बेटरमेंट के लिए किया है। यानी कल तक जो थे, कल से जब क्लासरूम में जाएं, परसों से जब क्लासरूम में जाएं, तो थोड़ा सा एक डिफरेंट आउटलुक हमारा हो, हमारी कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। 1.1 डिग्री ही बढ़ जाए, लेकिन बढ़ जाए। तो आप में से सबको ये गुनगुनाना होगा। पहले मैं गुनगुना, आप कहेंगे नहीं पहले आप गुनगुनाइए, तो मैं गुनगुना देता हूँ। बड़ा कॉमन सा हमारे मुकेश साहब का वो सुंदर सा सॉन्ग है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। That's all from my side. You will be reciting these 2 lines, okay? So many things are there. But you will recite not only these 2 lines, you can sing many 2 lines according to as per your choice, but it should be enthusiastic, okay? Now, full of inspiring relations. तो 2 लाइन सबको गाने हैं अभी, ठीक है? शुरुआत प्रिंसिपल साहब से करने से प्रेरणा पाकर हम एक नई कहानी, एक नई शुरुआत लिखने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वक्त में जब हम आपसे मिलेंगे, तो आप गर्व से कहेंगे कि आपने हमको ट्रेनिंग किया था। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, तो
रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते थैंक यू। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Oh, great melody. Okay, anybody? का नगमा है, फूलों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। Exercise was to feel ourselves on toes always, because as I told कि we have no credit at all. शिक्षक के पास क्रेडिट नाम की चीज नहीं है. We are always the loser. But one thing is very clear, that we are the real contributor of the society. And the main thing is that we mold such creatures who are not in shape. हम लोग एक क्ले को एक आकार देने वाले लोग हैं. Whatever we get, हमारा रेम्यूनरेशन कितना है, हमें क्या मिलता है, इससे कोई मतलब नहीं है. बट वी आर द रियल सर्वर ऑफ द सोसाइटी. जब भी क्लास आप एंटर करें, हमारा रिक्वेस्ट होगा, आज का सेशन अब कंक्लूडिंग पार्ट पर है. मेरा एज ए सीनियर एडल्ट कि मैं आपसे ज़्यादा जानूँ या ना जानूँ, बट मैंने ज़्यादा मौके इसमें दिए हैं, बहुत ज़्यादा. तो मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे वर्ड भी लेना चाहूँगा कि जब हम क्लास एंटर करें, व्हेनेवर वी एंटर द क्लास, वी शुड फील कि हमको वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट करके ही लौटना है. जस्ट कीपिंग असाइड ऑल वॉट्स, अपनी पर्सनल परेशानियों को किनारे रख करके, अपने मनोभावों को किनारे रख करके, अपने उंडेड सेंटिमेंट्स को किनारे कर करके, उसको नज़रअंदाज करके हम ये सोच करके जाए कि जो हमारे सामने बैठे हैं उनका कोई दोष नहीं है इसमें. He is not the culprit. He is not responsible for my suffering. So we should not do any sort of injustice to them. So this is the nature of an honest person. और हम लोग honest तो हैं, that we can claim. If we are the teachers, we understand ourselves as teacher, we are honest naturally, and we are the real server of the society. So I think that you will be much more faithful since now, and 2 and 3 slides I will show now. That will be a concluding part of the entire slides are there. That is very important for you, and you can write down them so that in future it will be highly beneficial for you. Okay? So I think that you will be watching it all. The definitions is there, and at the concluding part of the session, as I told, आपने पिछले सेशंस में सारी चीजों को देखा, but not such sort of definitions. If we are asked कि what is classroom management, the classroom management is ways of organizing the resources. Very conclusively, it has been written. Also, organizing resources, pupils and helpers. We take notice of the helpers also. Helper means all those subordinate who assist every day in the proper accomplishment of our duty. And our duty is to serve the class. Our duty is to feed the newcomers with good sense, with
Tutorials and helpers. Helpers are those who assist. It means कि जो हमारे स्वीपर भाई हैं, जो हमारे ग्रूमिंग करते हैं, जो हमारे क्लीनलीनेस इंचार्ज हैं, अगर वो कक्षा को साफ नहीं करेंगे तो फिर कक्षा पढ़ाने लायक नहीं रहेगा, और जब पढ़ाने लायक रहेगा ही नहीं तो फिर हम काम का एक्सिक्यूशन नाइसली नहीं कर पाएंगे. So they should get the equal weightage, equal advantage. No one is inferior, no one is superior. The job is very equally. So we take notice of all those subordinates who assist us in our execution. Okay? So have a great respect for them. Really have a great respect for them. कि वो नहीं होते तो शायद हम वो काम नहीं कर रहे होते. इसलिए credit must go to themselves also. So they are the real assistant of ourselves, so that the teaching and learning can process in an efficient and safe manner. Efficient efficiency से हमारा काम हो सके. Efficiency means what? Efficiency को अगर शब्दों में बयान करने के लिए बोले, what it mean? What actually it means? तो efficiency means दक्षता. Okay, it is one of the meaning. Efficiency means full of that bears outcome. हमने काम कर लिया और फल की चिंता छोड़ दें, ये तो कृष्ण भगवान ने कह दिया है, लेकिन होता ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली. हम काम इसीलिए करते हैं कि हमको फल की चाहत होती है. तो ये तब समाप्त होगी जब हम लोग भी कमंडल लेकर के हिमालय की तरफ कूच कर जाए, जो कि संभव नहीं है. We are living in the materialistic world and everywhere there is a term of expectation. That expectation cannot be kept aside. So सिर्फ बातें करना बहुत आसान है, बातों को रियलिस्टिक यथार्थवादी बनना कठिन काम है. तो रियलिस्टिक बने. हम आध्यात्मिक सोच के साथ, स्पिरिचुअल थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, लेकिन हम मैटेरियलिस्टिक ड्यूटीज को हमें तय करने हैं. हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, और इसके लिए तो हमें इसी संसार में रह करके अपना काम करना है. इसलिए उन चीजों को, जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करते. तो ये इफिशियंसी, efficient accomplishment of the duties we are assigned to. जो काम हमको मिला, whatever the work, जो काम हमें मिला है, हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम उसे पूरी ईमानदारी से करें और ब्यूटी के साथ करें. ये बातें छोटी छोटी चीजों में चाहिए. ब्यूटी, घर में कोई जलसा होने लगा तो हम किसी खास हलवाई को ही जाके खोज रहे हैं. ओ बड़ी दीदी के शादी में आकर के इसी ने मिठाई बनाया था. नहीं, अब देखिए काम तो वो बड़ा छोटा सा है, लेकिन हम उसको खोजते हैं, उसी को खोजते हैं. वो नहीं मिलता है तो फिर दूसरे के पास जाते हैं. तो हो गई ना इफिशियंसी. इफिशियंट लोगों की पूजा हर जगह होती है. और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, हम लोग अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, स्टिल द शॉप एग्जिस्ट ऑन द वडनगर स्टेशन. Still the shop exists there. And Gujarat is the only state where NEP has been not implemented so many years back. अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें कम्युनिटी टीचिंग की बात की है. कम्युनिटी टीचिंग्स, इंटरकनेक्शन ऑफ द, कल हम लोग बात करेंगे इस पर, NEP ही हमारा है. इंटरकनेक्शन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अगर एक लोकेलिटी में 5-7 स्कूल हैं और कोई स्कूल रिसोर्सेज के मामले में बहुत धनी है, तो according to this new education policy, it is the duty of this resourceful unit to contribute, to invite those students of other schools to come here. कि आज हमारा बच्चा वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, आपके बच्चे आकर के खेल करके चले जाए. This is a community gathering, community teaching. तो ये सारी बातें गुजरात में शिफ्ट में स्कूल चलते थे. जो बात आज NEP ने कहा, गुजरात वाज ओनली स्टेट जहां शिफ्ट वाइज स्कूलिंग होती थी. आज से 25 साल 40 साल पहले कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज होती थी.
आज कुछ स्कूल्स ही हैं जो कमेटी के द्वारा रन है, नहीं तो प्रोप्राइटरी स्कूल्स हैं। कमेटी से रन स्कूल कुछ ही है, कुछ खास ही है। लेकिन गुजरात में इवन द गवर्नमेंट स्कूल हैव द लोकल कमिटीज, वेरी अमेजिंग टू लिसन। और वहां पर 4-5 भाई बहन थे, शिफ्ट में स्कूल होता था, कोई भाई स्कूल में है तो दूसरा भाई आकर के 2 घंटा पिताजी को एसिस्ट करके चाय बेच दिया। लेकिन आज इतने बड़े पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, किसी अंडे से नहीं लगता कि उन्होंने कभी कोई छोटा सा काम किया। इसलिए काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। द फर्स्ट थिंग दैट जस्ट हैविंग एंजॉयमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टेन जॉब एंड दिस हैप्पीनेस, दिस प्लेजर कैन बी जनरेटेड विद इन आवरसेल्व्स। हमको ये काम करना है, फीवर है, स्कूल आ गए, ठीक है, अगर स्कूल नहीं आते तो और बात थी। स्कूल तो आ गए हैं, तो क्लास जाएंगे, और क्लास जाएंगे तो बुखार है तो भी पढ़ाएंगे। लेकिन कंट्रीब्यूशन का आदि होना पड़ेगा हमें। We have to inherit these habits, good habits into our behavior. Inheritance into behavior, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक हम काम में we cannot add beauty, we cannot add something new to our job. जॉब को अगर ब्यूटीफाई करना है तो पहले खुद को प्लेजरफुल करना होगा। हम अंतःकरण जब हमारा खुशी अनुभव करने लगेगा उस काम को करने में, तभी वो काम अच्छा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। एनीवे, आप इन बातों को बहुत सुन चुके हैं पहले। आई हैव नॉट टू गो इनटू द डिटेल। शॉर्ट डेफिनेशंस मैंने क्रिएट किए तो मैंने इसको आपसे बताया। A group of students meeting regularly to study a subject under the guidance of a teacher. So this is the and what is classroom management? Management comprises planning, organizing, leading, controlling of human and other resources to get desired goals effectively and efficiently. Desired goals, जिसकी बात अभी प्रिंसिपल सर ने की थी फर्स्ट सेशन कि we should have a proper lesson plan. Directly indirectly related it is, because इन्होंने घंटों पहले ये बातें की, but so praiseworthy. It was just flourishing in our memory since then. That's why he is the principal. He has the knowledge कि आपका आउटकम कैसे निकलेगा। तो फिर सुनने में क्या बुराई है? अगर हमसे अच्छी बातें सुनने को मिलती, अगर आपको लगता है कि ये बात अच्छी है, तो उसको फिर हम लोग तो उदारवादी लोग हैं। We are very much liberal in our approach. Teachers are always liberal. He is liberal in giving, he is liberal in getting at the same time. We are not restricted. हम कभी restrictions में विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तक हम liberal नहीं बनेंगे तो हम innovative नहीं बनेंगे। We cannot bring new things, we cannot add new things. So innovation is essential. Innovation at every step is essential, and I think that all of you agree with my proposal. Okay? So innovation कैसे होगा? जब हम अब restricted रह जाएंगे तो innovation होगा क्या? नहीं होगा। Innovation तभी होगा, innovating teaching तभी होंगे जब हम अगल से बगल से इधर से उधर से बातें ला करके उसमें जोड़ेंगे, और तब वो लंबी दीवार बनेगी। और ये बातें हर जगह लागू है। अभी आप बहुत सारे सोशल साइंस टीचर बैठे होंगे, मैं भी बेसिकली इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ। कभी सिविक्स के क्लासेस में मिल जाते हैं, तो सिविक्स के क्लासेस में ठीक है सीबीएसई का 10th लेवल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो है। तो जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें, am I right? जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वहां है तो 3 राज्यों में जो भी इलेक्शन हुए उसकी बातें तो गाहे बगाहे बतानी ही पड़ेगी ना। 3 राज्यों में जो नए चीफ मिनिस्टर बने, गुमनाम आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, तो आखिर सोशल साइंस कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट में विश्वास करता है। यानी इसी बहाने इसको हम लिटरली क्या बोलेंगे, ये तीनों लोग जो आकर के बिठा दिए गए,
ये कोई नए नहीं थे, they were the stalwarts of their group. They had been doing, they had been working hard, but unnoticed. They remained unnoticed for years, but at last they got the real credit for which they were looking for. They had been looking for कि हमको भी कभी ऑनर किया जाए। तो इसको हम लोग सिविक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट बोलेंगे, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट बोलेंगे, जो अभी यहाँ भी हो रहा है। सामुदायिक विकास, इसकी संरचना यहाँ भी हो रही है, वहां भी वही हुआ। The Prime Minister is himself innovative. He believes in certain innovation always. कि किसी को कहाँ, किसी को कहाँ, किसी को कैसे, किसी को वैसे, और ये दिखता है। तो ये दिखता है तो ये भलाई के लिए दिखता है, सबों को सम्मान देना अच्छी बात है। तो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की बात क्लास में भी होनी चाहिए। क्लास में भी इमैच्योर्ड गैदरिंग है और उसमें भी अपलिफ्टमेंट है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ अपनी फीलिंग। आई एम वेरी रियलिस्टिक। हमारी ये प्रॉब्लम है कि मैं ड्रीम ज्यादा नहीं देखता, अपनी व्यक्तिगत बात करनी नहीं चाहिए। एज एन एविडेंस मुलाकात फिर बीच में होगी तो ठीक है। मैंने जो अपने में ये किया है, अभी जो मैंने कहा कि वी शुड बी रियलिस्टिक इन आवर अप्रोच, इट बियर्स समवॉट। मेरे दो लड़के, and both of them were 10% topper from Anand Ramana, both of them, and now they are the NITs. So it was the grace of the God कि एक छोटा सा टीचर का बच्चा इस तरह से निकला। I am a man of arts, he has been splendid even in science. It's a miracle। कहता है ना कि कुछ फोर फादर्स का, अपने फादर का कुछ पढ़ता है, यहाँ तो कुछ नहीं पढ़ा। हो सकता है मदर का स्लाइड को सुपरसीड कर गया और वो चीज आया बिकॉज ही बिलोंग्स टू द मैथ फैकल्टी। लेकिन ये प्रसाद भगवान का मिला तो ये मिलता रहता है। मैं एक छोटा सा वाकया जो बताने जा रहा था। फ्यू इयर्स बैक आई वर्क इन सो मेनी स्कूल्स का नाम नहीं बोलना चाहिए तो मैं भी नहीं बोलूँगा। मैं वहाँ काम कर रहा था, ये 10-12 साल पहले की बात है। एक लड़का वो टास्क वगैरह बनाने में भी ढीला ढाला था, अनटाइड भी था, अपने वर्क में भी अनटाइड था। तो उसको हम क्या करते थे, लेकिन किसी से मारपीट नहीं करता था, होमवर्क नहीं बनाता था कभी, और अनटाइड था उसका, लेकिन होता नहीं है, बड़ा हम्बल था, किसी से मारपीट नहीं करता था, बड़ा एनार्किस्ट नहीं था। माने he was not roaring in the class like a lion। some people are the stupid, वो wicked होता है, कभी उसको टीच किया, कभी उसको टीच किया, वो violent नेचर का होता है। he was not violent at all, but he was, I thought कि ये dull है, ये पढ़ता लिखता नहीं है वो, and he was having spectacles over his eyes। तो मैं उसको एक जगह बैठा देता था, थोड़ा इरिटेट कर जाता था कि कभी होमवर्क नहीं बनाता है, कभी मैंने इसको बैठा करके बार बार वो आगे आता था। वो 3 रूम इसी तरह बने हुए थे रूम, मैं उसको बार बार सर पीछे कर देता था। तो जब 3-4 दिन मैंने लगातार उसको किया, एक दिन बहुत स्कोल्ड किया, आई वॉज आउट ब्रस्टिंग ओवर हिम, खूब डांटा उसको। अब वो चला गया फिर पीछे। 1-2 दिन के बाद, क्लासेस मेरे थे नहीं, गैप था, 2-3 दिन के बाद आई वॉज हैविंग माई लंच ऑन द कॉरिडोर, वो आया मेरे पास। इट वॉज द स्टोरी ऑफ क्लास 7 दैट टाइम। वो आया एंड ही बिगन टू वीप। मैं खा रहा था और ही बिगन टू वीप, पूरा रोना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, बोलो क्या हुआ, क्या बात है, व्हाट हैपेंड? कुछ बोले नहीं, तो रोए जाए। तो उसने जो जवाब दिया
It was very traumatic. It was very painful. अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. It was a real event. उसने कहा, I love you so much. You are a very good teacher. तो मैंने कहा, so it's really quite pleasureful for me. I am honored. बहुत अच्छा लगा. मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है. तो फिर रोए ही जा रहे हैं. You are so good, but you don't love me. तो मैंने कहा ऐसा क्या? तुम्हारे लिए बोल रहे हैं ना, तुम दास नहीं बनाते, तुम्हारे लिए बोलते हैं. बोला नहीं सर, आप हमको बार बार पीछे कर दे तो आप नहीं जानते हो कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बोलने से. बोला सर ये हमको दूर से नहीं दिखता है, नजदीक आते हैं तो हमको दिखता है. It was a drawback. I was repeatedly doing the same thing. It was ugly. It became uglier day by day. But I was myself immature that time. कि हमको ये उससे हमने एक बार भी क्वेरी नहीं की कि इतना गंवार तो ये नहीं हो सकता कि मैं बार बार इसको सीट अलॉट करूं और बार बार ये. लेकिन मैं समझता था कि ये बदमाशी कर रहा है. तो मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी. तो वी शुड बी सिंपैथेटिक इन आवर अप्रोच. तो इट वाज एन आई ओपनिंग इवेंट. छोटी सी घटना है बट इट वाज फुल ऑफ सॉरो. और उस दिन के बाद से मैं संभल गया. इट रीमॉडल्ड मी and I began to introspect whenever I used to go such classes कि all the time teachers should be careful कि वो बच्चे का सिर्फ टीचर नहीं है, मेंटर नहीं है, वो टीचर का सब कुछ है. स्कूल के अंदर वो सब कुछ है बच्चे का. और ये जब हम सोचने लगेंगे तो फिर मैंने आपको कहा ना भावपूर्ण तो होना ही चाहिए. वो है ना जो भरा नहीं भावों से तो फिर उसका चित्त इतना कठोर हो जाएगा कि फिर वो इनह्यूमन हो जाएगा. तो टीचर को एम्पैथी और सिंपैथी दोनों साथ साथ कैरी करना होता है along with डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज. वो तो हमारा प्राइम वर्क है. कुछ इसी बहाने कुछ गपशप भी कर दे रहे हैं आपसे. Now the objective is to you have seen already. मैंने पहले आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना, आपने ये चीज है, आप बोरिंग फील नहीं कर रहे हो, बोलिए नहीं, ठीक है ना. it's satisfactory ना. Okay, तो मैं I am just singling out all those things. मैंने इसमें भी मॉडरेट किया. वो उनके स्लाइड्स को देख करके मैंने भी मॉडरेट किया था इसको कि मैं कंक्लूसिवली खाली आगे की स्लाइड्स में आपको मिलेंगे वैसे ही स्लाइड्स बहुत विस्तार से मिलेंगे जो कि जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप उसको लिखेंगे. लेकिन यहाँ पर सारी चीजों को मैंने कट करके एक एक पॉइंट में बना दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, बेसिक स्किल्स ऑफ ए टीचर क्या है. वी हैव ऑलरेडी मल्टीपल टॉक रिगार्डिंग दिस एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. क्लासरूम मैनेजमेंट में ये तीनों बातें आती ही है. पहले उसका मीनिंग, उसके बाद टीचर क्लास में तो टीचर सेंटर्ड काम ही होते हैं. हाँ, टीचर फिर उसको पुपिल सेंटर्ड बनाता है, लेकिन काम तो शुरू होता है टीचर से, फिर वो कंट्रीब्यूट करता है अपने छात्रों के बीच. और तीसरा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. You have listened multiple things on that since morning, so I won't discuss all of them. Okay, we are just going ahead now. This is very important. ये चीज जो है ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है. टीचिंग स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट. कंक्लूसिवली किन किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए. ऐसे ही सप्ताह में 10 दिन में एक बार जितने भी रिसोर्स पर्सन के आप क्लासेस करेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजें, सम स्पेसिफिक पॉइंट्स यू शुड टेक नोट्स एज आई टोल्ड यू, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इट इज द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग. आप में से
You have to go high and above. तो इसके लिए मैं चाहता हूं रियली सॉलिडिटी इन योर एग्जीक्यूशन। आपका एग्जीक्यूशन जो हो, और आप अगर इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। यू विल बी अनपैरेलल्ड दैट टाइम। तो फर्स्ट वन इज मॉनिटर क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लासरूम एक्टिविटीज पर पूरा नियंत्रण। हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज पर पूरा नियंत्रण। यहां पर ये क्लासरूम एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का मतलब है उसको नियंत्रित करना। क्या नियंत्रित करना? यानी यू आर द कमांडर इन चीफ ऑफ द क्लास। इसलिए कहा भी गया है बीएड की क्लासेस में, जो बीएड किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मैं भी बीएड हूं, तो हमारे एक टीचर थे नूरुल्लाह, डॉक्टर नूरुल्लाह, ही इज नो मोर नाउ, बहुत पुरानी बात है। ही वाज, हिज हाइट वाज ओनली 5 feet high, taller, looking like a dwarf, but very learned fellow। उनका कहना था टीचर इज ए मोनार्क इन द क्लास। टीचर जब क्लास में है तो वो मोनार्क है। और उसका फिर सारे सिचुएशंस उसी के द्वारा हैंडल जब तक उसका क्लास के बाद फिर he became ordinary man, but within the class he is a monarch। Really टीचर को monarch बोला गया। monarch इसलिए बोला गया कि you are the chief controlling body inside the class। Every technical aspects you have to see। Your duty is not to contribute knowledge only, feeding only, everything you are entitled for everything। तो थोड़ी देर पढ़ाना, थोड़ा आउटकम देना, थोड़ा, इसलिए लेसन प्लान में तो हम देखते हैं प्रीवियस नॉलेज, कल जो पढ़ाए थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते। मैंने पहले ही कहा प्रॉपर लेसन प्लान बनाना, प्रॉपर लेसन प्लान एग्जीक्यूट करना, इट्स नाइदर पॉसिबल नॉट फिजिबल। आई एम just giving two adjectives. It's neither possible nor feasible, yet it is essential। Yet it is essential। Why? Because if you fulfill 80% of the aspirations, work has been done। अगर आप लेसन प्लान की बातों को अधिकतम लागू करेंगे, पूरा पूरा नहीं, अधिकतम भी लागू करेंगे, बेहतरीन आउटकम देखने को मिलेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसके लिए जरूरी है मॉनिटरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, उसमें ये सारी चीजें आ गई। जैसा गिव फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। जब तक फीडबैक नहीं देंगे रीइंफोर्समेंट होगा ही नहीं। रीइंफोर्समेंट में कंपेलिंग फॉर द फर्दर चेंज। आप किसी को कंपेल करेंगे, इंसाइट करेंगे, कब करेंगे? जब आप देख लेंगे कि आपके पिछले डिलीवरी का क्या आउटकम निकला, कितना निकला, उसको रिव्यू करना होगा। रीइंफोर्समेंट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटकम। रीइंफोर्समेंट बढ़िया मॉडरेट रीइंफोर्समेंट तभी हो पाएगा जब आपको अपनी एक्चुअल स्थिति का ज्ञान हो। और इसके लिए आप देख सकते हैं चावल के सभी दाने को पका हुआ है कि ये देखा नहीं जाता है, 1 2 3 4 5 करके देख लेते हैं। उसी तरह लड़के जो हैं, 2 लड़के आगे से, कुछ मिडिल से, कुछ पीछे से, आपको पता चल जाएगा कि पिछले क्लास में हमने जो बताया ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। So that's why I told you here we have come here to discuss। हम आपके साथ डिस्कशन करने हैं। Your views are always welcome। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, वो हमारे लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन मैं भी जो बोलता हूँ वो भी वैल्यूएबल है आपके लिए। और ये इंटरेक्शन जो है, बायलैटरल इंटरेक्शन, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन एवरी सर्कमस्टेंस। सो प्रॉपर रीइंफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस आउटकम। कीप पेशेंस इंटरेस्टिंग। कहीं वातावरण
उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ, थोड़ा सा व्यू आपसे करूँगा। हमारे कॉलेज यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों कॉलेज का बैकग्राउंड विद्या मंदिर ही है। तो हमारे विद्या मंदिर में क्या होता है, इट्स वेरी नेशनल। आपको विद्या मंदिर सब जगह मिल जाएंगे, इवन कि कनाडा में भी विद्या मंदिर है, न्यूयॉर्क में भी विद्या मंदिर है, तो छोटा या बड़ा जो चाहे पूरे ऑल इंडिया में है। और हमारी एक ही परिपाटी है, क्लास में जब हम आएंगे तो 2-3 काम हम लोग करते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर विद, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आप बहुत प्रॉपर ऑफ रिजेक्शन। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2-4 क्लास, खासकर टिफिन के बाद, रिसेस के बाद जो क्लासेस होते हैं, तो चलो सब लोग हाथ जोड़ो एंड वी शुड रिसाइट, और सब लोग ये ध्यान की मुद्रा में सब आ गए। ओम, ये 3-4-5 बार हम लोग कराते हैं। ये भी से भी नहीं हुआ तो ये ताड़ासन का 2-3 क्वेश्चन तो इसको कराते हैं, या कुछ भजन के कुछ सॉन्ग सीख कर उसको रिसाइट करवा लेते हैं। इससे क्या होता है, बोझीपन जो है वो खत्म हो जाता है, मोनोटोनस एटमॉस्फेयर समाप्त हो जाता है और लोगों को लगता है कि कुछ नया होने वाला है। समथिंग न्यू इज टू बी स्टेज्ड अप, ये कुछ होने वाला है नया। और ये नयापन, नया हुआ अगर कुछ नहीं होने वाला है, होगा भाई मास्टर साहब खल्ली पकड़ेंगे थोड़ी देर में और हंसना शुरू करेंगे, स्मार्ट क्लास है तो फिर वो माउस दबेगा, फिर नहीं पढ़ना उसको उस समय भी है। बट ओल्ड थिंग्स इन ए न्यू बैग, इन ए न्यू रैपर, दिस इज द ओनली थिंग। सो वी शुड कीप ऑलवेज, वी शुड टेक नोटिस कि हमारा कंटेंट कितना इंटरेस्टिंगली सर्व हो, ये बहुत जरूरी है टू मेक आवर कंट्रीब्यूशन जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर बातें बनेंगी, आप जो सोचते हैं वो नहीं हो पाएगा। आप लाख माथा पटक लो लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा अगर अच्छी बातें ये हैं कि किस तरह से लेजीनेस को दूर कर सकें, किस तरह से नई स्फूर्ति ला सकें, इसके लिए आपके सेल्फ टेक्निक्स भी हो सकते हैं। मैंने जो भी ये रिसाइटेशन ऑफ ओम बताया, अब कहीं दूसरे धर्म के लोग हैं तो हे विल हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं ओम क्यों बोलूं? यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं कहा कि आप ओम ही बोलो या आप ये ही बोलो। कंट्राडिक्शंस आर नॉट देयर, वी डोंट बिलीव इन इट। आप जैसा भी उसको करा सकते हो, लेकिन एक रास्ता जो है वो खत्म हो जाए, एक नया बनना जाए। क्लास लगे कि नहीं सब लोग एंथुसियास्टिक हो गए, 4-5 पीरियड लगातार होने के बाद हम लोग उबने लगते हैं, तो उसको फिर कैसे रिसाइकिल किया जाए, री एंजॉय किया जाए, रिजॉइसिंग एटमॉस्फेयर कैसे बनाया जाए। इट इज अप टू यू एंड यू, एज आई टोल्ड यू कि वी शुड बिलीव इन इनोवेशन, टू व्हाट एक्सटेंट and in what ways you can make your delivery much more interesting. It depends on each and every teacher individually. सबका टेक्निक्स अलग अलग हो सकता है, आपकी टेक्निक्स हमारे नहीं हो सकती, हमारे टेक्निक्स आपके नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपनाने होंगे। The next one is get rid of any distractions. Get rid of its overcome. आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए, इसके लिए भी टेक्निक्स आपके हो सकते हैं। कोई लड़का इधर उधर झांक रहा है, कोई आप पढ़ा रहे इधर झांक रहा है फिर इस बार, तो अब उसको जाकर के गाल में से इधर से गए और एक थप्पड़ दे दिए, तो ये डिस्ट्रैक्शन को रोकने का तरीका कदापि नहीं हो सकता। बिकॉज टीचर्स कैन नॉट बिकम रूड एंड वायलेंट, टीचर्स कैन नॉट बिकम रूड एंड वायलेंट। This does not suit to his personality, because he is always having a desire for moderation, remoderation. मैंने पहले ही कहा हम लोग क्ले को शेप देने वाले लोग हैं, तो हम लोग वायलेंट तो नहीं ही हो सकते, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये आप इनोवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी करेगा।
हम कोई रास्ता बता देंगे, हो सकता है वो आपके लायक नहीं हो, सुटेबल नहीं। जैसे मैंने भी अभी ये टेक्निक निकाला, हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड था। मैं अभी आया लंच करके, तो मैंने सोचा मैं अपने क्लास को कैसे स्टार्ट करूं, तो मैंने छोड़ो कल की बातें से शुरू किया। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पिछली बातों को ही अमली जामा पहनाने के लिए बैठे होते हैं, काम हम लोग रोज कर रहे हैं। और ये सॉन्ग का मैसेज भी यही है कि पिछली बातों को छोड़ो और नयापन की तरफ जाओ। तो हर का टेक्निक्स अलग अलग हो सकता है। यूज ऑफ गिव देम अपॉर्चुनिटीज, वेरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कि अगर कोई क्वेश्चन करने हैं हमको, तो हम सिर्फ क्लास में फर्स्ट या सेकंड वाले लड़के से ही ना पूछें, हम बैक बेंचर्स को भी जाके इर्क करें। इर्क शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि उनको इर्किंग ही लगेगा। आप उसको मैंने स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, लेकिन जो उस तरह के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको लगता है बेकार का हमसे पूछ रहे हैं, हमको तो ये सब आता ही नहीं है। बहुत सारे लड़के, आप बहुत फायर्स हैं, आपकी एक इमेज है स्कूल में, किसी किसी टीचर की इमेज होती है, हिज इमेज इज लाइक अ डॉग। सर जब फील्ड में आता है ना, सभी बच्चे दुबक जाते हैं। इसी तरह वो सर जब क्लास में आते हैं, सभी बच्चे, कोई बच्चे तो सोचते हैं कि हम डेस्क के नीचे घुस जाए, सब ज्यादा बढ़िया, हमको नजर नहीं पड़े सर। ऐसा इमेज वाले भी सर होते हैं। Either it is good or bad, it is unknown. It is a matter of discussion. But sometimes it happens. We cannot deny it. Sometimes it happens. और उस समय हम क्या करेंगे? हम ऐसा ही करेंगे। यानी उसको अगर इर्किंग लग रहा है, तो I will irk again. मैं उससे हर क्लास में उसी को टारगेट करूँ। When I was in class 9, one of my math teachers named, his name is, will remain alive forever in my memory. His name was P.K. Poddar. He is no more in the world now. But वो हमको टारगेट करते थे। क्लास आया, I was very good in, उस समय तो हम लोग बिहार बोर्ड से थे, 1500 नंबर का एग्जामिनेशन होता था। कुछ लोग होंगे हमारे ज़माने के, 1500 का पेपर होता था। और 1500 के पेपर में इकोनॉमिक्स भी 100 नंबर का पढ़ते थे। अभी CBSE ICSE दावा करता है कि हम बड़ा कॉम्पैक्ट सिलेबस लाए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का जो ओल्ड सिलेबस है, वी आर प्राउड टू से कि हमने ज्योग्राफी 100 नंबर के पढ़े हैं, हमने इकोनॉमिक्स 100 नंबर के पढ़े हैं। दैट आई कैन क्लेम। जो इंटर में जाके लोग पढ़ते थे, हम लोग मैट्रिक में इकोनॉमिक्स जाते गए थे। इकोनॉमिक्स इज द किंग ऑफ आवर सब्जेक्ट। तो ये समय उस समय का था। इस समय इन सभी विषयों में मैं खूब अच्छा नंबर लाता था। आर्ट्स माइंड का था, अंग्रेजी खूब अच्छी थी, सेमिनार में खूब बोलता था, ये सब खूब था। मैथ घुसता ही नहीं था दिमाग में। और वो आते थे तो उनको लगता था कि ये हमारे सब्जेक्ट, ये स्कूल का बहुत अच्छा लड़का है, इसका इतना नाम है कि ये जानबूझ करके मैथ को इग्नोर करता है। तो आने के साथ ही बिना कहे पढ़े 2-3 उस समय मारा पीटा भी फूट जाता था। वो बड़ी मार खाए, ओ बांस का छड़ी लेकर के पड़ देना। It was a very troublesome story, very tragic story. और कभी कभी हमको बुरा भी लगता था कि मैथ हमको आता ही नहीं है। मैं सोचता मैथ हमको आता ही नहीं है, वो सोचते थे कि मैथ पढ़ता ही नहीं है। A great contradiction. But it was happening. For years I was getting punishment. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि it was, अब इसको आप जो कहें, I have not taken it adversely, but that time बहुत बार बहुत सारे गार्जियंस आ जाते थे, उससे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे। मैथ के टीचर, उनका नाम भी काफ़ी था डराने के लिए। तो इस तरह का भी यूज ठीक है। We should be shocked in many ways. Give them equal opportunity. सभी बच्चों से पूछें, जिससे उनको लगे कि नहीं, कुछ दिनों के बाद उनको लगे we are the part of the mainstream. We are the part of the mainstream. We are not standing apart in spite of the fact that
we are not grabbing much marks in the examination. Well, so what? But we are part of the mainstream. सर हमारा भी ख्याल रखते हैं, सर हमको भी प्यार करते हैं, सर हमसे भी पूछते हैं. Complete isolation again and again will prove disaster for your negligence. Just in this, negligence from your side will finish her career forever. He won't be blooming. So, your job is your job needs carefulness. आप सबके लिए हैं, सबों के लिए है, आपको सबों की सुनना है, कुछ खास की नहीं सुनना. Yes, sir. Observation. It's my internal feeling that if my teacher is not teaching in an appropriate way, I would like to guide that teacher. If required, I'll scold. I'll use harsh word. Whether he minds it or doesn't, I don't care. Two specific situations are there. Out of my 32 teachers, 2 teachers are such that students, because they are very gentle, very good in nature, students don't obey, students don't listen, and students keep creating nuisance in the class. And because the teacher is very innocent, very good in nature, now how to handle and guide this type of situation? Please help. You should abide by what I tell. So being a principal, you are astonished to see the entire situation. Teacher is talented, he is giving his best. In spite of this, nuisance are being created in your class. So this is the problem. This is the problem of yourself, this is the problem of the teacher also. Although sometimes you see, you caution him, you warn him, bring remoderation in yourself, change your habits, such things should be. But it's not effective. Now how to handle this type of situation? I'm telling you, let me say first. I'm just having an analysis of the entire situation. I have myself seen some of my colleagues. They are victimized by those people, stupid people of the class. But this is not really a problem. It needs proper counseling. Counseling from the side of the class teacher. Colleagues, the colleagues of himself belonging to the same faculty. वो टीचर जिस फैकल्टी को बिलोंग करते हैं, उनके कुछ सहकर्मी भी होंगे. He should come ahead. Because you know sir, it's a community work. अभी सर ने कहा, अभी क्लासेस में ऐसी चीजें आई कि कुछ आज के ज़माने में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करती हैं. जैसे अब हमारा क्लास तो बहुत अच्छा है, हमारा क्लास तो बहुत लड़के मेरा नाम तो लेते हैं ना, हाँ ये लो प्रोफाइल है, इनका नाम नहीं लेता. इस तरह का नेचर जो है वो एटमॉस्फेयर को पॉइजनस बनाता है. कुछ देर के लिए उस टीचर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन का मैटर है ही नहीं. क्यों? क्योंकि आज के बदलते युग में लड़के किसी के होते ही नहीं. अगर कोई टीचर ये समझते हैं लड़का मेरा है, इट इज हिज ब्लंडर. ओके, लड़के किसी के नहीं है. आज का जो पहले का जैसा सब नहीं रहा. अगर हम उनको ये समझने की भूल कर रहे हैं कि ये मेरा सिर्फ मेरा है, इट इज योर. इसलिए एक एमिकेबल सी है, आई एम यूजिंग द वर्ड एमिकेबली. Amicable solution of the problem is needed. Counseling between pupil, peers, teachers, they will be sitting together. Time to time, they will be discussing. Principal will ask him, what's the real problem? People will accompany him sometimes in the class. Why are you making the notes and solutions? What is the problem with the teacher? You will ask the problem.
इससे क्या होगा सर, वो टीचर का करेज बढ़ेगा. Sir is here for my rescue. Sir is intervening in my work. Sir is applauding me. I am a good teacher. He's saying in his room that you are a good teacher in spite of this nuisance is created. But you are, first of all, you are giving the credit of a good teacher to him. Then nuisance is the secondary thing. Nuisance becomes secondary thing. Okay. So benefits are being grabbed by the people of good category. Those who are above 60 groups. They are not creating nuisance. Nuisance creator are the backbenchers. Nuisance creator are the low marking holders. So, a complete bifurcation is there in the class axis already. You will be boosting, colleagues will be boosting, and time to time, regular visit to the class by the other colleagues will be highly beneficial, I am telling you. Because teaching is a group work. It is always a community work. इसलिए कोई टीचर ये नहीं समझे अपने को, he should not understand himself quite apart कि हम हिंदी के टीचर हैं तो हमको साइंस वालों से क्या लेना देना. नहीं, सब एक है. उनके पीछे में इनकॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है, कॉपरेशन बहुत जरूरी है. और स्कूल का काम क्या है? Accommodation of the differences. A very beautiful sentence I am telling. A school accommodates all the different people together. So a school does not belong to an individual. A school belongs to one and all working there. Even a peon is a part and parcel of this institution. So we will be showing our attraction to them also. Because it is a community. To what extent it is satisfactory, I cannot say. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. Now we are just marking ahead. Use of different types of aids and appliances. So many clarifications you have got. Beware of environmental triggers. Environmental triggers are there. Sometimes पढ़ा रहे हैं आप और खास करके आपके स्कूलों में तो नहीं, बहुत सारे स्कूलों में, जैसे हमारे स्कूल में तो होते हैं. हमारा स्कूल मिडल ऑफ द टाउन में है. Someone of you, आनंदराम ढांढानिया सरस्वती खलीफाबाद, the heart of the town. स्कूल का क्या नाम है आपके? आनंदराम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर. सिन्हा साहब आपके प्रिंसिपल? Yes. And we are highly acclaimed institution in Bhagalpur. Yeah. Okay. We are the only school who have no any vehicle. मेरा ही स्कूल है जिसका कोई वाहन नहीं चलता. But Anandram has certain identity. We are competent with all the machineries there. So no problem. Now I am telling you कि अब क्लास शिक्षक ले रहे हैं बाहर में, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, कोई भोजपुरी गाना भी बीच बीच में बजने लगता है. So many things are there. So listen to me. These are the environmental triggers. Sometimes it happens. We are the part of the society. We have to operate with the other associates. Also, associates. Some are funny, some are human, some are inhuman, some are peculiar personalities there. So we have, as I told you, we have to combat with each and every problem very affectionately. ऐसा नहीं है कि पड़ोस में अगर है, हमारे स्कूल के बगल में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं, तो अंदर बच्चे खेल भी रहे हैं तो गमला वहाँ लगा हुआ है, ऊपर से उनका कोई अचार का डिब्बा नीचे, ढक्कन नीचे गिर गया. अब इधर खेल हो रहा है, 9-10 का क्लास चल रहा है, एमसीसी के परेड्स हो रहे हैं और गमला कूद गया पड़ों से. हम लोग उधर एक नया म्यूजिक शुरू हो गया. तो certain these are there, but many other things are there. Many other things are there. Environmental triggers. We cannot ignore them. बहुत कम शिक्षक होंगे जिन्होंने 8 साल पहले किसी बच्चे को पढ़ाया होगा और वो मिल गया तो उसने उसी वार्मली उसको सैल्यूट किया हो. जमाना बदल गया. कुछ है, बाकी तो है. 10 साल पहले उसको पढ़ाया था, 9-10 में उसके पीछे बहुत पसीना आया था.
आज बगल से गुजरा देखा भी नहीं। Effect of environmental triggers. So these are the ugly outcomes of this. So we should be the keen observer of all those things flourishing all around. We need to be extra careful nowadays. Otherwise, situation will be worsened day by day, and we should not feel ourselves isolated. We are the real warriors. We will do our job honestly, no problem at all. But rather than having any sort of hatred in our memory, we are the pujari of love. We have not to hate somebody else. Okay, so these are the things we should be careful to the environmental triggers, beware of environmental triggers. पाठक जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। I am not तिवारी, sorry, I am तिवारी। तिवारी जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। Yes. फिर मैं रिपीट करूँगा कि मेरे टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैं राउंड लेता हूँ तो नई एज की जो नई लड़कियां हैं, इनको भी मैंने डंडी से बच्चों को मारते देखा है। तो मैंने हमारी इस चीज को अगर मैं सिस्टमैटिक वे में रिमूव करना चाहूँ कि जैसे मैं अगर किसी स्टूडेंट की चारित्रिक दोष की शिकायत है, सीरियस डिसिप्लिन दोष की शिकायत है, तो फिर मैं भी उनको मारता हूँ, पनिश करता हूँ। लेकिन when the classroom teaching is going on, the very gentle and cute young age girls, they also handle the stick in a very beautiful way and they keep thrashing the student. So there's a fear in the child and there's a sense of pain in the hands and the head. So how to handle this situation? The previous questions was completely praiseworthy. Okay, so it was a very good question, but the question does not arise. Having a stick in hand should be totally prohibited inside the school campus. One word solution I am telling you. I am the experienced guy. I have worked in so many schools as a vice principal, senior most head examiner, so much. I am talking that I am an experienced fellow. Having a stick in the hand is an offense. Okay? कोई भी शिक्षक स्कूल कैंपस में अपने हाथ में छड़ी लेकर नहीं घूमे। आपको ऑड लग सकता है, बट मेरा मैसेज याद रखिए। मैंने कई शिक्षकों को बर्बाद होते हुए देखा है। मेरे भागलपुर में एसकेपी विद्या विहार के एक शिक्षक बी.के. झा, वरुण कुमार झा, काफी पेपरबाजी हुई थी। आज से 7-8 साल हो गए। आई वॉज देयर। जब उस गार्जियन ने केस किया तो मैंने उनका पैर पकड़ा। दो लोग हम लोग गए थे उनके घर पर पैर पकड़ने कि सर हम पर टीचर ने छोड़ दिया या गलती हो गई। उन्होंने उनके बच्ची को एक थप्पड़ मारा था और वो बच्चे एक थप्पड़ ही बेचारे में मारा था। वो लग गया, किसी नर्वस सिस्टम पर लग गया और वो गिर करके फेंट हो गई। 2 घंटे बेहोश रही। वो दवा के व्यापारी थे, उनको 3 लड़कियां ही थी, लड़के नहीं थे उनको, लेकिन इतने पैशनेट थे वो अपने गर्ल डॉटर के प्रति कि वो उसके लिए जान छिड़कते थे। उनका यही वचन था, सर इन शिक्षक ने हमारी बच्ची को मारा है, बेटा को मारना कोई बात नहीं था, बेटा था नहीं उनको। ये मेरे लिए लक्ष्मी दुर्गा है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और उनको 7 वर्ष तक केस लड़ना पड़ा। एंड मैनेजमेंट हैज ड्रॉन बैक हिज हैंड्स। 2-3 साल तक तो उनको पे दिया, पैसा दिया। मैनेजमेंट भी क्या करे, मैनेजमेंट को दोष देना बहुत आसान है। मैनेजमेंट ने उनको 2-3 साल तक साथ दिया, मुफ्त का पैसा दिया। घर बैठा करके जब वारंट निकलता था वो भागते फिरते थे।
But what happened actually? He had to leave the job. वो गार्जियन पैशन में आ गया, मेरी बच्ची को मारा, बच्ची was so dearest to him. मैं इनको छोड़ूंगा, मैंने पैर पकड़ा उनका. Any time any untoward event can take place. We are not the palmists, we are not the astrologers. Why should we indulge ourselves in certain sort of ugly activities? We don't need to involve in such awkward situations. स्टिक से किसी को मारना ही नहीं है, जमाना बदल गया, स्टिक हाथ में देने ही नहीं है, प्यार से बोलना है. अगर ज़्यादा कुछ हो तो अभी इतने सारे काउंसलिंग के इतने सारे एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, उसको करिए, प्रिंसिपल्स को बोलिए, अपने प्रॉब्लम्स को स्कूल प्रीमाइसेस में बिना किसी कॉम्प्लेक्स का अपने पीयर के साथ शेयर कीजिए. प्रॉब्लम हो रहा है, शेयर कीजिए, शेयर विद द प्रिंसिपल फर्स्ट. आप उनसे अपॉइंटमेंट मांगिए, उनसे समय लीजिए, एंड देन you should have a chat with them. And I think that after certain time, after certain moment, you will get the proper solution. But, sir, don't allow to have sticks in the hand. सर कई बार रोज मेरा एक्सपीरियंस होता है, दूसरे दिन दो पेरेंट्स आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मुझे ही धमकाते हैं, मेरे टीचर को धमकाते हैं और कहते हैं उसको बुलाओ. I understood. अगर मैं टीचर को बुला देता हूँ तो टीचर की भी बेइज्जती है और उसकी बेइज्जती तो सबसे पहले मेरी बेइज्जती है. Prior to your explanation, प्रैक्टिकली हाथ जोड़ना पड़ता है. Yes. कहना पड़ता है कि गलती हुई, मेरी गलती है, मैं अपने टीचर्स को कंट्रोल करूंगा. Sir, that's what सिचुएशन जो है. Prior to your explanation, I put everything before you. The certain incident, I was a part of it. I was the witness of that event. So it's not merely a story that is artificial story. It has been experienced by me in our teaching camp. So as I told you, the realistic ideas I am serving. No myths, nothing else. It is the real story. So, as I told you, we should not take any such steps that can drag us into the problematic situation. Push us into the problematic situation. We should keep such situations, even the dream we should keep away. कि किसी को मारना पीटना ये आज का जमाना रहा ही नहीं. और आपका जो स्कूल है सर वो तो थोड़ा सा कंट्री यार्ड. यस. तो यहाँ तो आपको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आते होंगे, तो यू नीड टू बी मच मोर केयरफुल. वहाँ तो कुछ गार्जियंस ऐसे भी मिल जाते हैं, सर खूब मारिए, करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको नहीं मिलते होंगे. सर यहाँ भिड़ जाते हैं. हाँ, यहाँ भिड़ जाते हैं. रेसलिंग कंपटीशन के लिए भी तैयार है. मेरे लिए इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती, कहते उस टीचर को बुलवाइए. अब मतलब अपनी भी बेइज्जती करो, फिर मेरा एक आसान आइडिया होता है, चुपचाप हाथ पैर जोड़ लेता हूँ कि जाइए भाई साहब. फिर कई बार ऐसा होता है उस टीचर को बोलना ही भूल जाता हूँ कि आपने भूल जाता मैं हाथ पैर जोड़. नहीं सर, ये कंटिन्यू. अब मैं इतना महसूस करता हूँ सर, आई हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ जयपुरिया, आई हैड द प्रिंसिपल ऑफ शेमफोर्ड, कि सीओ एसपी से भी मैं सीधी बात नहीं करता था, गेट से बाहर भगा देता था, गार्ड से कहता थ्रो हिम आउट. आज मैं सर सबके हाथ पैर जोड़ता हूँ, सर गलती हो गई, अगली बार नहीं मारे. फिर भूल जाता हूँ किस टीचर ने मारा, फिर राउंड लेता हूँ, फिर देखता हूँ ये डंडी ठोके ना गई, फिर कहता हूँ मत ठोक. Sir, you are always great. Because you are great, I just use the word great because teachers should be flexible. इतने स्लाइड्स आपने देखा फर्स्ट सेशन से हम लोग देख रहे हैं, मैं भी वहाँ से बैठे बैठे सारे स्लाइड्स को देखा, तो क्या हुआ? Flexibility should be inherited in the nature and action of the teacher. If a teacher is static, if he is not ready to change himself, he has no right to work with him. तब तो यही करना पड़ेगा. इसलिए ये मारपीट की कहानी तो पुराने जमाने की बात है, आज की बातें अब रही नहीं, तो उसको तो रखना. Now the teachers know. एक लोग में आप इसको देखेंगे
The teacher's role is there in a very summarized way. First behavior, then learning. आपने सारे स्लाइड्स देख चुके हैं, बहुत ज्यादा इस पर स्टिक करना ठीक नहीं होगा। एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से इसको देखना है कि हम जो दूसरों से स्टैंडर्ड से यही हुआ जो whatever we accept from others, we should ask the question to ourselves कि हम कैसे हैं। आंसर मिल जाएगा, और आंसर भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हम जो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं क्या हम वैसे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा जंबल्ड वर्ड में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Whatever we don't like in ourselves, within ourselves, we should not display for others. बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। गोल जो हो वायबल हो, बिल्कुल वेल स्पेस्ड हो, वेल प्लान्ड हो, सेफ्टी और फीचर, the behaviors of the students within the classroom are a direct product of the teacher's environment. टीचर ने जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, हम लोग बोलते भी हैं बच्चों से। कोई बच्चा बहुत स्टूपिड है, कंटिन्यूअसली वो बिहेवियर उसका चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं अरे माँ बाप ही ऐसे। तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे करते हैं, वो जब माँ बाप के पास गलती करता बोलता है नहीं स्कूल ही ऐसा है। अब देखिए वाइस वर्सा, आपने बोला ऐसे बैकग्राउंड से आया है, कभी कभी रेट हो जाते हैं, ये भी बोल देते हैं नहीं बोलना चाहिए, अनएथिकल है, इमोरल है, अब माँ बाप ही ऐसा होगा। उसी तरह आप यकीन मानिए घर पर माँ बाप उसके ताऊ जी भी बोलते हैं उसके बदमाशी करने पर, कैसा स्कूल में पढ़ता है, ये टीचर ने सिखाया। These are the natural outbursts. एक पक्ष तो हम लोग बराबर सुनते आ रहे हैं, दूसरा पक्ष कोई नहीं बोलता है। मैंने आज दूसरा पक्ष भी आपको बताया। तो इसको ध्यान में रखना, हम भी वैसा नहीं करें। If the situation is quite problematic, we should try to find out the solution accordingly. Now, we are not here to blame one another. We are here to bring a proper solution. Okay? So, teachers have always a solution. Teacher के पास हमेशा solution है। वो न तो प्रॉब्लम खड़ा करता है अपने लिए और न ही दूसरों के लिए। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ मेरे टीचर्स खुद की भी समस्या खड़ी करते हैं और मेरे लिए भी खड़ी कर देते हैं। Keep enjoying. We have discussed already. The moment will come when you will have a great proud for the teacher. आप वो दिन आएगा, मैं नहीं जानता किस टीचर की बात आप कर रहे हैं, but all of them seems to be quite gentle. Okay? Oh my God! I will send for photographs, no doubt in it. Okay, thank you. Be an authority. As I told you, authoritarian is a negative word. Absolutism is a negative word. Sarvadhikarva. It is a negative word. It sounds negatively. But we had discussions within the classroom. A teacher is a monarch. Every happenings will take place by his order only. Sometimes it is said that even जो बहुत ग्रेट टीचर, बहुत ग्रेट प्रिंसिपल होते हैं, रैशनैलिटी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो भी टीचर से परमिशन लेकर दिए जाते हैं। मैंने ऐसा फील किया। One GP Singh was there in SKP long ago. I was a teacher for a few years there. The GP Singh, he was a colonel, retired colonel. Whenever he used to come to the class, Mr. Tiwari, may I come? I was astonished. It was all the time. Usually he used to come in my class. Although he was coming to observe my class there, but he was very laughingly, very comfortably, very nicely he was telling that time कि I enjoyed your class. और तो मन में हम समझ जाते थे कि ये हमको सुना रहे हैं कि मैं आपका क्लास एंजॉय करता हूँ, लेकिन ये एंजॉय करने आते हैं नहीं, ये हमको देखने आते हैं। तो एक टीचर भी तो बहुत, टीचर हैज ऑलवेज अ कीन ऑब्जर्वर ना, ए टीचर इज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ हिज एक्ट्स। प्रिंसिपल घूमते रह जाएंगे बरामदे पर, टीचर इज एंगेज्ड,
बाहर से देखेगा अरे वाह कितना पढ़ा रहा है, हाउ द टीचर समझ रहा है कि कितना पढ़ा है। इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। प्रिंसिपल साहब ने क्या बात है, वंडरफुल गोइंग। लेकिन अगर टीचर आज घर से झगड़ा करके आया है, अगर उसके मन में कोई आइसोलेशन घर कर गया है, he is not in his own, if he is not in his own, टीचर अगर पढ़ा दे, 2 पीरियड अगर टीचर पढ़ा देगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कहां से कहां चला जाएगा लड़का। लेकिन अगर वो चाह ले कि उनको पढ़ाना ही नहीं है, उसे कोई नहीं पढ़ा सकता। Whether it is the principal or the director or CMD, whosoever it is, it is the reality. But teacher is honest. At the same time, I narrated already, teacher is an honest fellow. वो समझता है कि हम I am the real worker of the society. Keeping aside all our personal grievances, we should contribute. हर टीचर ऐसे नहीं होते। मैंने इसको बताया आपको ऐसा होता है because teacher is a great psychologist at the same time. आपको देख करके लग रहा है कि ये नहीं, ये देखने में बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, वो बहुत साथे दिमाग है, वो सब सिचुएशन को खूब बढ़िया से पढ़ना जानते हैं because he is doing a job of a teacher. बड़ा खतरनाक आदमी है वो, किसी को राजा बनवा दिया, किसी को भिखारी बना दिया। महापद्मनंद की क्या दशा की चाणक्य ने, it has been buried in the history. कहने की जरूरत नहीं है। तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक कि महापद्मनंद का नाश नहीं हो जाए। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त ढूंढा पहले, सेटिंग अप ऑफ अ फिल्म। ऐसा नहीं था कि एक वेल प्लान्ड था कि ये चंद्रगुप्त है, इसको बनाना है, ऐसा नहीं है। He was leading the way to his own ashram. Chandragupta came into the way, he met him, and he observed, because he is a keen observer. Oh, this fellow, I have taken a vow, I have taken a solemn vow, great vow, I have to fulfill it. मैंने ये प्रॉमिस किया, हमको फुलफिल करना है। ये इस आदमी में, इस लड़के में नजर आता है। He was a teenager that time. He was shaped up. उसको उन्होंने तैयार किया, फीड किया, वॉरफेयर सिखाया, लर्निंग्स दिए, वेद की ऋचाएं बताई, उसके मीनिंग्स बताए। और उसके बाद चंद्रगुप्त ने क्या किया, जब जाहिर है, चंद्रगुप्त फिर हिंदुशा, फिर सम्राट अशोक and all that. But he created Hindu kingdoms were in the way that time. So, teacher is much more capable than he seems to be. शिक्षक ऊपर से जो दिखता वो है नहीं, और अगर वह अपने को इंसाइट कर दे तो फिर उसके जैसा कोई नहीं। ये तो क्लियर है। सो कॉन्फिडेंस इज हिज ट्रेजर, वेल ड्रेस्ड अप, डीप वॉइस। टीचर की पहली पहचान कि क्लास में उसकी आवाज कैसी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हियर टू देयर, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं। So voice should be very clear. These are the features, we have discussions on that. We don't need any clarification, much more clarification on that. So these are the goals. Building a classroom culture begins with the having a vision of our success. The ultimate aim is to, what is the ultimate aim of a teacher? अब इतने जानकारी लेने के बाद एक टीचर का अल्टीमेट एम क्या है, ये इस क्वेश्चन पर मैं स्टिक करूंगा, आपसे पूछूंगा एक एक करके। उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी तरह से कॉन्वेंस करके उसकी जो गोल्स है उसकी ओर मूवमेंट करना, डे बाय डे मोटिवेट करके उसकी गोल्स को हमेशा रिकॉल करना। एंड थैंक यू सो। टीचर का विजन होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छा नागरिक बनाए, एक अच्छा एक शिक्षक की भूमिका होती है जिस तरह से फांसी हो जाए,
अच्छा बोलिए ना, कोई खांसी है तो सर क्या हम लोग आप ही क्या है? जिस तरह से एक माली जो है बगीचा को सींचता है तो बगीचा खिलता है, उसी तरह से एक शिक्षक का एम रहता है कि जो मेरा सींचा हुआ बगीचा खिलते रहे। बहुत अच्छा। गिव हिम अ बिग हैंड। अ टीचर इज ऑलवेज अ पेसिमिस्ट। कंक्लूजन इज दैट अ टीचर इज ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट। वो हमेशा ऑप्टिमिस्ट है, कभी नेगेटिव पेसिमिस्ट वो बन ही नहीं सकता। सर कर्तव्य होता है स्टूडेंट को शिक्षा के साथ साथ उनका चरित्र का निर्माण करना। और आप इंग्लिश टीचर हैं सर? No, I'm not English, but I can speak in English. Say in English. The main aim of great teachers, they grade his students to good education with his good morality. Okay, good morality. Very good. Development. All round development of the ward. He never said. टीचर का उद्देश्य ये होता है कि वो शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बनाए, एक अच्छा वो भविष्य में डेवलपमेंट कर सके। वो मतलब अच्छा नागरिक बनाए स्टूडेंट को और फिर वो व्यवहार में कुशलता लाए। बहुत सुंदर, बहुत सारी बातें आ रही हैं। As I am a teacher, I want to see same as in what I am seeing in mirror. Like I see students like a mirror only. What I want to see in mirror, that thing only I want to expect from these students. Yes. The same thing should be reflected from Yes, them. yes, of course. Okay. I saw like a swells. Without a potter, the swells is costless. Costless, yes. Yes. And whenever a potter give the perfect shape with the swells and clay, thereafter that is costly, so yes. costly in the market. Yes, yes, yes. It is. Very good. Thank you. टीचर का शॉर्ट टर्म गोल ये होना चाहिए कि वो अपना 100% दे और अपना बच्चे की ग्रोथ के ऊपर का सारा फोकस। थैंक यू। बच्चों को बेहतर शिक्षा दे, गुणवत्तापूर्ण और बच्चे देश का भविष्य का निर्माण करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यस सर, गुणवत्तापूर्ण टीचर्स ड्यूटी। शिक्षक का उद्देश्य है कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ और एक अच्छे ज्ञान व अच्छे देश के एक नागरिक बने या कोई अपनी एक पहचान बनाए। Without identity. Facilitators, it means the teachers have to provide all types of facility to the students. They can improve themselves in each and every field. बच्चे शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से वो पूर्ण विकसित हो, ये एक टीचर का अच्छा काम है ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बन सके। बच्चे में अच्छे संस्कार। थैंक यू। शिक्षक का नहीं अपने बच्चे के एकदम बहुत परफेक्शन के साथ आपने बोला। डेवलपमेंट पे काम करें, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। थैंक यू। ओके। बच्चे आईएएस नहीं बन जाएंगे, लेकिन अगर ग्रोथ माइंड सेट के साथ उसका ग्रोथ हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो कम से कम वो सड़क छाप तो नहीं रहेगा, इसकी गारंटी तो है। ओके। और इतना भी अगर हो गया, इफ ही और सी molds into a wonderful citizen, our ultimate aim is complete. इसलिए हम उसको प्रोफेशनली वो सक्सेसफुल बने या नहीं बने, हम उसको मॉरली सक्सेसफुल बनाएं, हम उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कम से कम बनाएं। और अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर वो बन गया तो फिर वो
दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं देगा, सोसाइटी को कुछ ना कुछ देता ही रहेगा, सोसाइटी को कभी डैमेज नहीं कर सकता है। तो एक शिक्षक इतना तो कर ही सकता है और हम लोग उसी के प्रयास भी करते हैं। आप ही की बातों का निचोड़ आया सामने। Rituals and things now, these are the modern ways of applauding the word in the class. कि जैसे हमारे, मैं तो अपने ही गिरजा मंदिर की बात लाऊंगा, although I have worked in so many missionaries, I worked in Holy Family sometimes also, Bhagalpur. But हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, वर्डिंग्स कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे मिशनरीज है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे नहीं बोला जाता, बट उसको दूसरे तरीके से, लेकिन हर दिन वंदना सभा जो लोगों की होती है वो आधे घंटे की प्रार्थना सभा होती है एवरी डे। तो वहां पर क्या होता है, जिसका जन्मदिन है उस बच्चे को एक आचार्य जी, हम लोग शिक्षक को आचार्य जी बोला जाता है, और आचार्य जी कह रहे हैं जहां वो बैठा हुआ है वहां से उसको हाथ पकड़ करके पहले स्टेज पर लाते हैं, और इतने सारे बच्चे हैं, सब बिग क्राउड इज देयर, तो हर 2 दिन 4 दिन पर 3 बच्चे 4 बच्चे का जन्मदिन होता ही होता है, और फिर उसको बहुत ही सुंदर ढंग से वहां से उठा करके आचार्य जी लाए, स्टेज पर लाए, फिर उनका आज इनका अवतरण दिवस है। सभी लोग यहाँ पर, वहां बोलते अवतरण दिवस, सभी लोग फिर तालियां बजाते हैं, और वेरी enthusiastic scenario is being created there, an inspiring scenario is being created there, और उसमें क्या होता है, वो बच्चा जिसका जन्मदिन, उसको लगता है इतने लोगों ने हमको एडमायर किया, इतने लोगों को पता है कि आज हमारा जन्मदिन है, तो छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ी बड़ी खुशियां लाने में सक्षम हैं, होती है। तो इसको हम लोग एक नुस्खे के तौर पर आजमा सकते हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो करें। स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड दे सकते हैं कि पहले सेक्शन वाइज, फिर उसको ये, तो वेरी दीज आर द गुड टैक्टिक्स, कि अभी आप सोशल, सपोज करो आप इंग्लिश के टीचर हो या सोशल साइंस के टीचर हो, अच्छा इस बार देखते हैं तीनों सेक्शन में हाफ ईयरली में एसएसटी में किसने ज्यादा अंक लाए, प्रिंसिपल को बोले जा करके, प्रिंसिपल सर कम से कम एक पेन ही दे दीजिए, है ना, स्टूडेंट ऑफ द मंथ हॉलीट्यूड। इसी तरह साइंस के टीचर अगर ऐसा करें तो उनके लिए, अगर फिर दूसरे फैकल्टी के शिक्षक करें, इस तरह से अगर एक क्लास से अगर 4 लड़के 5 लड़के स्टूडेंट ऑफ द मंथ का 1 या 5 रुपये की कलम, क्या लगता है अगर ये हो गया तो इससे क्या होगा, एक बड़ा ही ओवरवेलमिंग सिनेरियो क्रिएट होगा, एंड इट विल बी वेरी सेटिस्फाइंग एट द सेम। वो तो उनका मॉडल तो पुष्ट करेगा ही, इट विल बी हाईली सेटिस्फाइंग फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन इट। वो सारे टीचर्स, वो हिस्ट्री के टीचर, वो ज्योग्राफी के टीचर, वो इकोनॉमिक्स के टीचर, ना सोशल साइंस के जितने टीचर उस सेक्शन में पढ़ाया है, उनकी नजर में वो बच्चा आएगा, चारों उनके पास जाएंगे, उसको अपलॉड करेंगे, अरे तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं इसमें ना इसी में तुमने इस सेक्शन में लाया है ना, छोटी छोटी बातें। That's why triples have ability to make a big difference. Triples, छोटी छोटी बातें, which is sometimes we understand negligible, but it has capacity to build up more, to explode more vibrantly. So we should be doing such sort of experiments with the students and for their healthier growth at the same. Okay? So these are certain things, positive notes, handshake, field trip, excursion. Sir, can you explain as positive notes? Yes, positive notes. Positive notes means ki admiring letters sometimes. Greetings is always a positive note. हाँ, कुछ एक लड़का है वो as आपने उसको मॉनिटर अपॉइंट किया और एज ए मॉनिटर ही इज परफॉर्मिंग सो वेल, तो कोई उसने बहुत अच्छा काम किया, क्लास को डिसिप्लिन सिनेरियो को उसने डिसिप्लिन बना दिया, यू आर द क्लास टीचर, आपको पहले प्रॉब्लम होता था तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको हैंड नोट पॉजिटिव नोट बना करके लिफाफे में दे दिया, हाँ आई एम अपलॉडिंग यू, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब वो देखेगा निकाल कर हमारे सर ने आपको ये अपलॉड किया है, तो ग्रीटिंग्स लेटर दिया है, हाँ अब चाहिए, it will just feel of the great pleasure for you.
And certain things, it may include certain things. It is one of them. Okay, certain things. It can be done, and it will be, and your job will be accomplished very nicely. To be more effective, a teacher needs to be skillful, without any doubt. ये सब बातें तो अपनी जगह पर हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है grip on the matter you are supposed to deliver. Grip on the matter you are supposed to deliver in the class. विषय में आपको प्रॉपर सूचना होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, उस कंटेंट पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। और इसके लिए एक छोटा सा वर्ड है, दैट इज ए ट्रेडिशनल वर्ड, इट्स अ पूर्वाभ्यास। इट्स अ पूर्वाभ्यास, बहुत छोटा। एक अच्छा टीचर वही है जो क्लास में जाने से पहले अपना टीचिंग जॉब उस दिन का शुरू करने से पहले छोटी छोटी डायरी में नोट्स बना के रखता है, उसको देख करके जाता है। हो सकता है उसके कलीग्स उसको बोलते हो, क्या यार ये क्या कर रहे हो, इतने दिनों से पढ़ा रहे हो, पढ़ा भी बोलते हो, सम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स in pouring in your ears sometimes, it may seem awkward to you. But if you are studious, if you visit library time to time, if you a teacher have a spare time to visit the library every day for a few minutes only, if you are going to the newspaper every day in the school campus, either at home or in the school campus, you believe you are different to others. You are always different to others. My experience says that a study never goes in hand. If you are studious, if it has been inherited in your nature, you will be keeping apart from the folk. आप भीड़ से सब दिन अलग रहेंगे और अपने आप को हाईलाइट करना, अपने को सॉलिड बनाना, अपने ज्ञान को संवर्धित करते रहना, whatever we say, ये एक अच्छा लक्षण है। It's a good trait for us. और टीचर को तो हमेशा पढ़ना जरूर चाहिए। कक्षा में जाने से पहले 5 मिनट ही सही आप अपनी चीजों पर ध्यान दे करके जाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो डिलीवरी है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ फील होने लगेगा। If the phenomena continues for years, the day will come when you will be renewed overall. क्यों बोलते हैं? सुनने में थोड़ा लगता है, खराब लगता है कभी-कभी। कोई टीचर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो खाली इसके पीछे नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं, कोई टीचर बहुत पॉपुलर है, अभी आपने देखा कोई टीचर प्रिंसिपल के नजर में बहुत पॉपुलर है, टीचर्स भी उसको बहुत प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स भी उनका नाम लेते हैं। कुछ तो बात नहीं होगी। आई डोंट नो हु इज द पॉपुलर अमंग यू, आई डोंट नो, बट अगर वो ऐसे हैं इसका मतलब है उन्होंने इसके पीछे कुछ मेहनत किया। डोंट डिस्क्रेडिट। अभी मैं देख रहा था, सर ने कहा हमारे RP1 साहब, ये देखिए ना आज हमारे बच्चों का मंदारियल आया है, ट्रिप आया है, एंड यू नो वो क्लास लेते रहे, फोन आता रहा, सर यहाँ पहुंचे, सर वहां पहुंचे, सर अब यहाँ आ गए। फॉर्चुनेटली इज द वाइस प्रिंसिपल ऑल्सो, लेकिन प्रिंसिपल भी तो है। हमको लगता है जितने फोन प्रिंसिपल को नहीं आए होंगे उतने ही इज असिस्टिंग। व्हाट डज इट शो? ही इज असिस्टिंग। सो लिसनिंग टू द कलीग्स प्रॉब्लम, just paying attention to his oohs and pen. You are not the solver. You are not solving their problem. It is his personal problem. But what are you doing? You are listening them patiently. You are just. It means you are becoming a part to his pain, his suffering, and it is very. It leaves him comfortable. मैंने कलीग से ये बातें की, मेरा कलेजा हल्का हुआ, मैंने अपने मन की बातें की। So we are the human being.
aiming at a prestige we are the human being. We are not calculating everything. We are not the professionals. We are not the businessmen at the time. हम लोग सब कुछ कैलकुलेटिव आइडिया के साथ नहीं करते. We are listening. And by listening to them, we are just providing a very calm and soothing effect on his body and mind. That we should do. So we are the curator sometimes. We are the curator sometimes. Okay? Technical skills, they should be solid. Conceptual skills, human skills, communication skills. This is inevitable. There is a word in English, inevitable. जिसे टाला नहीं जा सके. ये कम्युनिकेटिव तो होना ही चाहिए. टीचर कम्युनिकेटिव नहीं है, जानते हैं बहुत कुछ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. It is the drawback of a teacher. Whatever you know, it must be expressed. Then only it will be fruitful. Otherwise, so many things are buried within ourselves. It is of no use. It will go in vain. And after certain years, it will fade away from the mind also. Then our reality is to, duty is to conversation. हम जो जानते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक टीचर की सबसे बड़ी ड्यूटी भी है और दायित्व भी है. नेक्स्ट वन इज टेक्निकल लेसन प्लान, करिकुलम. ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली है, हमको बताने की जरूरत नहीं है. लंबी चौड़ी बातें हो गई. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को थोड़ा सा देख लेंगे. इट्स माय रिक्वेस्ट. Clarity of the picture in mind, ask all the expected questions from yourself and answer yourself. Content के questions हैं, कुछ चीजें हो सकता है हम भी अटक रहे हैं, तो पहले उसको हम अपने में solve कर रहे हैं. Ask yourself if you will be satisfied with this answer. हम अपने को भी देख लें कि हम उस आंसर से satisfied हैं या नहीं. अगर हम satisfied नहीं है तो फिर नहीं. And last one is, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, अगर इसको एक दो पॉइंट नोट कर सकें तो अच्छी बात होगी. Importance of classroom management. What sort of, now it is a nutshell story now. We are coming on to the environment. If you are a good manager of the class, it will be, what will we do? Create conducive learning environment. Conducive. जिसमें कोई भी पराया नहीं, कोई भी अबूझ नहीं है, कोई भी अनजान नहीं है, वेल कंडक्टिव है, और आप एक टीचर होने के नाते ऐसा एनवायरनमेंट आपने बना दिया. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. टाइम टू टाइम यू विल बी गोइंग थ्रू. अगर 10 दिन 5 दिन 6 दिन में कभी नोट्स हो मिले, एक बार नजर पड़ गया, कभी क्लास में कभी लीजर पीरियड में ही बैठे हुए हैं, तो चलो भाई 2 दिन का क्लास हुआ था, एक बार इसको देख जाते हैं. ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा. It will be feeding up gradually. आपको लगेगा कि 2-4 बार पढ़ ली तो क्या? No, it will be just ringing in your memory of it. कि उस दिन ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सबने ये बातें की थी, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, and it will prove highly beneficial. Avoid wastages of time and energy because it is well managed. You have managed the class, so wastage of time will not take place now. Wastage of energy will not take place now. Post moral of educator creates a structure and achievable goals for learners and informs students what is expected of them. Increases class time and decreases any disruptions. Increases class time because a teacher is a good allocator of the times at the same time. अब देखेंगे कोई टीचर है क्लास में ले रहे हैं क्लास, घंटी बज गई, पढ़ाए जा रहे हैं, और बगल उनके बाद जिनका क्लास है वो बेचारे घूम करके जा रहे हैं. क्या हुआ सर, क्या कहें, शुरू किए थे खत्म ही नहीं हुआ. इट इज नॉट गुड. इसमें टीचर की स्पेशलिटी काउंट नहीं होती, हमेशा ध्यान में रखें. इफ यू आर नॉट कंक्लूसिव, if you have no idea about the time, it means you are not a good teacher. A good teacher, it is known to everybody. Lesson plan reflects such. 40 minutes class or 45 minutes class.
So you should be there, that you should have a well sketched lesson plan ना, कि हमको इतने में प्रीवियस नॉलेज चेक करने हैं, इतने में क्लास वर्क भी थोड़ा सा दो से पूछ लेना है, और इतने में हमको फिर बोध कार्य भी करना है, फीडिंग भी हमको करने हैं, और इसी में हमको होमवर्क भी देना है. तो एलोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज वेरी नेसेसरी. Good allocation plan is needed. Then only you are a good teacher, because you should manage the class within the allotted time, within the given time. If you are successful in doing so, you are a good teacher. If you are not doing so, it means a lot to learn is left there. थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा. तो आपको मॉडरेटर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्लास मैनेज करना होगा. यू शुड बी अ गुड मैनेजर ऑफ द टाइम. तो इसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है. क्रिएट स्ट्रक्चर अचीवेबल गोल्स फॉर लर्नर्स. लड़कों को हमेशा लगे अचीवेबल गोल्स, लड़कों को हमेशा ये लगे कि आज इतना हुआ, इतनी चीजें बची, क्लैरिटी होनी चाहिए. अपने सब्जेक्ट को जब आप डिलीवर करते हैं उसमें क्लैरिटी रहे, कितना हुआ, क्या बचा. प्राय होता कि हम जम्बल कर देते हैं. We leave the things at the time of the departure. कभी कभी हम क्या कर देते हैं, सबको गड्ढम गड्ढ कर देते. नहीं, कोशिश करें ऐसा. कभी ऐसा होगा, सपोज कीजिए कि हिंदी के एक टीचर गए, संस्कृत के एक टीचर गए, और उन्होंने कोई कंटेंट पढ़ाना शुरू किया. हिस्ट्री के टीचर गए, एक दिन में अकॉम्प्लिश नहीं होगा, एक दिन में तो खत्म हो ही नहीं सकता है. लेकिन निकलते समय लेसन प्लान अगर आपका अच्छा है, अगर आप उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़े हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं, हमने क्या दिया, अब इस कंटेंट में कितना बचा, अगले दिन क्या देंगे, आपको भी पता होना चाहिए, आपके लर्नर को भी पता होना चाहिए. इज इट ट्रू और रॉन्ग? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Clarity should be there at any cost. It is a class time decreases, and it is an effective school administration, and this belongs to our honorable principal sir. Good administration is very necessary, and principal like you is doing the same, and we are the subordinate of you. But the main thing is that don't understand that we are moving aside from you. We share the same way, we share the same intention, we have good intention. Our intention is to highlight your stature, is to uplift the image of the overall image of the school. So we are the part of you. Okay? We are the part of you. We means we are the teachers, are the part of you, and it is your duty to nourish us. Okay? So thank you for the day, and shall I come now? To what extent it become fruitful, it is up to you to decide. Okay, thank you so much. दोनों में 4 ऑप्शन है, जो आपको करेक्ट है उसको टिक कर देना है. जो एब्सेंट है उनका भी जो है उनका भी
nature and ये केस स्टडी इसको भी सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चंस मुझे आते हैं। कोई बात नहीं, आने की दूसरी EPC tomorrow morning. Stop teasing me, okay? सदा महावीर मंदिर में 5 भगवान के द्वारा चाहे उसका सब संगीत वाला जो टेरेस है वो उसी से उससे आपका लोगी के पौधे से लोगी का पौधा भी होते हैं।
Yes, yes. Question number 3, answer is C. Question number 4, answer is A. Yes, sir. Question number 1A. 1A. Yeah. 2C. 3C. 4A. 5C. 6A. 5 is 5C. 6A. 7A. 8D. Sir, in my question paper, 6, 7, 8, 9 is missing. The sheet is missing. D. Sir, 6 का जरा एक बार फिर बताएं क्या है? 6A. 7A. 8D. 9A. 8D. 9A. 10B. B for Bombay. B for Bombay. 11D. D for Delhi. 11D. D for Delhi. 12B. D for Bhagalpur. 12B. D for Moscow. 13C. C for Chennai. 14D. D for Delhi. 14D. D for Delhi. 14 is B. D for Delhi. 15B. D for Bombay. 15B. 16A. 17C. 18B. D for Bombay. 19B. D for Bombay. 20B. D for Delhi. B. B. Yeah, B. 19 is B. okay. 20th is D for Delhi. 31st C. 32nd A. 22nd A. Yeah, 22nd A. 23rd B. 23rd B. B for Bossy. 22nd is I'm sorry. 24th B. And 25th is also B. 24th B. B for Bombay. 25th B. B for Bombay. This is all. Yes, sir. And at the end, we are going to end the session with a clip again. Going to learn about photosynthesis. So already you know about this topic. Today we
something that you want to know. अब सेकेंडरी को बन रहा है उसमें टिक मार के हम फीडबैक से So students, today we are going to learn about photosynthesis. Next, anybody else? Yes, Krishna. The process by which green plants prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and water is called photosynthesis. Good answer. Okay, so let's learn some conversion. यार ये देख ये रिया ना जरूर मैच किसी दिन पिट जाएगी देख ना तूने आंसर सही बोल दिया तो आंखें दिखा रही है इसको तो पढ़ना लिखना है जब देखो हमने ये गाड़ी ले ली वो गाड़ी ले ली ऑडी ले ली हेलीकॉप्टर ले लिया अगर एक दिन इसका हेलीकॉप्टर मुझे दिख गया ना इसके हेलीकॉप्टर का पंखा तोड़ के इसके हाथ में नहीं दे दिया ना तो मेरा नाम बदल दिया अरे तू उसकी छोड़ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना नहीं यार यार देखिए मम्मी ने क्या भेजा है लंच में ये चीज तो पहले कभी घर में बनी नहीं अरे तेरी छोड़ पूरे मोहल्ले में आज तक ये किसी ने नहीं बनाई है यार श्रद्धा टिफिन मेड ने बनाया है देखो तो कितना तेल है इसमें ऐसा लगता है पूरे बालों का तेल इसी में डाल दिया जरा दिखा चल छोड़ यार तेरी मम्मी ने तुझे सरप्राइज किया होगा चल इधर भी ला थोड़ा मैं भी खाती हूँ चल खाना शुरू कर यार नहीं यार इतना बुला भी नहीं है पॉलिजी इट्स ओके खा ले यार फिर तू ही खा ले अरे क्या कर रही है यार ये देख छोड़ इसे ओए ओए क्या हुआ अरे हुआ क्या कुछ नहीं अरे बता तो सही क्या था ये रिया just an exchange of tiffins what's a big deal about it and you Sakshi you're not going to die out of this please stop this drama मैम इनके जैसे लोग ना हमारे घर पे नौकर का काम करते हैं और हमसे नीचे बैठ के बात करते हैं इनके ऊपर stop it रिया what did I say stop it stop Priya Sakshi बैठ जाओ anyone else has any problems ma'am yes ma'am I want to sit in first row मेरे पापा ने बोला था कि मैं आपको बोल दूं आप हमेशा मुझे पीछे क्यों बिठाते हो want to come to the first row we will look into it later please sit down anyone else yes मैम मेरे कल वाले टेस्ट में 2 मार्क्स और बनते हैं प्लीज रीचेक इट इट्स जस्ट अ क्लास टेस्ट बेटा नहीं मैम मेरी पोजीशन में फर्क पड़ेगा नाउ आई एम इन थर्ड पोजीशन इफ यू विल इंक्रीज माय 2 मार्क्स आई विल कम ऑन सेकंड पोजीशन
Oh, if you come to second position, is it that you become the Prime Minister of India? Stop. No, ma'am, it's matter of respect, Bobade. What respect? Do you think that the third rank holder will not have the respect? I think so. Please sit down. Okay, let me share with you all. Next week we are going to start with the athletics meet. Oh, you're all happy? Yes, ma'am. Who all wants to participate? But the winner can be only one. And we will finalize it today itself. And I am excited about this. So we will decide it on the grounds. other side. देखते हैं कौन सबसे पहले पहुंचता है।
स्पेसिफिकली 1, 3 या 4 इन तीनों में से कोई एक कर दिया तो ये पेज लेकर के आएंगे एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। इन हिंदी दिस इज व्हाट सम ऑफ दिस इज चार्ट, जहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं है, चाहे वो डिफरेंट हो, स्पेशल हो या नॉर्मल हो या फॉर्मल हो, इट डजंट मेक डिफरेंस। कास्ट, रेस और कलर, इनके डिफरेंस हम टीचर का काम है, जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया। एक्चुअली इस वीडियो में जहाँ पर हमें बच्चों की मानसिकता चेंज करना है and we have to bring equality among our students. So thank you all. आगे जाएंगे नहीं, नीचे यहाँ पर स्कूल का वो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के ग्रुप सेशन का फोटो करवाएंगे आप। इसके बाद मेरा आज के लिए फ्री है। टुमारो यू विल रीच ओवर योर 8:30। जो लेट होंगे वो अपने साथ दोस्तों का फाइल लेकर के आएंगे एंड इफ यू आर ऑन टाइम देयर इज नॉट अ बिग इशू, राइट सर? 100% ओके, पेमेंट में से काट लीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कल आप लोग वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड टाइम बोलो। हाँ बस बस बाबू एकदम ऑटोमेटिक मशीन गन फायर कर दिया। खिंचा रहा है कि झूठे अब दिखा रहे केवल खींच रहे हैं, इतना टाइम तो नहीं लगता।